under progress is about 77 crores. The construction of the boundary wall, the RCC drainage, security watchtower is about 34.82 crores. The airport is being developed, sir, to be able to take A320 type of aircraft. And as I mentioned, the overall cost is about 400 crores. The date I have been given is that this whole work should be completed by September 2020. That is in a few months from now. Of course, this completion date will be dependent on some tasks which the state government has to carry out, like a village road crossing funnel to be closed, approach roads to a building to be constructed, electricity and water connection, and trees which require to be transplanted. But with the constant monitoring, this and other projects are being subjected to. I am reasonably hopeful, sir, that the September 2020 date will be complied with. निशिकांत दुबे जी, इनका तो सर आगे भी लगा हुआ है, इनका क्वेश्चन है सर, इन्होंने लगा हुआ है, चौथा लगा हुआ है, आप इनमें से श्री मनीष तिवारी जी. Thank you very much, Speaker Sir. Speaker Sir, the Airport Economic Regulatory Authority exercises superintendence over 22 major airports which have a footfall of over 1 million passengers a year. Now, under Section 16 of the Airport Economic Regulatory Authority Act, the authority levies 3 kinds of charges: a passenger usage charge, an airport tax, and a user development charge. Now, these charges, Mr. Speaker, sir, are determined on the basis of the annual revenue requirement. Mr. Speaker, sir, these charges are absolutely exorbitant and the passengers are being ripped off and no commensurate facilities are being given by private airports. There are 150 to 200 appeals which have been filed against the decision of the Airport Economic Regulatory Authority with the Appellate Forum. Now, the jurisdiction of the Appellate Forum is continuously being shifted. It was first with the Competition Commission, then it went to the Consumer Forum, now it is with the TDSAT. What I would like to specifically ask the Minister, is he aware of the huge anomaly which is there with regard to the determination of these charges under Section 16 of the Act, and the fact that out of 150 appeals which have been filed, only 5 have been disposed of in the past 5 years, and what exactly does the Minister and his ministry plan to do to rectify this? So, to the question on exaggerated charges, to the question on the procedure, the institutional mechanisms, it is not for the minister in the Ministry of Civil Aviation. All I can tell you is we can encourage the appellate body to do its job more quickly. As far as we are concerned, we are absolutely clear that the 23 major airports which are under AERA and these charges, these have to be worked out rationally. I have had occasion in the past several months that I have been in this ministry of telling the airport operators of both the Airports Authority and them to constantly review these charges. I have had the occasion to revise some of these charges which are under our domain, but where institutionally a mechanism lies either with another forum or a court, surely it is not the honourable member's suggestion that I interfere into that turf. But on the larger question, we are in the larger question. Doesn't the government have a responsibility? Yes, the government does have the responsibility. Well, that is precisely the point. The government has the responsibility, and the government is fully conscious. You can't allow the situation to go on like that, Mr. Minister. The reason why बोल के एक लाइन में बैठ जाओ ना, फालतू इनको क्यों क्लैरिफिकेशन दे? नहीं, that's the reason why the appeals are not being decided. And you're not doing anything to rectify it. That's my charge. Sir, TDSAT, my learned colleague, even he would be aware, is the appellate authority which we have no control on. The Ministry of Civil Aviation has no control on TDSAT. If he is recommending, if you would show me,
Sir, if I'm allowed to respond. Is it a debate or a question or what is this going on? Sir, I am very happy to answer this question. I am also quite happy to enter into a debate, even if it looks like a slinging match. But I want to tell my honorable member that he's a lawyer by training, a lawyer by profession. If there is a quasi-judicial authority, I would be very happy to lend my voice along with his to ask for a rationalization. But I cannot do the work of the quasi-judicial authority. And surely even my learned member, who often displays traits to the contrary, would be aware of that. Yes. Dayanidhi Maran ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, I would like, sir, my question to the honourable ministers in two parts. First part regards to amenities in Chennai, domestic and international airports, sir. Sir, the amenities, so in your answer, you stated the basic amenities provided throughout India. So specifically to Chennai, during peak hours, passengers have to wait for more than 45 minutes to pass the security clearance, sir. So it is quite a tormenting effect when people are trying to catch their flights. And you may say that the new extension is coming up, but it's going in a very slow space. And also the new airport site has not been formulated, nor the funds been allotted by the Tamil Nadu government. So in being this, can you make some special provisions to ensure, let me finish as two parts, sir. So to ensure that during peak hours, more security personnel or more scannings are put so that to speed up. Similarly, sir, in the immigration of the international airport in Chennai, during peak hours, it is 1.5 hours to 2 hours for passengers to go through immigration and also to come back. So my second part, sir, since the coronavirus is now seriously, and I've been seeing photographs in Mumbai airport, every airport, long queues where for screening the passengers who are entering the country. So, sir, this is also tormenting. And one day I asked, sir, are you providing hand sanitizing solutions for the entering the airport so that passengers are also clean, which can reduce the spread of coronavirus into the country, sir? This is a suggestion, sir. Can you just answer, sir? Sir, I would be very happy to answer both the questions and comments which the honourable member has raised. One with specific reference to Chennai Airport and the other in relation to the arrangements which we have made at the airports to deal with the spreading coronavirus issue. Let me start with the second first. Sir, on an average, something like 70,000 passengers come to different airports in the country, 30 of them which deal with international traffic. Since the coronavirus started, this number has come down from 70 to about 62 or so. We started by screening passengers coming in from what were regarded as the 12 most seriously affected countries. As the information became available, and I must tell the honourable member through you, sir, that the World Health Organization, acting on this comprehensively only around the 31st of January, we started all our procedures, including repatriation of Indians stranded in Wuhan and other places, on 2 weeks ahead, on 17 January. Now, with effect from 4th March, we are screening all incoming passengers from whichever country they come. Daily, several times a day, I personally monitor the queues, the arrangements at the 30 international airports where passengers are coming in. The number of passengers coming in had come down to 62,000 per day. With the travel advisory that we have issued yesterday, sir, it is my expectation that it will come down it has come down a little, 60 to 40, may come down even further. Even at the height of the peak time, as it is called, when maximum number of flights come, the total amount of time being taken at the two large airports, I mean Delhi, which has an annual passenger throughput of 70 million, and Mumbai, which has a passenger throughput of 55 million, it was between 8 and 10 minutes on an average, going up to 20-25 minutes. I have personally examined suggestions by some passengers that they were coming through the screening without having been screened through the airport. Those reports are just not true. Every single incoming passenger is being screened. That that provides a response to the honourable member's assertion about what we are doing to spread it. Whatever is humanly possible in terms of physical arrangement.
To prevent it, not to spread it. Now let me explain. If a crowd gathers, Mr. Speaker, sir, at a particular airport, if there is congestion and a lot of people are coming, first of all the passengers who are coming from the seriously affected countries come to the aircraft comes to a different bay. So the screening procedures are completely separate. The baggage of those who are coming in from those affected countries is also separately treated. So that is a major prevention measure. So that you don't allow the passengers who are normal, who may not have the symptom. But every passenger is screened. Those from most seriously affected countries have a separate lane and procedure. Those who are coming in even from other countries are screened. Basic thermal screening, if they test positive, they will then go through the proper testing procedure. I would now like to come through Chennai. If I may, sir, because the honorable member has asked on Chennai, and that is more dear to his heart, equally dear as coronavirus. Sir, the expansion plan, dear to, he wants to keep it up. I didn't say dear to his heart. His concern and to prevent it is very dear to his heart. Sir, the expansion plan for Chennai Airport is about 2,200 crores. Work is being done. I take the honorable member's point that perhaps work is slow, but I think he answered the question himself when he said that the state government has not been forthright and totally, land has not been made entirely available. As far as we are concerned, this project is being executed by a commercial entity, Larsen & Toubro. We are monitoring it. Insofar as crowds gathering, or rather queues 30-40 minutes, I want to share with the honorable member that this is partly reflective of the overall national situation. Today we have a passenger throughput in our airports of 345 million or so per year. I see this in the next 2-3 years rising, sir, to 1 billion passengers. We have when Jet Airways ceased operation, we had about 560 aircraft in the skies. Today it is well over 700 plus. My secretary uses the figure 1,200. I think we'll be having 2,000 aircraft in the sky. Now, in order to deal with this, we need to expand the existing facilities at airport. We need to build new airports, and this is precisely work in progress. Insofar as Chennai is concerned, I'm very happy to sit down with the honorable member, whom I've had the privilege of knowing for many years, and see what we can, as a central government, do to expedite matters which fall either within the domain of the state government or other agencies. Thank you, sir. श्रीमती दर्शना जी. थैंक यू सर. जैसे कि यात्री की सुविधा के लिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो सूरत का ग्रोथ 250% हुआ है. इसी के हिसाब से फ्लाइट की आना जाना भी होता है. रात को 4 फ्लाइट एक साथ में हो जाती है और एयरपोर्ट के ऊपर 3 ही फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है, तो चौथी फ्लाइट आधे पौने घंटे तक बाहर खड़ी रहती है. फ्लाइट एयरपोर्ट के अंदर भी लोगों को बैठने की जगह थोड़ी कम है. हमारा नया एक्सपेंशन का खातमुहूर्त भी हो चुका है, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं निकला है. और सर ने जैसे अवेयर है, उनको अर्बन मिनिस्ट्री भी है, तो उनके पास तो सूरत का ग्रोथ कितना है. और इंटरनेशनल फ्लाइट भी जब मिल चुकी है, जो रात को एक ही बार चलती है, तो मेरा आपके माध्यम से उनको प्रश्न यही है कि जो ये सुविधा बढ़ाने के लिए और एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करने के लिए कितना टाइम और लगेगा. थैंक यू. Sir, I've had the privilege of discussing with my distinguished colleague many times the timelines for Surat Airport. Surat is indeed, the rate of growth of traffic is very, very impressive, and we need to both expand the facilities, and we also need to ensure that the more flights that come in, we have the infrastructure to deal with that. I have not had time to change my views on the timelines which have been given, but my own sense is that there is no change in the timeline since I'd last discussed it with her. And my own belief is that Surat, we've just added flights from Bhubaneswar, we've added flights from I don't need to give her the figure. She knows that the expansion work is of 350 crores and the date of completion continues to be 2022. There's no change in that, and she is aware of this. माननीय मंत्री जी,
माननीय मंत्री जी, मेरे पास कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय सदस्यों की निजी एयरलाइंस के बारे में शिकायत आई है, उनको मैंने आपको कागज दिया है, उनकी भी जांच करा लें एक बार। प्रोफेसर सोगत राय जी, अंतिम वक्त। Sir, the question was regarding the measures taken by government to improve the passenger amenities at airports across the country during the last 3 years. Sir, in our own airport at Kolkata NSCBI Airport, of which I am the chairman of the Airport Advisory Committee, I find the queues growing longer and longer. I spoke to the airport director. He said he had no power in the matter because the security check is done by the Central Industrial Security Force, CISF, which is under control of the Home Ministry. He also told me, the airport director, that he has no control over security because that is under Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, which is also under the Home Ministry. Now the airport authority is being able to give no relief to the passengers who, like in Chennai, have to wait 45 minutes for security clearance. Sir, through you, I'd like to ask the Honorable Minister whether he will take a meeting with the Honorable Home Minister, the powerful Home Minister, so that the problems between the Airport Authority, Ministry of Civil Aviation, CISF, and the Bureau of Civil Aviation Security can be sorted out. The airport director tells me he does not have capacity to issue a single pass without BCAS. तो आप क्यों नहीं बैठते उनके साथ बात करने के लिए और पैसेंजर को रिलीफ देने के लिए? Sir, I am fully aware of the concerns being raised by the honourable member. Calcutta has developed into a major hub. There are flights from Calcutta being used by one of our airlines in particular to entire East Asia, to all other countries in the Far East, Southeast Asia, etc. Sir, the real issue is that Calcutta today has a passenger throughput of 22 million passengers per annum. It has a capacity for 26 million, but it is already utilizing 22 million. And this traffic is growing. We need another airport. Now we need to be able to allow the CISF and the Bureau of Civil Aviation Security to perform their job in the manner required, without in some way to ease the pressure on the queuing. But it will be most international airports in the world which handle 100, 140 million passengers. That's the norm. But our effort is to reduce it. And that reduction will come when we get another airport, we get a widening. But I'm quite happy to meet my senior colleague, the Home Minister or his Ministers of State. I take meetings and I want to assure the member that we are very much seized of the matter and we are determined to find ways and means of easing the pressure and reducing the waiting time on account of security checks at the airport. विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न, यस सर, थैंक यू। प्रश्न पैसेंजर एमिनिटीज और साथ साथ टाइमली अराइवल एंड डिपार्चर फ्लाइट के बारे में है, लेकिन तो भी मंत्री महोदय अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो एयरपोर्ट आपके माध्यम से चालू होने वाला है, क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि 1 मई को सिंधुदुर्ग का एयरपोर्ट चालू करने के लिए कुछ आपने प्रावधान की हो, और करने नहीं किया तो करने की आवश्यकता क्या, आप उसके बारे में हमें जानकारी देंगे? Sir, we stand committed to operationalizing that airport at the earliest. Now, whether the date is 1st May or 10th May, etc., there is, so far I'm told, there is no slippage on that, but we keep monitoring it. Factors beyond our control come. Now, insofar as waiting time at the airport is concerned, we are also trying to install technology. We have provided 200 body scanners which have been installed throughout the country. If you are going through those body scanners, you don't need to wait for being physically checked, etc. So those answer is already provided as part of my answer to the question, and we have other technology which is being implemented all the time.
On 1st May, the flights will be operational. As I said, I stand committed to that. I only hope between now and 1st May we don't have any other sidetracking or any other derailment, but we are committed to that. Thank you. माननीय मंत्री जी, विजय बघेल जी को आगरा वाले सांसद को भी बुला के चर्चा कर लेना, उनका प्रश्न ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 264, श्री प्रताप राव। क्वेश्चन नंबर 264। क्या सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने ग्रामीण क्षेत्रों से खेलों के संवर्धन हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ तो तत्समय ब्यौरा क्या है? सर माननीय, अगर कहीं मिल जाए तो इनकी सीट तो चेंज कर देना। बिल्कुल पोल के पीछे है, खंबा के पीछे है। सर, ग्रामीण भारत के लिए तो हम लोग सबका ध्यान जाना ही चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के लिए हम लोग विशेष रूप से कार्यक्रम बना रहे हैं। और उन्होंने जो सवाल पूछा है माननीय सदस्य जी ने कि रूरल इंडिया के लिए, ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए अलग से क्या प्रोविज़न किया है। हमारा जो भी कार्यक्रम चलता है युवाओं के लिए, वो ग्रामीण इलाकों को खास करके फोकस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारा कार्यक्रम मैं माननीय सदस्य को मैं भिजवा दूंगा अगर उसको डिटेल में पता चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में राष्ट्रीय खेल विकास निधि से और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से संचालित खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने के हेतु अपने कार्य योजना में शामिल करेंगे क्या? और क्या सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार कर रही है? अगर कर रही है तो कहां और कब तक तथा कितनी धनराशि का प्रावधान किया जाएगा? सर, महाराष्ट्र खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है और अभी अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 आए हैं। तो महाराष्ट्र में इसका बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए जो हमने कुछ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एकेडमी को जो सपोर्ट किया है उसमें भी अगर आप सूची देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 आते हैं। अभी अभी हमने काफ़ी, क्योंकि लिस्ट लंबा है इसलिए मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मुंबई के अंदर पुणे, नांदेड़ हो या नागपुर, मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो या कोस्टल, सारा रीजन में जो पोटेंशियल को देखते हुए महाराष्ट्र में हमने बहुत सारा खेल का एकेडमी सपोर्ट किया है और साथ साथ साई का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका एक्सटेंशन हम लोग जो कहते हैं वो भी दे रहे हैं। और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मलखम जैसे जो खेल है महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए भी हम इंडिजिनस गेम्स का नाम से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम दे रहे हैं। दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो मंत्री जी का जवाब है सर, हमने प्रश्न पूछा था रूरल स्पोर्ट्स के लिए और रूरल एरियाज के स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। भारत सरकार बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओलंपिक में कैसे पदक जीता जाएगा, एशियन गेम में कैसे पदक जीता जाएगा। लेकिन जब मैं इनका चार्ट देख रहा था सर, तो दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जो पैसा है वो नील हो गया है। और स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट, जिस पर कि ये पूरा प्रश्न था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं पैसे की कमी के कारण, उसमें भी पैसा जो है मंत्री जी जीरो है। आपने जहां पैसा बढ़ाया है वो खेलो इंडिया है। और खेलो इंडिया की जो समस्या है वो समस्या ये है कि आप कहते हैं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और इस कारण से स्टेट जो है इसके लिए जिम्मेवार है। और उसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है सर, जो मंत्रालय का ही रिपोर्ट है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके कारण कि स्टेट को पैसा नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि एक पूरे दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश यदि स्पोर्ट्स में आगे हुआ, तो जैसे ऐसी जब डेवलप हुआ है उसी तरह से स्पोर्ट्स सिटीज या स्पोर्ट्स जोन डेवलप होने की बात हमेशा बार बार उठती है।
जिसमें टैक्स इंसेंटिव कैसे होगा, जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे होगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट क्या होगा, उसके बारे में माननीय मंत्री जी का विभाग कुछ कर रहा है, या इसके बारे में रूरल स्पोर्ट्स के बारे में भारत सरकार का क्या इरादा है, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपके खेलों के प्रति इतनी रुचि है लोगों की कि कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खेलों के बारे में रुचि है। ये एक अच्छा देश के प्रति संदेश है कि खेलों के प्रति सभी माननीय सदस्यों की रुचि बढ़ी है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। जी सर, आप एमपीज को लेके एक स्पोर्ट्स बनाओ। करते हैं। सालाना सारे एमपीज को स्पोर्ट्स में बुलाओ कि हम एमपीज क्या कैसे हमको तंदुरुस्त रखती है, पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको फिट इंडिया प्रमोट करने के लिए भी बधाई दिया है। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने पिछली बार भी युवा मामला और खेल को आपने चर्चा का मौका दिया था डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में, उसमें काफी चीज का जिक्र हुआ। जो माननीय सदस्य निशिकांत जी ने जो कहा, मैं सहमत हूं। खेलों को बढ़ावा देते देते हम जो पैरा ओलंपिक्स है दिव्यांगजनों के लिए, स्पेशल ओलंपिक्स, इसको भी हम भूलना नहीं चाहिए। उनके लिए भी सदा हम प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे ऑलरेडी हम अभी काफ़ी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के लिए हमने जो भी प्रावधान रखा है, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स इस वक्त सस्पेंडेड है, वो आपस का झगड़ा का वजह से हम पैसे देने के लिए पैसा अभी पड़ा हुआ है, हम देना चाहते हैं, लेकिन वो आपस में झगड़ा करके मैटर कोर्ट में चले गए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो इसके वजह से अभी खर्चा नहीं कर पा रहा। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसको सस्पेंशन को उठा करके हम जल्दी पैसा देने का व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक जो स्पोर्ट्स का रूरल एरिया को, जहां से निशिकांत जी आते हैं झारखंड, वहां रूरल एरियाज में बहुत संभावनाएं हैं, आदिवासी इलाकों में तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके लिए हम सबसे बड़ा तीरंदाज का जो प्रतियोगिता है रांची में, जो अभी हमारा तीरंदाज का अध्यक्ष अर्जुन जी, नाम भी अर्जुन है तो तीरंदाज के वो अध्यक्ष बन गए, तो उसके माध्यम से हम लोग बातचीत करके बहुत बड़ा योजना हम झारखंड में कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, झारखंड सरकार पिछले 5 सालों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ठीक से नहीं दे पाते हैं, इसके वजह से फंड जो है नहीं जा पाया। तो सदस्य जी को और झारखंड के जितने भी सदस्यगण यहाँ है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से जो पैसा दिया है यूसी भेजे, ताकि हम और फंड दे सके। माननीय सदस्यगण, आप लिख कर दे देना, मैं आप लिख के देंगे तो मैं आधे घंटे की चर्चा इसके लिए अलाउ कर दूंगा कभी। 265 और जिन जिन के आधे घंटे की चर्चा में, जिन्होंने आज नाम दिया, उनको उस आधे घंटे की चर्चा में बुला दूंगा। अखिलेश जी आप बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड क्लास एकेडमिक सेंटर है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट का हॉकी का स्टेडियम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, एक मिनट, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक बार गांव में जाकर के उन व्यवस्थाओं को देख करके क्या शुरू कराना चाहेंगे कि नहीं शुरू कराना चाहेंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ जो साइफाई एरिया उस इलाके में जो काम किया है, मैंने उसका रिपोर्ट भी लिया और सदस्य से भी बात किया। वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान के योगी आदित्यनाथ जी से मेरा चर्चा हुआ और ये फैसला किया कि आपके वहाँ जो अच्छे बहुत ही वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी बने हैं, उसको स्पेशल हम लोग ट्रीट करते हुए उसका इस्तेमाल भी करेंगे और उसको एकेडमी के रूप में चलाएंगे। ये आपका मुख्यमंत्री से मेरा बात भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 265 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 265 रखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो उत्तर मिला है उससे बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के स्पेसिफिक पीसी गद्दीगोदर संतुष्ट हो ना आप? अध्यक्ष जी,
दिल्ली से संबंधित मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ ना अध्यक्ष जी? हाँ पूछें। जो सवाल है वो उसका उत्तर मिल गया है, लेकिन इसी योजना के संबंधित जो दिल्ली की योजनाएं हैं वो कब तक लागू हो रही हैं और निर्भया फंड का क्या किया जा रहा है, वो प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। ये सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री, ये निर्भया फंड के आधार पर ये योजना लागू हुई थी। इसमें नेशनल लेवल पर व्हीकल सिक्योरिटी ट्रैकिंग सिस्टम, एक बटन रखी हुई थी, पैनिक बटन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सब बातें थी। अभी हमने क्या किया है कि मैंडेटरी पब्लिक बटन और कैमरा ये मैंडेटरी किया है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो अब इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये स्कीम महिला और बाल कल्याण विभाग की 2013 को मंजूर हुई थी और वो स्कीम अप्रूव करके डिपार्टमेंट ही देता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक पिंक सर्विस शुरू हुई है, कुछ बसेस शुरू हुई है जो केवल महिलाओं के लिए है, तो उसका परिणाम अच्छा मिला है। तो 1 करोड़ की आबादी से बड़े शहर है जहां महिलाओं को ये तकलीफ होती है, वहाँ ये पिंक बस की योजना भी अच्छी चल सकती है। मैं इसके बारे में कुछ बातें इम्प्लीमेंट हुई है, आगे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में लेकर महिला बाल कल्याण विभाग इसके लिए फाइनेंस करती है, स्मृति ईरानी जी, उनके साथ विभाग से बात करके इस योजना को नए इसमें इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे, कुछ नए इनिशिएटिव इसमें लेने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में इसकी वस्तुस्थिति क्या है और साथ ही क्या ये मेट्रो में भी लागू हो रही है, और अगर ये केंद्र सरकार की स्कीम है तो उसके विषय में जरा विस्तृत रूप से बताएं। सर, ये मेट्रो का विभाग जो आता है वो मेरे अंडर नहीं आता है, तो वो सम्माननीय अर्बन डिपार्टमेंट के जो मंत्री है वो शायद बता पाएंगे। पर ये वी हैव ऑलरेडी मेड मैंडेटरी फॉर VTS और ये पैनिक बटन इन रूल्स। अब ऐसा है कि ये हमने मैन्युफैक्चर के लिए मैंडेटरी किया है। रही बात दिल्ली में, अभी तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, पर अभी मैन्युफैक्चरिंग की नई बसेस जो आएगी उसमें कैमरा और बटन लगकर ही आएगी। फिर उसके लिए एक सेंट्रल सिटी में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में खोलना होगा। अगर बटन दबाने के बाद तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी, तो ये भी उसके लिए ये स्कीम निर्भया के बाद आई थी। पर इससे सबसे अच्छी स्कीम यही है जो अनुभव अभी आज मैंने ब्रीफिंग लिया, कि इसके लिए जो पिंक सर्विस हमने शुरू की केवल महिलाओं के लिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफिस से महिलाएं 5 बजे के बाद निकलती है, तो हम लोग स्पेशल बसेस जिसकी ड्राइवर भी महिला हो, जिसके कंडक्टर भी महिला हो और बैठने वाली भी महिला हो, ऐसी स्पेशल पिंक कलर की बसेस, इसकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अगर करेंगे तो वो महिलाओं को उसमें जो भी उनके लिए जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ शुरू होने में फ़ायदा होगा। दिल्ली में योजना शुरू करने के लिए हम ऐसी बसेस देने के बारे में विचार करेंगे। मैं महिला और बाल कल्याण विभाग से ये फंड हमारे पास आता है, उनकी अनुमति लगेगी, उनसे बातचीत करने के बाद इसका निर्णय फाइनल करेंगे। श्रीमती कनिमोजी जी। Thank you, sir. I'd like to ask the minister, the Nirbhaya fund. Some of the state governments have said, like even in Tamil Nadu, the Nirbhaya fund has not been used at all. A large portion of the Nirbhaya fund, the government had said that it's clueless what to do with it. So I'd like to know what Tamil Nadu government has done as far as the security of women when it comes to your department in the road transport. What are the schemes they have brought in and what they have done to protect women and utilizing the funds? Speaker Mahoday, already for Tamil Nadu, the 20.35 project cost is already sanctioned. The problem is that state government has to contribute 40%, and that is the defect of this scheme. No state government is not in position to contribute 40%. That is the basic problem. So everywhere that is the problem related with every state, where we have to find out the solution. If the state government are not in position to finance it, we need to finance them 100%. Exactly on that point of view, we need to change the scheme. And basically the fund is belong to Mahila and Bal Kalyan Vibhag. So I need to take the permission from the Smriti Irani ji. By taking the appropriate step for that, I will have a meeting with her
and then we will clear it and we will sanction 100% fund for Tamil Nadu. That is श्रीमती महुआ मोइत्रा जी. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'd like to ask a question to the Honourable Minister, who's always very proactive and helpful when it comes to all these issues. Sir, in this question of the big metro cities, in terms of women's, at night when we see availability of public transport for women, either there is an Uber taxi, but for a lot of the middle class, still taxis are expensive, especially with Uber and Ola, with their night pricing is sometimes 1.4x, 1.5x, so it's expensive. The second thing for buses, when I speak to a lot of young women who don't want to take buses at night, the problem, even if it's a woman bus, is that you have to wait in a bus stop for the bus to come. So sometimes you're waiting for 30 minutes, 35 minutes, which is not good. The other issue, the other thing here, to people like during the day, women take autos or scooters. So what I wanted to suggest to the minister is, at least for the metro cities, this will also create employment. Is there, the government can start an auto service which can ply all night or at least till 4 a.m. or something, which women can use with a number which they can call. So it is a cheaper form of a taxi service which can be used, and which is primarily for women. So which is a secure service where you can put in via a phone number so the family can track it, and it's a midway between waiting for a bus and midway between an expensive taxi, which I think a lot of younger people and younger women who don't have to be dependent on a male member to drop them or get into unsafe situations. This was a suggestion, if it could be followed through. Thank you, sir. Honourable Speaker, it's a good suggestion. We will think on it. But one of the innovative schemes is already launched by the government, by department, where I need your cooperation. Actually, we have already taken a decision. The two-wheeler on electricity and biofuel, it will be exempted from the permit. So already there is a provision, and the department has already issued the guideline for the state government that there will be particularly the ladies who can operate two-wheeler as a taxi, and there will be an electronic meter, and they will give the services to the particularly only for ladies. So actually the scheme is already we have recommended to the state government for the two-wheeler, three-wheeler taxi on electric or biofuel make exempted from the permit, and that is the reason by which it is going to create more employment potential for all the sectors. सर हुआ नहीं, ये तो सवाल मैंने आपको पूछना चाहिए. मैंने अपने तरफ से ये एडवाइजरी भेजने के बाद मैं थोड़ा सा व्यथित होकर आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं. ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो जिस प्रकार से काम चल रहा है, वो लोग कोई नई बातों को, नए मॉडर्न बातों को होने के लिए इतना रेजिस्टेंस है, वो ये करते नहीं है. अब आपको पता है कि परमिट मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और ये परमिट को मिलने के लिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ऐसे एग्जम्पशन को होने नहीं देते. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैंने एडवाइजरी भेजी है, ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, मैं कानून नहीं बना सकता, इट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट. आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए, और सम्माननीय हमारे सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सरकार उसके ऊपर विचार करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी. प्रश्नकाल समाप्त. नेक्स्ट टाइम प्रश्नकाल. माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई. मैंने स्थगन प्रस्ताव किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है. मैंने स्थगन सूचना, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, the number of defaulting and collapsing banks has been increasing in an alarming space. Sir, people of our country, especially those depositors, they have been deprived, cheated, fleeced by the banks in a regular interval. Sir, one after another five banks have been collapsed. It is eloquent testimony of this government's mismanagement and failure. आम लोगों की पैसा लूटा जा रहा है. येस बैंक पे क्या हुआ? सर, येस बैंक की सरकार की निगरानी में, सर सरकार की निगरानी में येस बैंक लूटा गया. सर, अभी कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा पैसा निकासी नहीं होगा. क्यों ऐसा जुलूम हो रहे हैं? सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र
आप नियम के तहत आया, मैं बोलने का मौका दूंगा। आप नियम के तहत आया, बोलने का मौका दूंगा। श्री आइटम नंबर 2 श्री किरेन रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of business. आइटम नंबर 3 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. आइटम नंबर 4 श्री रतनलाल कटारिया जी। सभा पटल पर रखे जाने वाले माननीय मंत्री जी आएंगे जब मैं बुला दूंगा आपको। अभी मंत्री जी नहीं है। मंत्री जी आएंगे जब बुला दूंगा। अभी मंत्री जी नहीं है। सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। मंत्री जी की मौजूदगी में बुला दूंगा आपको। दो ही जवाब दे देंगे। आइटम नंबर 5 श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. आइटम नंबर 6 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री के रघुराम कृष्ण राजू। Honorable Speaker, sir, I rise to present the first action taken report in both Hindi and English versions of the Committee on Subordinate Legislation as listed against my name in today's order paper. आइटम नंबर 8 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Sir, I rise to lay on the table of the House a copy each English and Hindi versions of the two statements of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. Sir, I also wish to present a copy each of the third, fourth and the fifth reports, English and Hindi versions of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। I said it. Item number 10, Sri Jain Sinha ji. Sir, with your permission, I rise to present a copy each of the 5 reports, Hindi and English versions, of the Standing Committee on Finance is listed against my name at serial number 10 in today's revised list of business. Item number 11, Sri Rakesh Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज के आदेश पत्र में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगे संबंधी कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 6, 7वें और 8वें प्रतिवेदनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12 श्री राजीव प्रताप रूडी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को। महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 276वें, 277वें, 278वें, 279वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी में पाठ में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 13 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding seeking exemption from framing of 2 rules under ERA Act 2008, namely ERA Performance Standards relating to quality, continuity and reliability of service for major airports rules and Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal ERAT Group A and B Post Recruitment Rules. Sir, I lay the statement. आइटम नंबर 14 श्री मनसुख मांडेया जी। Sir, I rise to move the leave to introduce the Major Port Authority Bill 2020 to provide for the regulations, operations and planning of the major port in India and to vest the administration's control and management of such port upon the boards of Major Port Authority and for matter concerned therewith or incidental thereto. Shri Tharoor ji. I rise to make an objection under Rule 72 of the Rules of Procedure to the introduction of this bill on the following 4 grounds, but the overall ground, sir, is that this bill is not ready for introduction.
Far-reaching changes in the management of our ports have been contemplated in the bill, but the draft is very vaguely and carelessly drafted, sir, and it should be reintroduced after revision. I'll give you the 4 reasons right now, sir. First one, they've created a 13-member board to manage ports, where the bill actually provides for 7 of these out of 13 to be from private persons. The majority, in other words, dominating with private persons. The qualification and experiences of the members have not been mentioned in the bill, sir. The chairperson and deputy chairperson, who have the power to exercise supervision and control over the acts of all employees of the major port authority, are to be appointed on the recommendation of a selection committee whose own constitution is unclear, is not specified in the bill, sir. Second objection, completely unequal representation of private interest vis-a-vis employees' interest. They've got 4 members, independent members, representing basically the interests of the business community, and only 2, sir, of the employees. Third objection, sir, the bill only provides a restriction period of 1 year for the board members to seek re-employment after the tenure of their offices. This is an insufficient safeguard which will promote bias in the discharge of the functions so they can get a job afterwards with the same companies they're regulating. And fourth, sir, one more omission, the bill fails to provide a clear demarcation between port-related use and non-port-related use, giving rise to ambiguity about the lawful use of power. The standing committee had prescribed 2 separate definitions for these terms. The bill has not employed either of them, sir. I would like to stress that ports are a national property. They're meant for public and social benefits. People give up their land, states give up the land to construct ports in the larger interest of the prosperity of the country. This is too important an issue to be dealt with in this cavalier fashion in this hastily drafted bill. I therefore object to its introduction. I ask the government to go back, study the bill, rewrite it, and come back with these concerns addressed, sir. Thank you, Mr. Speaker. Shri Sogat Rai ji. Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Major Port Authorities Bill 2020. Sir, we have been complaining for a long time in this House that this government seems set, determined to pave the way for privatization of all government assets. Before, we have seen airports being handed over to private parties. We know how private ports are operating in Gujarat, including the Mundra port, operated by Adanis. Now, suddenly we have a Calcutta port, which is 150 years old. The Prime Minister himself went to inaugurate the 150th celebration. Now they have constituted in such a way that instead of present board of trustees, they have got major, they have got a board instead of a board of trustees. Sir, क्या हुआ? इसमें क्या 4 people representing industry has been brought in, and they will enable the board to use its property assets and funds in such manner. आप जब चर्चा, सर क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आप बिजनेसमैन को ये बोर्ड में लाया जा रहा है. इस विषय पर जब डिटेल चर्चा हो, जब चर्चा करें. लीज आउट द अभी आप बिल की अथॉरिटी पर चर्चा करें. ऑलरेडी राइट डॉग्स आर बीइंग गिवन ओवर टू, ऑलरेडी राइट डॉग्स आर बीइंग गिवन ओवर टू प्राइवेट. Sir, I would like to oppose the introduction of the bill, Major Port Authorities Bill 2020, under the Rule 72(1) of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, the above bill is a continuation of the existing policy of privatization set in a motion by the Union government, which is accelerating disinvestment of public sector undertakings. Sir, the bill is intended to accord an overarching control to private entities to wrest vital national assets, sir. Sir, the bill questions the established federal structures as overarching powers are granted to the ports authorities over the state government. Sir, when such unregulated powers are provisioned to private sector in development of critical national infrastructure, there exists a possibility of a separation of control which can regard to law. Sir, the bill also includes
और ले से फ्यांग होते हुए नुब्रा तक के जो 2 पावर ट्रांसमिशन लाइन है, क्या ये अभी तक पेंडिंग है? यदि है तो इसका क्या कारण है? भारत सरकार इसको कंप्लीट करने के लिए क्या एक्सपेडाइट इसको कर रहा है? यदि कर रहा है तो इसका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हुए और इसको कंप्लीट करने से जांस्कर तक और ले से फ्यांग होते हुए नुब्रा तक के जो 2 सर, ये दोनों लाइन महत्वपूर्ण है और ये दोनों लाइन के बनाने का और इसके साथ जो एसोसिएटेड सब स्टेशंस हैं उसको बनाने के लिए टेंडर हो चुका है। जिस समय ये लाइन दिया गया REC PCCL को जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे नहीं किया था। तो जब ये अलॉट हुआ उसका डिटेल्ड सर्वे करना पड़ा। बिना सर्वे के उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था 357 करोड़ का। सर्वे के बाद और वो एस्टिमेट बनाया था 2014 के शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार। तो सर्वे के बाद वो रेट्स रिवाइज करने पड़े और जबकि रेट्स रिवाइज करके फिर सबमिट किया गया जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले वो कारगिल से चाहते थे जांस्कार तक लाइन, उसके बाद कारगिल से पादुम, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो रूट में कुछ दिक्कत है तो आप द्रास से पादुम तक कर लीजिए। तो फिर से सर्वे करना पड़ा। जो डिज़ाइन था उसको फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। ये एयर इंसुलेटेड वहाँ पर सब स्टेशंस नहीं चलते हैं, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस लगाना पड़ा। और जितने भी टावर्स वगैरह थे, चूँकि बहुत ठंडा उसका एटमॉस्फेयर है, उसके लिए स्पेशल चाहिए था तो उसका फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। तो सारे टावर्स के डिज़ाइन हो गए हैं। ये उसमें से 3 तरह के टावर के टेस्टिंग भी हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करने के लिए टेंडर भी फ्लोट हो गया है। 2 पार्ट में टेंडर फ्लोट हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर 13/3 को आने को है और दूसरा जो सबस्टेशन इत्यादि का टेंडर है वो 16/3 को आने को है। तो सभी शक्तियां भारत सरकार के पास ही रहेगी। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 357 करोड़ का एस्टिमेट दिया था, वो बढ़ करके हो गया है 1063 करोड़। तो एडिशनल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडिशनल राशि की मांग हमने की है सरकार से, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास पहले तो कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो एस्केलेशन है इसको मीट करे। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास इतनी राशि नहीं है कि वो एस्केलेशन को मीट करे। तो मैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय से और राशि के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय के माध्यम से हमने भेजा था मांग, फिर मैं मांग भेज रहा हूँ। लेकिन टेंडर हो गया है। टेंडर रिसीव होने पर कुछ राशि भी हम लोगों ने एडवांस कर दिया है और काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, विस्तार से मंत्री जी ने जानकारी दिया। और साथ ही साथ में ये भी विधेयक के पूरे स्थापन के प्रस्ताव का विरोध न केवल इस आधार पर कि विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, बल्कि अन्य आधारों पर भी किया जा। एक मिनट, अगर आसन गलत प्लेस कर रहा है तो इस पर डिबेट कर लेंगे भी। मैं पढ़ लूं पूरा विषय। जैसा कि नियम 72 की भाषा से स्पष्ट है कि किसी विधेयक के पूर्व स्थापन के प्रस्ताव का विरोध न केवल इस आधार पर कि विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, बल्कि अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है। जहां पूर्व स्थापन के प्रस्ताव का विरोध विधायनी क्षमता से भिन्न आधारों पर किया जाता है, पूर्व स्थापन का विरोध कर रहे सदस्य को एक अत्यंत संक्षिप्त वक्तव्य देना होता है। नियम 72 नियम 1 का पहला परंतु स्पष्ट वर्णित करता है, यदि विधेयक के पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को विधेयक के उपबंधों पर अपने मत रखने की अनुमति दी जाती है। तो ये मेरी आज्ञा से ही अनुमति आपको मिली है। Fully agree with the ruling of the Honorable Speaker, but it is absolutely it is the freedom or authority of the Honorable Speaker whether
right to oppose is permitted. That means whether observation can be made, that is also there. But not only the legislative competence, but also it can be opposed. But it is absolutely within the purview of the Honorable Speaker whether to permit to make a brief statement. That is 70-1. First proviso is regarding that. We fully abide by it. मुझे भी अच्छा लगता है जब सदन पर विधायी कार्य पर एक सारगर्भित चर्चा होती है और होना भी चाहिए। इसलिए उन माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर इन विषयों पर चर्चा करते हैं और मैं उसकी हमेशा कोशिश करता हूं कि उनको संपूर्ण मौका दिया जाए, क्योंकि कानून देश के लिए बन रहे हैं और ये संसद विधायी कानून बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए कानून देश के हित में बने, इसके लिए चर्चा, संवाद, वाद विवाद होना चाहिए, सहमति असहमति भी होना चाहिए, लेकिन चर्चा का पूर्ण का मौका दिया जाना चाहिए, जो मैं हमेशा आप लोगों को पूर्णता मौका देता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करेंगे। आई इंट्रोड्यूस द बिल। सर ये आप जानते हैं सर, ये सारे सदन जानते हैं कि हिंदुस्तान में येस बैंक को लेकर लाखों की तादाद में लोग परेशानियां में गुजर रहे हैं। सर ये आम लोगों की पैसा लूटा जाते हैं और वो भी सरकार की निगरानी में। सर एक के बाद एक प्राइवेट सर लोगों को अभी कह जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा तुम पैसा निकास नहीं कर सकोगे। लोगों को पैसा लूटा जाता है, फिर लोगों को कहा जाता है कि इसको भरपाई तुम करो। आप मौका उठाए, लोगों का पैसा लूटा जाता है और फिर लोगों को कहा जाता है तुम इसको भरपाई करो। इसलिए एसबीआई इनको पैसा देने के लिए और बेल आउट पैकेज बना रहे हैं। से ये सरासर हमारे बैंकिंग बर्बाद कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय पर स्टेटमेंट हो रहा है माननीय मंत्री जी का। I rise to apprise this August House of some recent developments pertaining to Indians stranded in Iran as a result of the coronavirus situation. Before I come to the Iran situation, kindly allow me, Honorable Speaker, sir, to... Before I come to the Iran situation, kindly allow me, Honorable Speaker, sir, to describe the larger global landscape with respect to coronavirus and our approach in responding to this international challenge. As all honorable members are aware, the global spread of coronavirus is now real and serious. Yesterday, the WHO declared it as a pandemic. As a country whose citizens are spread across the world, this is a matter of utmost concern. At the same time, it is absolutely essential that we react responsibly and soberly. What we say and what we do should address problems, not spread panic. It is natural that there would be situations of different degrees of gravity in different parts of the world. As a government, we will assess these in terms of their urgency and seriousness and respond accordingly. As the House would have noted, where specific interventions are required, as in the case of Wuhan in China, the Diamond Princess crew in Japan, or now the pilgrims in Iran, we will take necessary action. But these are exceptional situations that require exceptional response. At this time, travel in itself is not recommended as it only heightens risks. Where communities are understandably anxious, we should reassure them and encourage the observance of globally recognized precautions and procedures. An excessive sense of alarm would only be to the detriment of those who are really in need. Let me, sir, now turn to the issue of Iran. As per available information, there are about 6,000 Indian nationals in various provinces of Iran. These include 1,100 pilgrims, mainly from the Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir and the state of Maharashtra. Nearly 300 students, primarily from the Union territory of Jammu and Kashmir. About 1,000 fishermen
from the states of Tamil Nadu, Kerala and Gujarat, and others who are on longer term stay visas in Iran for pursuing their livelihood and religious studies. As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from February 27th. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan are naturally reaching out immediately to Indian nationals in Iran and ascertaining their welfare. An advisory was issued asking our nationals to observe appropriate precautions. Emergency contact details of the Indian mission were put out. Embassy and consulate officials have been reassuring Indian nationals and ensuring that they are in good health and had adequate provisions. I mention this as an overall approach, but also with specific reference to the fishermen community whose welfare has been raised with me by some honorable members. Given the large number of Indians in Iran, it was natural we should seek to sequence the return, taking into account their location and exposure. The initial focus is on visiting pilgrims. Many of them are in Qom, where coronavirus incidence has been very strong. The nature of residency also increases the risks of exposure, and age is a factor to be taken into account. As their welfare is being currently addressed, we are now focusing on Indian students. Many of them are studying medicine and are fully aware of the precautions to be taken in this difficult situation. The embassy is in regular contact with them as a group. Our understanding is that the region where most fishermen are located has not been affected so severely. These factors will guide our approach in the coming days. Over the last few days, government has made focused efforts for the safe return of stranded Indians, given the scale of COVID-19 and its pressures on Iran's own resources. A team of 6 Indian health officials have been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7th March. These were tested and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children who tested negative were repatriated in IAF C-17 special flight on 10th March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which have been tested in the National Institute of Virology, Pune. So far, 299 of them have tested negative. Some more results are awaited. We continue to collect more samples in Tehran, and our endeavor is to ensure the earliest possible return of these after appropriate testing and screening. We are working with the Iranian authorities to operate some limited commercial flights to facilitate this early return. Our embassy, in cooperation with the Iranian authorities, is making arrangements for the medical care and monitoring of those who have tested positive. Our embassy staff and medical team are working around the clock under very difficult conditions to ensure the objective of earliest possible return. The House will appreciate their operational constraints given that there have been restrictions instituted for public health reasons in Iran. It is not easy to organize transport, accommodation and other logistics, and the Iranian system is very stretched, but we do appreciate the cooperation in these very difficult circumstances. Honorable Speaker, sir, I visited Srinagar recently and I took the initiative to meet parents of some of the students who are in Iran. Their anxiety at this time is completely understandable. I shared with them in detail the ground situation and sought their understanding. I assured them that the government would facilitate the earliest possible return of their children, and I would like to share with the House that the sampling of these students has begun today. Our consulate in Bandar Abbas are in touch with Indian fishermen who are in the southern provinces of Iran, including the cities of Asaloye, Chiruye and Kish. Some of them have been visited and others would be soon. Provision of essential supplies to them is being ensured. As per available information, all of them are in good health. I assure the House we will continuously track their welfare and respond to their needs. Sir, the House will surely appreciate that few other nations have done what we have with respect to end COVID-19.
The global coronavirus situation is being monitored on a continuous basis by a group of secretaries headed by Cabinet Secretary and by a group of ministers headed by the Minister of Health and Family Welfare. My ministerial colleague has already apprised the House of measures being taken to control and contain the spread of virus within the country. Prime Minister himself has reviewed the situation from time to time. We have been regularly issuing travel advisories and visa guidelines that reflect the situation in countries of concern. In many respects, India has been ahead of the curve in taking precautionary measures. So, the House should also be aware that in view of the further spread of coronavirus, the government decided yesterday to take more stringent measures in regard to international travel. The reason for this is obvious. All the cases so far have come directly from those who have a travel history. In doing so, we are very clear that we will do whatever we must to ensure that the spread of coronavirus is restricted and that the health security of India is ensured. Let me spell out some of the measures that the group of ministers at a meeting yesterday approved. They will come into effect at 1200 hours GMT on 13th of March at the port of departure. These measures, sir, include 1. All existing visas except diplomatic, official, UN, international organizations, employment, project visas stand suspended till 15th April 2020. 2. Visa-free travel facility granted to OCI card holders has also been kept in abeyance till April 15, 2020. 3. All incoming travelers, including Indian nationals, arriving from or having visited China, Italy, Iran, Republic of Korea, France, Spain and Germany after 15 February shall be quarantined for a minimum period of 14 days. It was also decided that any foreign national who intends to travel to India for compelling reason may contact the nearest Indian mission. Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad. On their return, they can be subjected to quarantine for a minimum of 14 days. International traffic through land borders will be restricted to designated checkpoints with robust screening facilities. These will be notified separately by the Ministry of Home Affairs. Sir, the situation in Italy is now emerging as a cause of great concern. I would like to share with the honourable members that steps in this regard have already been initiated. It has been decided to make provision for testing primarily for students and compassionate cases in Italy and collect samples for testing. A medical team is being sent there from India. Those tested negative will be allowed to travel and will be quarantined on arrival in India for 14 days. The challenge is growing by the day in Europe and we will respond accordingly. We have appointed in the Ministry of External Affairs a senior official to coordinate our coronavirus response internationally. A nodal office is being established to speedily process requests for assistance that are naturally expected to increase from different parts of the world. There will be some pressing, some unusual situations, and we recognize that and we will respond to that. The details of the nodal office will be made available very soon. Honorable Speaker, sir, I am confident that the honorable members of this House will join me in commending the efforts of our medical teams, the officials of the Indian embassies and consulates, the Air Force crews, the Air India crews, and all those who in India are working tirelessly and selflessly to ensure that our people in Iran and other countries are safe and can return expeditiously. The coronavirus challenge will require a focused and sustained effort on our part, and we will keep the House apprised of developments. Finally, I would like to strongly emphasize that the government remains fully committed towards the welfare of our nationals in any part of the world, as well as ensuring the security and safety of our homeland. This has been the hallmark of our foreign policy. I thank you. एक मिनट विराज, एक बालू जी एक सेकंड, मैं एक मिनट परमिशन दे रहा हूं। मैं
माननीय सदस्यगण, मंत्री जी के स्टेटमेंट पे तो चर्चा हो नहीं सकती, लेकिन मैं शून्यकाल में आपको जो महत्वपूर्ण सुझाव हो, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। श्री बालू जी। Sir, I appreciate fully the efforts made by Honorable External Affairs Minister of our country. The only thing some time back on the representation made by Kanyakumari fishermen, the parents of Kanyakumari fishermen, has been forwarded to the Honorable Minister as well as Prime Minister by my leader Dr. Stalin, M.K. Stalin. I want to know the response from the Honorable Minister, whether are they safe, whether the people, the fishermen from Kanyakumari and Deep South are safe and Toothugudi are safe, or what are the arrangements made by your good self to deport all these people? ये शून्य काल है, एक साथ जवाब दे देना। हाँ, एक साथ एक बालू जी, प्लीज बालू जी, आप सभी माननीय सदस्यों का लिख रहे और नामजद आपका एक एक का जवाब देंगे। वो सिंगल इशू का आंसर देंगे आपको। स्टालिन जी ने कहा है तो आप कह रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट में, तो स्टालिन जी नहीं कह रहे यहाँ पार्लियामेंट में, आप कह रहे हैं। मैं आप जवाब देंगे। एक मिनट। एंटी एंटोनी एक मिनट। सिंगल मेंबर्स का सिंगल जवाब देंगे। Thank you for allowing me. मेंबर मिनिस्टर रेडी, kind attention. मंत्री जी रेडी है जवाब देने को। मंत्री जी रेडी। Thank you, Chairman. As we all know, coronavirus has affected over 100,000 victims across the globe as of today and terrified the entire world. Especially after COVID-19 was officially declared a pandemic by the World Health Organization last night. The Court of Director General of WHO, pandemic is not a word to use lightly or carelessly. आप संक्षिप्त शॉर्ट में आप Currently in India, there are 58 active cases, out of which 14 are from Kerala and 11 active cases from my constituency, Pathanamthitta. I strongly believe that these cases could have been avoided because the 3 passengers who came from Italy on 29th of February were let loose because there was no screening in the airport at Cochin, which has led to a wild chase of thousands of primary and secondary contact. It was only after March 3rd the message for stringent screening measures was ordered. As of today in Kerala, over 250 people are hospitalized and 1,495 are under observation and 900 people are under home observation. Naturally, the news of the outbreak came out. The social and office life has not just halted and ceased to exist my constituency. Sir, there is one important issue. There is a severe shortage of masks and sanitizers, and moreover, the price of both these commodities have shot through the roof with the necessitated mandatory demand. N.K. Premchandra ji. Sir, one minute. Oh, 1 minute. 1 minute. No, 1 minute. This product under essential commodities. Only for clear. Control this outrageous prices. Only suggestion. Yeah. That's my suggestion. Sir, I must kindly insist the central government to provide the state of Kerala all possible assistance medically and financially to overcome this horrible reality. To brace for any further. Thank you. N.K. Premchandra. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, the entire House fully appreciate the efforts taken by the ministry as well as our missions abroad in dealing or addressing the issue of corona in order to prevent the coronavirus spread. Sir, as rightly Sri Anthony has suggested, you have stated in your statement that stringent measures have already been taken so as to have tests in the airports. But it is quite unfortunate to note that 3 persons from a family has come to India. There was no screening and there was no testing. That is why the reason the entire Kerala is now in a panic situation. The universities are closed, colleges are closed. So I would like to appeal to the Honorable Minister. When you take the precautionary measures, so many NRIs
over citizens of Indian origin. Sogat Rai ji. Sir, my only question is, my clarification is, what would be the fate of those passengers who are stranded in the airports? Every day we are getting the telephone calls from the passengers who have already obtained the ticket. They are in the airport, but only country which has total ban is being imposed by India. What would be the fate of those passengers who are stranded in various airports? They are helpless. They are calling us. Would you like to clarify that point also? With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Sir, Sogat Rai ji. I appreciate the steps so far taken by the government of India in the Health Ministry and the External Affairs Ministry. From yesterday, today's headlines say India quarantines itself. That means no new visas will be allowed excepting for United Nations and other such designated officials. The government has taken steps earlier to send a plane to Wuhan in China. Then from Iran, 58 Indians have been evacuated. 83 people have arrived in Delhi from Italy, and our medical team is being sent to Italy. My question is simply this, that there are 5 countries which are designated. All incoming travelers, including Indian nationals, arriving for or having visited China, Italy, Iran, Republic of Korea, France, Spain and Germany shall be quarantined. My simple question is, we have got information about China, about Iran, about Italy. I would like to know from the Honorable Minister the position with regard to Republic of Korea. Sir, I would like to know the position with regard to Republic of Korea, France, Spain and Germany. How many Indians are there, whether they are wanting to come back, and what are the steps government is taking with regard to them. Thank you, sir. असलैन मुर्शिदी जी, एक मिनट, आप सर, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के तलबा का और वहाँ के जो ज़ायरीन हैं उनका मामला है, सरकार का रवैया लाताल्लुकी का रहा. इट हैज़ बीन एन एटीट्यूड ऑफ अपैथी एंड इंडिफरेंस. आज से 3 हफ्ते पहले मैंने मंत्री जी की नोटिस में लाया कि ऐसी पीड़ा है लोगों की, वहाँ के बच्चे छोटे हैं जो 20 साल से कम उम्र के हैं या 20 साल के अराउंड है, तो उनको यहाँ लाने का प्रयास किया जाए. और तब से आज तक कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक जहाज आया है. तो मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी हमें कहें कि एक टाइम फ्रेम दे, वो let him step into shoes of the parents of the children. As was mentioned by Andrew Anthony, 14 cases have been identified in Kerala, out of which 3 are from my constituency, and they are just 5 kilometers away from my house. Sir, I would request the government to take immediate steps for recovering them and do necessary. Stranded in the airport. Sir, I want to bring to notice of the Honourable Minister through you is that from my constituency, 11 people are stuck in Mashhad in Iran, and the Indian embassy is telling them to come to Tehran. They cannot come. Sir, my request to you that please ensure that they come to Tehran and bring them back. They're all pilgrims. And will you also add United States in those countries, because US is now the increasing number of virus in US also. Thank you. E.B. Ranji. 1 second. Sir, Kerala has been badly affected, as everybody knows, sir. Sir, my request to the government of India is criminal cases should be registered against people who are not cooperating with the health authorities, who are spreading panic in the public, in the social media. And also, sir, there are lack of virology institutes in India. So, southern part of India, especially Kerala, should be given testing centers and virology institutes, sir. Sir, one suggestion, sir, biosafety cabinet and PCR machine should be provided by the ICMR, sir. B. Mehtab ji, no. Sir, my Kanyakumari constituency, sir. Sir, Kanyakumari constituency. Sir, I appreciate. Health Ministry will appreciate. Last time, iski maar. I appreciate the steps the External Affairs Ministry and the Minister personally has taken, and we also appreciate, the whole House appreciates the steps that our embassy has been taking throughout the world.
My concern here is, as I had said on the earlier occasion, I had also appreciated the steps the health minister has taken during this to be taken, needs to be made. That needs to be enhanced. We have only 2 centers, one in Kolkata and one in Pune. Now the regional medical research center, as for instance, we have one in Bhubaneswar which is also testing. But each AIIMS, as we have large number of AIIMS institute throughout the country, they also should try to have this type of testing. But international flights, as has been mentioned, sir, Air Asia is an international flight which flies from Bhubaneswar International Airport to Malaysia. But adequate screening facility is not being available in those. But here, sir, one more concern which I would like to mention here. Those people who have travelled by international flights into India during last 2 weeks, how we are going to trace them, whom they have contacted, whether this is very much necessary, because it is not by quarantine the country today we can stop. Those who have already come back to our country, that H. Basant Kumar. Thank you, sir. Our Kanyakumari fishermen people are nearly 700 people are in Iran and also 3-4 islands. So far they have provided food, all those things. Yesterday they were told that you have to go mid-sea and stay there. They are not allowing to stay there, sir. Please send a flight to Iran. Man, sir, they are very much afraid, sir. Please, sir, government should take. भगवत मान जी सर माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हैं। सर इटली के एयरपोर्ट पर, क्योंकि इटली पूरा कंट्री लॉकडाउन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, 30 भारतीय स्टूडेंट हैं, ज्यादातर उनमें पंजाब के हैं, उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट तो टोटली बंद हो गया, उनके खाने पीने के लिए भी उनको चिंता हो रही है। 30 भारतीय स्टूडेंट इटली के रोम एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं सर, उनको लाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाए सर। I first like to thank the Minister for his statement, and he has been responding to all our queries, and he's been very helpful that way. I'd like to know, you've mentioned in your statement about the quarantining people who come in for 14 days. Where are you going to quarantine them? You know now that there are Indians working all over the world and students studying in different parts which have not been affected badly also. But will you have a helpline which students and people working in different countries can contact for some kind of help if they need? Thank you. कांग्रेस के सभी मान्य सदस्यों की ओर से मैं अधीर रंजन जी को बुलाता हूं, सदन के नेता। आपके नेता बोल रहे हैं। Sir, I must appreciate the endeavor taken by our Honorable Minister on his own capacity and the government in order to stem the rot insofar as coronavirus is concerned. Already, the coronavirus has assumed an pandemic proportion, much to the consternation of all of us. So now we have to think and act globally. सर, हमारे बंगाल के और खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट के लाखों की तादाद में लोग सऊदी अरब, वेस्ट एशिया में रहते हैं। सारे गरीब लोग हैं, अब उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होते हैं। सर, एक सऊदी अरब से एक आदमी हमारा डिस्ट्रिक्ट में आए थे, आने के बाद बुखार हुआ और मौत हो गए। सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना तफरीक पैदा हो गए। तो सर, बाहर में जो है, खासकर सऊदी अरब और तरह तरह की जहां लेबर लोग ज्यादा जाते हैं, ये लोग लेबर लोग जहां वो लोग वो रहा इलिटरेट है, उन्हीं लोगों को जानकारी के लिए आप एक हेल्पलाइन खोलिए और एक साथ स्वास्थ्य मंत्री और हमारा विदेश मंत्री, देयर शुड बी ए कंसर्टेड एफर्ट बिटवीन द टू कंसर्न। सिन्हा जी, एक मिनट को सुझाव दो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम मैं माननीय विदेश मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से और जितनी स्फूर्ति से इस महान संकट को संभाला है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये एक अकल्पनीय संकट है। पूरे दुनिया में ऐसा एक पैंडेमिक पहले कई दशकों से नहीं आया है
और इसे हमें संभालने की जरूरत है और हमें बिल्कुल ठंडे सोच से और हर ठोस कदम लेकर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। और अगर आप देखें कि हर बिंदु पे सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं रिस्पॉन्ड किया है, आप सबको, माननीय सदस्यों को, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें संतोष होना चाहिए कि चाहे वो बॉर्डर सीलिंग का मामला हो, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला हो, चाहे वो प्रचार का मामला हो, चाहे वो संपर्क का मामला हो, हर विषय पे सरकार ने ठोस कदम लिए हैं और हमें उन्हें पूरी तरीके से समर्थन और सहयोग देना चाहिए। माननीय सदस्य कि हम लोग इस महान माननीय सदस्य सभी माननीय सदस्यों ने, एक मिनट, सभी माननीय सदस्यों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है और जो भी माननीय सदस्य यहां खड़े हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा व्यक्तिगत रूप से उनको बुलाकर उनसे चर्चा कर ले, उनके अमूल्य सुझाव ले लें, क्योंकि यहां पर आपको 130 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधियों के सुझाव मिलेंगे तो सरकार और बेटर एक्शन को कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Sir, let me briefly respond to the observations made by various honorable members. Let me start with T.R. Baluji's question about the fishermen in Iran and the arrangements which are made for them. At this moment, I want to assure you, we have no coronavirus case among the fishermen, any of them. But they have had difficulties getting food and provisions. Our consulate is in touch. They will remain in touch. We will monitor that. We are setting up a nodal center to actually check their welfare and the welfare of other people. Anthony ji raised the issue of no screening in Kochi. That is not my understanding. My understanding is that there was screening instituted in all international airports. We have tightened it since then, but I can assure you on behalf of the group of ministers that this is something which is very much on our agenda. Premachandran ji again raised the issue of tests. He also referred to people who are stranded at airports. So I want to assure you that we are today helping the people who are stranded at airports. We are preventing a sense of panic. And I also want to clarify, India has not imposed a ban. India has said that people from certain countries who are coming here, if they come here, have to go through quarantine. In certain cases, compulsory quarantine. In some cases, discretionary quarantine. And Indian citizens who are coming back, obviously will come back to quarantine conditions if that requires. Saugata Roy ji raised an issue again saying we are not issuing new visas. What we have done is we have kept in abeyance certain categories of visas for certain countries where there is prevalence of coronavirus. We are not the only country that has done that. A lot of other countries have also done that. We were among the earliest to do it. But you asked what is happening in Korea, France, Spain and Germany. We have not seen the kind of crisis situation that we have seen in Wuhan, or we are seeing in Iran, or we are seeing in Italy. So we have to prioritize. We have to see where the problem is more severe, what kind of people are affected. For example, pilgrims are affected because they live in conditions where the spread of disease is very possible. Students are affected because the dormitories are closed. So we also have to see where should we give the attention, where should the resources be given. So I think they will understand it. I would urge all honorable members to understand it as well. Shri Masoodi ji raised an issue about our response time in Iran. I would like to share, sir, through you, with the honorable members, that it has been a very difficult situation in Iran because their own system is under very severe pressure. We have hospitals are under pressure, testing facilities are not available. We first tried to get everybody help in Iran. When we realized that this was not happening, that is why we were required to send our medical team. Then we had to actually go establish a clinic in Qom. Then even that we had to shift to Tehran and ask people to go from Qom to Tehran because that was the compulsion on us out there.
So there has been no lack of sensitivity to the situation of people. But please understand, it's a very difficult situation in Iran, and we are working on it. 58 people have come back. I expect maybe another 200 plus to come back very soon, and the numbers will keep increasing. I would also, Shri Thomas Cherkodan again raised the issue of airports, which I have replied. Owaisi ji raised the issue of people who are stuck in Mashhad. It is at the moment we have one medical team operating in Mashhad, in Tehran. So we are asking people to come to Tehran for testing. We are asking people to come to Tehran for testing. And if there is a problem, we will find a way of reaching people in Mashhad. We will not leave them out there. That assurance I give you. TB raised the issue of virology testing centers. Shri Harshvardhan ji is here. He will in due course. Let me finish my list. So we are setting up more laboratories for testing. The numbers have increased, but I would like my colleague to answer that question. Shri Mehtab ji also asked the same question about testing centers. He will answer that question. Regarding tracking those who are coming in, that's a very valid point. I want to assure him there is a tracking procedure, very, very detailed tracking procedure. In fact, the group of ministers have seen every patient who has tested positive. We have tracked hundreds of people who have been in contact with that patient. So it is not that we are only quarantining. There is a very, very detailed tracking procedure in place, and it is because of that actually that we have been able to keep it to the limit that we have. Then Vasant Kumar ji raised the issue of fishermen who are in the islands. Again, I want to assure him, we will make sure that they are looked after. We are regularly in touch. Their food, their water, the provisions will be given. Bhagwant Mann ji raised the issue of 30 students of Punjab who are stuck in Italy airport. I know the honourable member is concerned about students from his region, but I want to tell you there are not 30 students. There are many more from different parts of the country. For me, all of them, I need to find a way of helping them, of bringing them back. We are at it. Again, please understand, we can only bring them back if they are tested. They have to be tested. And to test them, we have started the sampling today, because we cannot bring back untested people in very severe epidemic situations, because I have the security of this country to worry about as well. Kanimori ji asked, saying, can we set up a helpline? Yes, we will be setting that up. And where will you quarantine? We have identified a large number of possible quarantine centers. Till now, most of the quarantine is taking place in Manesar and close by. But if the quarantine numbers mount, we have already initiated an exercise in cooperation with different ministries and different state governments. So we have a much bigger contingency plan for quarantining. Again, I think Honorable Dr. Harshvardhan ji would be better in a position to reply. Finally, Adhir Ranjan ji's issue about Saudi Arabia. We are very, very sensitive to what is happening, particularly with our countrymen, our people who are working in very difficult conditions in the Gulf. So far, in the Gulf, the cases have been very limited. But we are very much on the alert, because we totally share your concern that if situation becomes worse there, they will have to be a priority area. So it is very much on our radar. I would request my colleague to reply on the other two issues. एक मिनट रुके, एक मिनट। जसविंदर जी, आप एक सेकंड बोल रहे, एक मिनट रुके आप। हाँ, एक सेकंड। ऐसा है कि पंजाब के काफी लोग हैं जो इटली, जर्मनी और यूरोप में कुछ हिस्सों में रहते हैं और ज्यादा फार्मों में काम करते हैं, उनमें से बहुत लोग हैं जो इनलीगल माइग्रेंट्स हैं। यही बात मैं बताना चाहता था सर। उस डर के मारे अगर प्रॉब्लम, सर एक मिनट में खत्म कर, डर के मारे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते। अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम होती है, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए ताकि वो बच सके?
Speaker sir, thank you very much. Speaker sir, we understand the seriousness of the situation. I would just like to draw the attention of the Honorable Minister through you that the government has advised the states to invoke the Epidemic Diseases Act of 1897. Now, this is a 120-year-old act, which is a 4-section act, which does not even define what an epidemic is. My question is that is the legal architecture appropriate to deal with a pandemic of this kind, or is the government contemplating bringing in some kind of an ordinance in order to beef up the legal architecture? Because I do not think the legal architecture is adequate to deal with the situation which is evolving. आपके नेता बोल लिए हैं. टीआर बालूजी इज द स्पीक. हाँ, 1 सेकंड बोल रहे हैं बिना माइक. Beyond the health related problem, I am raising the very serious issue of issue of NRI facing NRIs. In one who stay in India more than 120 days, he will lose his NRI status. Earlier, the days for staying by a NRI was 182 days. This decision was announced by Finance Minister in this Union budget. धन्यवाद. In view of सब देश में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिन देशों से बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, क्या कोई चेक करने की व्यवस्था सरकार ने करी है? नंबर 1. सब आधी सेकंड साहब. दूसरा, जो जैसे अमेरिकी यूएस ने कुछ देश बैन करे, पूरा यूरोप बैन कर दिया है, फ्राइडे से वहां लोग नहीं जा सकते, तो क्या हमारे देश में बैन करने की सोच रहे हैं? तीसरा, क्या जो ये आज के माहौल में बिजनेस मर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर या सरकार इस बिजनेस को बचाने के बारे में कुछ सोच रही है क्या? अटर शोधन जी, नो, प्लीज बैठ जाइए. मैंने सबको मौका दिया है. नो, आपका सवाल इससे रिलेटेड नहीं है. प्लीज बैठ जाइए. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी काफी सारे सम्मानीय सदस्यों ने मेरे कुलीग श्री जयशंकर जी के द्वारा जो विदेशों के संदर्भ में कोरोना वायरस आउटब्रेक की परिस्थिति जो भारत में भी है उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की दृष्टि से उन्होंने विस्तृत जानकारी अभी सबको दी है. अभी जो उनके सामने प्रश्न रखे गए हैं उनमें मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर मैं आपको दूंगा तो आप सबकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो सब आपके लिए जानना भी आवश्यक है. नहीं तो सर, अभी जो यहाँ पर कई लोगों ने ऐसा एप्रीहेंशन व्यक्त किया कि अगर कोई केस कहीं पर पॉजिटिव टेस्ट होकर आया है तो इसका मतलब है कि उसकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं हुई और विशेषकर ये कोची के संदर्भ में बात कही गई. तो पहली बात तो मैं ये आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट बाहर से आता है, पेशेंट यानी पैसेंजर बाहर से आता है, तो एक काम वो करता है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डुप्लीकेट में फॉर्म भरता है, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर भरता है या वो एयरपोर्ट पे आके नीचे आके भरता है. उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है. डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके सिम्टम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाए चाहे दूसरे सिस्टम के अंदर. लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है. और जो हमारा दिल्ली में एनसीडीसी है, वहाँ पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देश भर के उनका कंप्यूटराइज्ड डाटा आता है
उस डाटा को सेपरेट करके, जिनके ऊपर जरा सा भी डाउट होता है कि दे कैन, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी समझने की चीज है कि आज अगर मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, आज थर्मल स्क्रीनिंग में भी मैं नेगेटिव हूं, तो भी संभावना है कि 14 दिन के अंदर अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में हूं तो मैं कभी भी सिम्टम डेवलप कर सकता हूं। इसलिए जिसके संदर्भ में कोई भी डाउट होता है, उन सारे लोगों की डिटेल्ड जानकारियां देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाई जाती हैं। और इस समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30 से 35 हज़ार लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। यानी ये जो आपको पॉजिटिव केसेस, मान लीजिए कोची से निकल के गया और वो 4 दिन बाद पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्क्रीनिंग को छोड़कर चला गया वहां पे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको 4 दिन के बाद भी पॉजिटिव करके हमने आइसोलेट कर लिया गया। इस संदर्भ में मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि केरल सरकार ने जब पहले 3 केसेस आए, उसमें सारी हमने हर विषय के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस वी आर शेयरिंग विद ऑल द स्टेट्स डेली वी आर टॉकिंग टू ऑल द हेल्थ सेक्रेटरीज, वी आर इन टच विद ऑल द मिनिस्टर्स आइदर ऑन द टेलीफोन और थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स। और रोज शाम को हमको हर स्टेट से डिटेल्ड उनकी दिन भर की हेल्थ रिपोर्ट आती है, जिसमें इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये जो पॉजिटिव केसेस और इन एक एक पॉजिटिव केस का फर्दर उनके डिटेल्ड कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जाती है। एक एक केस के 162, 200 तक, 250 तक, 150 तक इतने कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको भी फर्दर टेस्ट करके उसमें से भी कोई भी जो भी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसलिए ये आप में से किसी को भी गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि स्क्रीनिंग में कोई लैप्स है। मैंने स्वयं दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाके 3 घंटा लगा के उसका एक एक, जब 4 फ्लाइट भी एक साथ आ जाए तब भी क्या कोई मिस होने की संभावना है, उसको भी हमने पूरा डिटेल में एसेस किया है। और खाली स्क्रीनिंग में अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पॉजिटिव जो है 2 दिन के बाद नहीं हो सकता। ये हमारे जो पहले 7 एयरपोर्ट हमने 17 जनवरी को जिनके ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की थी, उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची इज अमंग्स द फर्स्ट 7। टुडे वी आर डूइंग इट ऑन 30 एयरपोर्ट्स और 30 एयरपोर्ट्स पे अभी हम सारे दुनिया की फ्लाइट्स के बारे में कर रहे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग के संदर्भ में आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लैब्स के बारे में कहा गया, हमने हमारी जो एक सेंट्रल रेफरेंस लैब है, दैट इज द नेशनल वायरोलॉजी लैब इन पुणे। इसके बाद वी हैड स्टार्टेड विद 15 लैब्स, क्योंकि ये एक रूटीन टेस्ट नहीं है। ये कोरोना वायरस का भी, ये 7वां कोरोना वायरस आया, उसका भी एक पर्टिकुलर जो है एक स्ट्रेन है, ये समझ लीजिए, जिसको कोविड-19 नाम दिया है। तो हर एक लेबोरेटरी में ये टेस्ट नहीं हो सकता। इसका जो कंट्रोल है दैट हैज टू बी गिवन एंड द रिलेटेड रीजेंट्स एंड एवरीथिंग, उसके सारी चीजें, उसकी मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। बट इवन नाउ, इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग सच ए बिग टास्क, हमारी इस समय देश में 51 लेबोरेटरीज और 56 जगह पर जो है कलेक्शन सेंटर्स, यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है। वी वेंट अप टू द एक्सटेंट कि जब ईरान की वो जो वहाँ पर लोग हैं उनको टेस्ट वगैरह करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, दे कांट हेल्प अस ऑन अकाउंट ऑफ दैट इशू। हमने यहाँ से अपने वैज्ञानिक भेजे, हमने यहाँ से अपनी पूरी की पूरी लैब, which is not a simple thing, but you can say the weight of the whole lab is in tons, वो सारा का सारा वहाँ भेजा और अपने वहाँ कोशिश किया कि कस्टम से क्लियरेंस करके हम लैब को एस्टैब्लिश वहाँ पर कर दें और बाद में उस लैब को ईरान को ही डोनेट कर दें। अभी वो कस्टम से क्लियरेंस वगैरह का प्रोसेस जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री गए, बट व्हेन वी सॉ दैट देयर वाज अ डिले इन दैट, वी डिवाइज्ड एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जिसमें वहाँ से हमारे वैज्ञानिक वहाँ के लोगों का सैंपल जो है कोल्ड चेन को मेंटेन करके, जो उनका थ्रोट का स्वैब है उसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से हम उसको टेस्ट करते हैं और जिनके नेगेटिव्स आ रहे हैं उन नेगेटिव्स को हम जो है वापस जो है पैसेंजर्स को यहाँ पर वापस ला रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ा सा एक आई कैन अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ दोज पीपल, एवरी एमपी जिसको कि कोई भी संपर्क कर रहा है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि
भारत में बिना साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज को पूरा किए किसी को ऐसे हवाई जहाज में बिठा के वहां से नहीं लाया जा सकता। हम वुहान से, चाइना से जो हब है जहां से सारे दुनिया में इन्फेक्शन शुरू हुआ है, वहां से भी हम 645 भारतीयों को और 7 मालदीवियंस को सबसे पहले लेके आए पूरी दुनिया के अंदर। और इसके बाद दोबारा से हम वुहान से जो है लोगों को लेके आए 112 लोगों को। और उसके बाद हम जापान की जो शिप थी उसके ऊपर स्ट्रैंडेड लोग थे, उनको जापान से लेके आए। फिर ईरान के अंदर ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई तो ईरान में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाकर ईरान से हमने लाना शुरू किया, जिसके बारे में अभी मेरे कुलीग ने इतने विस्तार से। और अभी जब ईरान के अंदर जो है इसमें इटली के अंदर जब प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट्स एंड ऑल दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स हेल्पलेस, और इटली में भी इतने ज़्यादा ज़ोर शोर से ये जो इन्फेक्शन है स्प्रेड हो रहा है, तो इटली में भी हम उसी प्रोसेस से हम उनके सैंपल्स को यहाँ ला रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। हम यहाँ से सारा हमने लैब का सामान वहाँ पर भेजा है। तो आप सबका हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं कि जो इसमें कोई सरकार इस प्रकार का इसकी सरकार इस प्रकार का लेट मी कंप्लीट व्हेन यू वर टॉकिंग आई डिड नॉट इंटरफेयर। तो आप सब इस बारे में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोटोकॉल्स की दृष्टि से आवश्यक है वो सब कुछ पूरा करके भारत में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का रिस्क ना देते हुए और उन सब अपने भारतीयों को सेफली वापस लाना, उसकी हमारी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज़ शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, वी नीड योर कोऑपरेशन। और हम ये भी चाहते हैं कि आप सबकी मदद से आपके क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी गैदरिंग्स वगैरह हो रही हैं उनको आप अगर डिस्करेज करेंगे, अपना एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आप देंगे। अभी हेल्पलाइन के बारे में कहा गया, हमारी हेल्पलाइन पे इंटरनेशनल भी बहुत सारी कॉल्स आ रही है। दैट उस हेल्पलाइन का नंबर हम जो आपको मैसेज टेलीफोन में दे रहे हैं उसमें हेल्पलाइन का नंबर भी है, उसके साथ बहुत सारी डेडिकेटेड लाइंस हैं। तो और ऐसे ही स्टेट्स ने भी अपने अपने हेल्पलाइंस वगैरह बना रखे हैं। तो आप सब अगर कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर अभी शामिल करने के लिए ये तो 2 घंटे मंत्री जी का सुनना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करना है। बिकॉज आपको जबरदस्ती कोरोना वायरस नहीं नुकसान पहुंचा सकता। अगर आपने अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म समझ लिया तो और उसको एजुकेट लोगों को कर दिया तो आप निश्चित आपको प्रोटेक्ट करने का प्राइस क्या है? अगर थर्मल इमेजर बहुत ज्यादा महंगा नहीं, एक पार्लियामेंट में तो लगवा दीजिए। ईरान में 23 MP कोरोना वायरस से शिफ्ट हो गए हैं, तो कम से कम MPs को तो यहाँ अगर आप थर्मल इमेजर देखिए। धन्यवाद। जितने संबंधित स्थान हैं वहाँ पे एजुकेशन के जितने टूल्स हैं, अखबार से लेकर और रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, टेलीफोन, सब माननीय मंत्री जी धन्यवाद। सबसे बड़ा मैकेनिज्म आप हैं। आप लोग भी जो है इस मैसेज को डिसमिनेट करिए। आपको अधीर रंजन जी 2 घंटे डिबेट और सुननी है क्या? नहीं सुननी ना? माननीय सदस्यगण 1 मिनट। माननीय सदस्य 1 मिनट। माननीय सदस्यगण 6 अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। पिछले दिनों कुछ सदन नहीं चला। अगर सदन की सहमति हो और पूरा सदन इस बात से सहमत हो तो शनिवार रविवार को भी इस पर चर्चा चलाई जा सकती है। आप क्या कह रहे? सदन का रूप आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा सदन की सहमति हो तो। मेरा प्रयास रहता है
कि अधिकतम समय सदन चले, अधिकतम समय चर्चा हो। सर आप एक्सटेंड कीजिए हाउस तक, आप एक्सटेंड कीजिए। माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, अनुदान मांगों की चर्चा बुलेटिन के पहले होती है, उसके बाद नहीं होती। सुरेश जी, द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज। सदन की सहमति नहीं है तो मेरा इतना आग्रह जरूर है कि आज रेल बजट पर देर रात तक चर्चा चलेगी और फ्राइडे को भी देर रात तक चर्चा चलेगी, ठीक है। जिन माननीय सदस्यों का आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की हुई, अपने मामले व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। 9 आवर रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानी मांगों पर चर्चा। अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 83 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन मान्य सदस्यों को रेल मंत्रालय संबंधित अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के अंदर भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिससे कि उनके कटौती प्रस्ताव की संख्याएं लिखी हो और उन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद रखी जाएगी। कल सदन में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समय मिला तो पर्यटन पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को मैं अवगत करा दूं। श्री M.K. राघवन जी। कोई लंच न आज होगा न कल ब्रेक होगा लंच। So I would like to thank Honorable Speaker, sir, allowing me this opportunity to share my thoughts and concerns on the demands for grant for railways in the Union Budget 2020-21. So first of all, I would like to remind the Government of India, the railway is not a business sector, it is a service sector, especially for Indians. So before moving on the details, I must say that the BJP government is unfortunately unaware of the larger purpose and societal reasons for the establishment of railway network in any country. Sir, Indian Railways was deemed as the great unifier as envisaged by the late Prime Minister Jawaharlal Nehru. So hence, railway is not just a profit-making engine, ready to be auctioned off to the highest bidder. Instead, it is a poor man's lifeline of transport that connects him to the vast length and breadth of the nation. So with about 12,147 trains in service, 74,000 coaches, and with engine kilometers per day per engine in use for 678 kilometers, the railways, in my opinion, is an India that runs within India. Sir, what happened in the last 5 years, sir? So, however, there is a consistent apathy shown towards railways by the BJP government, and for the last 5 years, this discrimination against Indian railways is clearly visible. Sir, I can quote the CAG report, sir. CAG report titled Railways Finance Report on 10 of 2019 indicates the dismal position of Indian railways. It says that since 2016-17, railways revenue surplus has been falling, which is indicative of falling financial health of the Indian railways. During the year 2017-18, the net revenue surplus decreased by 66.10% from 4,900 crore in 2016-17 to 1,600,000 crore in 2017-18. So the failure of the government in reviving the railways
I clear from the following findings, sir. In the first 6 months of financial year 2019-20, April to September, states that the freight receipts fell short by 16.97% and passenger earnings 5.3% of the budgeted amount. Gross revenue fell 14.54% short of the budgeted amount. But working expenses rose 4.15% higher than budget estimates. So the operating efficiency of Indian Railways is visible and is sending repeated alarms as the ratio of net revenue receipts to capital at charge plummeted from, sir, number one, 6.95% in 2014-15. Number two, 7.0% in 2015 and 16. Number three, 1.62% in 2016-17. Number four, 0.51% in 2017-18. And to compound this situation, the 2019 report of the Controller and Auditor General CAG refers to the steadily declining performance reflected in the operating ratio, which at 98.44% in 2017 and 18 was the worst or the highest in the last 10 years, sir. Sir, it means that Indian Railways spent rupees 98.44 to earn rupees 100. So this is very clear, sir, the failure of the government for the last 5 years. So this CAG report further adds that the Indian Railways operating ratio in 2017 and 18 would have been 102.66%, but for the advance received from the NTPC and IRCON, it means that the railway would have spent 102 rupees, earned 100 rupees. Such is handling of railways by this government, which is a colossal failure in the all fronts, and as a part of its drive to sell off public assets, it is now targeting the railways, sir. So one of the important steps towards the privatizing the railways lies in the disappearance of an exclusive railway budget from the 2017 onwards. The terminus of this speared budget for the railways has denied the public from the being aware and being in the know regarding the railways. This is very unfortunately, sir. The union budget's focus on the railways is cursory and exercise in obfuscation. It reveals utter neglect of India's largest enterprises. Hence, the BJP government succeeded in removing the first hurdle of the detailed budget being put in public domain. It was not at all surprising that Finance Minister Nirmala Sitharaman's long-winded union budget speech on February 1st, 2020 contained just a few references to the railways. I will quote her speech, sir. In her 2019-20 budget speech, Nirmala Sitharaman said that the government would invest rupees 50 lakh crore over the 12-year period in the railways, implying an average of about rupees 4 lakh crore a year or 25 lakh crore in 6 years. So, however, she actually budgeted for only rupees 1.61 lakh crore in the 2019-20. The revised estimates reveal that an investment of only rupees 1.56 lakh crore was made. Sir, the budgetary support in this case ought to have been rupees 1.16 lakh crore in 2019-20. However, the budget reveals that in 1920 plan outlay, according to revised estimates, was only rupees 1.56 lakh crore, of which gross budgetary support was only rupees 52,837 crores. Sir, then comes the announcement by the PM on August 15, 2019, sir, on creation of National Infrastructure Pipeline, NIP.
The NIP scheme envisaged an investment of rupees 102 lakh crore in infrastructure projects over 6-year period starting 2019-20, of which the share of the railway projects was to be 13%, sir, 30%. The share of railway projects in the NIP was thus to be rupees 13.69 lakh crore over 6 years, of which rupees 11.90 lakh crore was to come by way of budgetary support. So in this budget, Finance Minister promised more of the same for the 2020-21. According to the grand promise, the plan outlay for 2020-21 ought to have been rupees 2.62 lakh crore, of which the budgetary support ought to have been rupees 2.28 lakh crore. Instead, the Finance Minister has provided a net budgetary support of rupees 46.750 crore, a shortfall of the opening of 80%, sir. Sir, it is almost important to note that as many as 274 projects across 16 zones of the railway, sir, have quietly been abandoned, sir. Sir, this is very important allegation, sir, indicated only by the fact that each of this has been allocated the princely sum of rupees 1,000. Of these, 132 are new line projects, 40 gauge conversion projects, and 10 track doubling projects. In her budget speech, she is continuing. The Finance Minister announced that the railways would electrify 20,000 route kilometers. However, sir, the fine print reveals that the 20,000 kilometers is what is to be undertaken in the years ahead. The target for electrification in the current year is only 6,000 route kilometers, which is scaled down figure from the 7,000 route kilometer target the minister set last year. In effect, the railways committed deadline to electrify its entire network by 2022 has been pushed back by at least 2 years. Sir, the limited allocation now means that this will take at least 4 years, provided further cuts are not made. So while speaking about the electrification, I must remind the House that none of these achievements were the results of just 5 years of Modi government, but continuation of the policies and projects executed by the various Congress governments. So I can quote that period prior to independence, 25 to 47, 388 kilometers electrified. First 5-year plan, 51-56, 141 kilometers electrified. Second 5-year plan, 56-61, 216 kilometers electrified. Annual plan 96-69, 66-69, 1,678 kilometers electrified. So fourth 5-year plan 69-74, 953 kilometers electrified. The Inter plan 78-80, 195 kilometers electrified. Then sixth 5-year plan 80-85, 1,522 kilometers electrified. Then seventh 5-year plan 85-90, 2,812 kilometers electrified. So annual plan 90-92, 1,557 kilometers electrified. Then eighth 5-year plan 92-97, 2,708 route kilometers electrified. Ninth 5-year plan 97-2002, 2,484 kilometers electrified. 10th 5-year plan 2002-7, 1,810 kilometers electrified.
11-5-year plan first year, 2007 and 8, 502 kilometers electrified. Then 11th 5-year plan second year, 2008-9, 797 route kilometers electrified. Then 12th 5-year plan third year, 2009-10, 1,117 kilometers electrified. Total, it is coming 20,059 route kilometers electrified. So coming to the central promise of the railway budget, it can be seen that the state of Kerala has been completely sidelined as none of the long-standing demands of the state, including so for so many years, the government of Kerala and all political parties, all MPs are demanding for special zone. Then Nellambur Nanjanguda line, Tirunavai Guruvayur line, Palakkad Kochi factory, Calicut Bangalore additional trains like Intercity Jalshatabdi, increase of frequency of trains like Rajdhani Express, third line between Mangalore and Trivandrum, extension of frequency, increase of various trains, and Sabari rail, provision of more memo coaches for Palakkad division to connect Coimbatore and Ernakulam from Calicut, extend Yeshwanthapur Kannur Express to Calicut, are ignored by the state, and these demands are rejected for the reasons that are best known to the government. Sir, I would like to share one more thing, sir. So I have a request before this government, sir. Honorable ministers are here. I had a discussion with the MOS with, I think, so many times. So you don't neglect Kerala. Your attitude is actually a stepmother's attitude to Kerala. So this is, sir, this is fact, sir, fact. Sir, this is fact. Your chief whip, Mr. Suresh, has given 4 names and you are the first speaker. 8 hours have been allocated for this, sir, on this subject, sir, and Congress party has 46 names. Sir, you have already completed 16 minutes. Yeah. To do justice to your colleagues, yeah, they will hardly get 10 minutes each. So I leave it to you and your party to decide how much time you would take. Sir. No, provided he agrees. So, sir, I request on the minister. So you should consider Kerala, because we are the parcel part of the nation, sir. Sir. So, you are smiling. I think you will consider something for Kerala, I think, sir. So, therefore, I genuinely feel that this budget is just a call of privatization and eventual selling of the railways, the lifeline of the India and her common people. So thank you, sir. Thank you. Now I request Shri Palani Manikam. மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, ரயில்வே மானியத்தின் கீழ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் எனது கருத்துக்களை எடுத்து வைப்பதற்காக வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். நான் ரயில்வே துறை அமைச்சர்கள், துணை அமைச்சரை கேட்டுக்கொள்வது, இந்தியாவின் பெருமைமிகு அடையாளமாக தெரிகிற ரயில்வே துறையை தனியார் மயமாக்குவதற்காக எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்காதீர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏற்கனவே தரைவழியில் போக்குவரத்து பெரும்பாலான சாலைகள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டு விட்டது. ஏர் இந்தியாவும் இப்போது விற்பனையில் இருக்கிறது. இந்தியாவின் தரைவழி போக்குவரத்து, வான்வழி போக்குவரத்து, கடல் வழி போக்குவரத்தில் மிஞ்சி இருப்பது ரயில்வே துறை ஒன்றுதான்.
இன்றைக்கு இந்தியாவின் ஒற்றுமை பற்றி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பேசுகிற போதெல்லாம் குரல் ஒலித்து பேசுகிற நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கு அடையாளமாக திறந்தது ரயில்வே துறைதான். ஆகவே அதை தனியார் மயமாக்குகிற முயற்சியை கைவிடுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, ரயில்வேக்கு முன்பு இருந்ததை போல் தனி பட்ஜெட் இருந்தால்தான் ரயில்வே துறையை நீங்கள் மேம்படுத்த முடியும், ஏற்படுகிற இழப்புகளை தவிர்க்க முடியும் என்று கடந்த காலத்தில் எனக்கு இருந்த இந்த துறையில் இருந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். ஒவ்வொரு முறை ரயில்வே பட்ஜெட் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னால் கடந்த காலங்களில் அந்தந்த வட்டாரத்தில் இருந்த தென்னக ரயில்வே, மேற்கு ரயில்வே, வடமேற்கு ரயில்வே, கிழக்கு ரயில்வே போன்றவற்றில் அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் உறுப்பினர்களை அடங்கிய ஒரு கூட்டத்தை ரயில்வே துறை அமைச்சர் நடத்துவார். அப்போதுதான் அந்த பகுதியில் என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறது என்பதை ரயில்வேவும் ரயில்வே துறை நிர்வகிக்கிற அமைச்சர்களும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அண்மை காலமாக புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கிற நண்பர்கள் அந்த காரியத்தை அல்லது அந்த உரிமையை அப்போதுதான் இதில் கூட கவனம் செலுத்தாவிட்டால் நீங்கள் எப்படி ரயில்வேயை காப்பாற்றப் போகிறீர்கள்? உங்களை விட அனுபவமிக்க ஒரு உறுப்பினர் பேசுகிறேன் என்று சிறிது கவனம் கொள்ளுங்கள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய கூட்டத்தை கூட்டுங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். ரயில்வேயை பராமரிப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளர்களை நியமிக்கிற போது ரயில்வே துறையில் கூட்டுபவர்களில் தொடங்கி பொது மேலாளர் வரை பணியாற்றுவதென்றால் ஒரு பெருமை உண்டு. அண்மை காலமாக நிரந்தரமான தொழிலாளர்களையும் அலுவலர்களையும் நியமிப்பதை விட்டுவிட்டு எல்லாவற்றையும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாகவே நீங்கள் நியமித்தால் அந்த துறையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு அரசாங்கத்திற்கு இல்லை என்றுதான் பொருள்படும். ஒரு பொருளை பாதுகாத்து பராமரித்து கையில் வைத்து இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வலுப்பட்டால்தான் அதை துறக்க வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை இல்லாமல் போகும். விற்றுவிடலாம் என்று ஒரு பொருளை நினைத்தால் அதை காப்பாற்றுகிற எண்ணம் வராது. ஆகவே ரயில்வே துறையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை அமைச்சர்களும் அரசாங்கமும் மனதில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரயில்வே துறையில் ஊழியர்களை, அதிகாரிகளை நியமிக்கிற போது முன்னெல்லாம் அந்தந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநில மக்களுக்கு பெரும்பான்மையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ரீஜன் இப்போது அண்மை காலமாக ரயில்வே துறையில் நியமிக்கப்படுகிற ஊழியர்களை, அதிகாரிகளை பார்க்கிற போது ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ், பிராந்திய சமநிலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை நிலவுகிறது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ரயில்வே நிலையங்களில், ரயில்வே தொழிற்சாலைகள் மிகவும் முன்னெல்லாம் தமிழர்கள் நிரம்பி இருப்பார்கள். அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் கலந்து இருப்பார்கள். அதே போல் தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் என்றால் அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். அதேபடித்தான் பீகார் என்றால் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். ஆனால் இப்போது அண்மை காலமாக எல்லா மாநிலங்களும், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருடைய எண்ணிக்கை ரயில்வே துறையில் குறைந்து வருகிறது. அதற்கான நியாயமான காரணங்களை கண்டுபிடித்து தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிறது என்கிற உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். ரயில்வே துறையின் அதிகாரங்கள் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டிஆர்எம், ஜிஎம் போன்றவர்களுக்கு ரயில்வே அமைச்சகத்திலிருந்து கூடுதல் அதிகாரங்களை வழங்குங்கள். 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஜெனரல் மேனேஜர் அளவில், டிஆர்எம் அளவில் அந்தந்த பகுதியில் அளிக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கலந்து ஆலோசித்து கூட்டங்களை நடத்தினால் சிறிது சிறிதாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ரயில்வே அமைச்சகத்திலும் ரயில்வே பட்ஜெட்டிற்காக ஆண்டு முழுவதும் மக்களவை உறுப்பினர்கள் காத்திருக்காமல் குறுகிய காலங்களில் தங்களுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தேவைகளை எளிதாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கக்கூடும். நீண்ட காலம் இந்த நாடாளுமன்றம் உருவாகி இந்த அமைப்பு ஏறத்தாழ 8 மாதத்தை கடந்து விட்டது. இதுவரை ஜோனல் ரயில்வே யூசர்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி போடப்படவில்லை. அப்படி போடப்பட்டால் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் அவர்களை
கலந்து ஆலோசித்து தங்களுடைய ஆலோசனைகளை சொல்ல முடியும். ரயில்வே துறையில் அண்மை காலமாக நீண்ட தூர விரைவு வண்டிகளை அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகிறீர்கள். ஆனால் அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், ஏழை எளியவர்கள் குறுகிய தூர ரயில்களை அந்தந்த மாநிலத்திற்குள் அல்லது அவர்களுக்கு தொடர்புடைய அண்டை மாநிலத்துக்கு அதிகமான ரயில்களை நீங்கள் இயக்கினால்தான் அந்த ரயில்கள் அந்தந்த மாநிலத்திற்கு பெரும்பாலும் பயன்படக்கூடும். நான் வசிக்கிற தஞ்சாவூர் வழியாக தினந்தோறும் இரவு எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ராமேஸ்வரத்திற்கு ஒரு வண்டி நாட்டின் பல பாகங்களில் இருந்து வருகிறது. ஆனால் புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூரில் இருக்கிற எங்களுக்கு அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. ஆகவே இந்த ரயில்வே துறை கவனிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் இப்போது வருகிற வண்டிகளில் எல்லாம் முன்பதிவற்ற பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் தொகையில் ஏறத்தாழ 70% பேர் விவசாயிகள். அவர்கள் முன்கூட்டியே தங்களது பயணத்தை திட்டமிட்டு பயணிக்க முடியாது. அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற அவசர காரியங்களில் உடனடியாக பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு முன்பதிவற்ற பெட்டிகளின் எண்ணிக்கையை கூட்டினால்தான் ஏழை எளியவர்கள் ரயில்வே துறையில் பயணிப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்க முடியும். திட்டமிட இயலாமல் பயணிக்கும் ஏழை எளியவர்களின் பயணத்தை இந்த ரிசர்வ் கம்பார்ட்மெண்ட் தடுக்கும். ஆகவே அவர்களுக்கு உதவுகிற வகையில் எல்லா வண்டிகளிலும் முன்பதிப்பற்ற அன்ரிசர்வ் கோச்சுகளை அதிகமாக ஆக்குங்கள் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அருமை நண்பர் கேரளாவிலிருந்து பேசியதை போல் தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த 6-7 ஆண்டுகளாக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பல தொடங்கப்படாமல் இருக்கிறது. தொடங்கப்பட்ட திட்டங்கள் பல நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது. நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக தஞ்சாவூரில், தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் மிக பழமையான தொடர்வண்டி பாதைகளில் சென்னை ராமேஸ்வரம் தொடர்வண்டி பாதை பழமையானது. ஏறத்தாழ 150 ஆண்டுகள் தொடங்கி முடிவெற்றிருக்கிற ரயில்வே துறையில் 140 ஆண்டுகளுக்கு மேலானது. இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற புகைவண்டிகளில் போட்மெயின் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த விரைவு வண்டி தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு பயணச்சீட்டு வாங்குகிற வசதிகளை கொண்டது. ஆனால் அந்த புகைவண்டி தொடர்வண்டி பாதை மீட்டர் கேஜில் இருந்து பிராட் கேஜுக்கு மாற்றப்பட்டது. ஒரு ரயில்வே லைனை மாற்றுகிற முயற்சி எடுத்தால் அதை ஒரு கால வரையறைக்குள், டைம் லிமிட்டுக்குள் அந்த காஜ் கன்வர்ஷனை முடியுங்கள். ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணிக்கிறவர்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரு வழித்தடத்தில் பயணிக்காமல் இருந்தால் அந்த பகுதியில் இருக்கிற நகரங்கள் தங்களுடைய பழைய செல்வாக்கை இழந்துவிடும். நான் சொல்லுகிற அந்த பாதையில் ஒவ்வொரு 40 கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு முனிசிபாலிட்டி உண்டு. தொடக்க காலத்தில் புகைவண்டியை அறிமுகப்படுத்துகிற போது பயணிகளுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். ஆனால் அண்மை காலமாக நீங்கள் சரக்குகளுக்குத்தான், குட்ஸ்களுக்குத்தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள். அப்போது அந்த பாதையில் விருத்தாசலம் வழியாக, திருச்சி வழியாக மதுரைக்கு ஒரு ரயில் பாதை தொடங்கப்பட்டது. அது சரக்கு ரயில் போக்குவரத்திற்கானது. இது இந்த பாதை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றுகிற 10 ஆண்டுகளில் அந்த வழியாக சென்ற ரயில்களின் எண்ணிக்கையெல்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது. மாற்றாக சரக்கு ரயில் சென்று கொண்டிருந்த பாதையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு கால அவசியத்தை குறுகிய நேரத்தில் பயணிப்பதற்காக எல்லா வண்டிகளும் சரக்கு பாதையில் செல்லுகிறது. அதிக மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கிற பாதையில் குறைந்து விட்டது. ஆகவே ஒரு பாதையை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றியதற்கு பிறகு அந்த பாதையில் கடந்த காலத்தில் என்னென்ன ரயில்களை எல்லாம் நீங்கள் இயக்கினீர்களோ அவைகளெல்லாம் மீண்டும் இயக்குவது உங்களது தார்மீக கடமை என்பதை நீங்கள் நினைவு கொள்ளுங்கள். ரயில்வே துறை என்பது அரசாங்கத்தினுடைய எந்த துறையும் கடந்த காலத்தில் ஒரு குடிமகன் அனுபவித்த உரிமைகள் எதையும் அவர்கள் இழந்துவிடக்கூடாது. புதிதாக நீங்கள் ஒரு சலுகையை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வழங்குங்கள்.
பழைய சலுகையை ரத்து செய்து விட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். குறிப்பாக தொடங்கப்பட்ட பாதையில் குறிப்பிடப்பட முடிக்கவில்லை என்று சொன்னது திருவாரூரிலிருந்து காரைக்குடி வரை என்னுடைய நண்பர் கோழி முன்னாள் அமைச்சர் வருகிறார். இந்த அவையில் 5 பேர் தொடர்புண்டு அந்த தொடர் பாதை ஏறத்தாழ 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த தொடர்வண்டி பாதை மாயவரத்திலிருந்து காரைக்குடி வரை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றுவதற்காக அது கலட்டி போடப்பட்டது. ஏறத்தாழ ஓராண்டு காலம் ஆயிற்று பாதை பணிகள் முடிவுற்று. ஆனால் ஓராண்டு காலமாக பட்டிக்காட்டு சிறுவன் மிட்டாய் கடையை வேடிக்கை பார்ப்பது போல ரயில்வே லைன் இருக்கிறது, ரயில் இல்லை. ஏறத்தாழ பழைய காலத்தில் 74க்கு மேற்பட்ட அதிலே கேட் இருந்தது, கேட் கீப்பர்கள் இருந்தார்கள். இப்போது ரயில்வே துறையின் புதிய கொள்கைப்படி ஆள் இல்லாத கேட்டுகள் இருக்கக்கூடாது. தஞ்சாவூர் பகுதி அது கடற்கரையை ஒட்டிய பாதை. ஆர்யூபி சாலைக்கு அடியிலே செல்லுகிற பாதை போட்டால் மழை காலத்தில் தண்ணீர் வந்துவிடும், உப்பு நீர், கடல் நீர். மேலே பாலம் போட்டால் அந்த பகுதியில் அதற்கான வருவாய் இருக்காது. ஆக ரயில்வே லைனை மாற்றுவதற்கு முன்னாலே ரயில்வே துறை அதை பற்றி ஒரு கொள்கையை எடுத்திருக்க வேண்டும். 1 வருட காலமாக நாடாளுமன்ற இந்த அவை உருவாகியதற்கு பிறகு நாங்கள் 5 உறுப்பினர்கள் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் இந்த 5 உறுப்பினர்களும் இந்த தொகுதி மக்கள் எங்களை பார்க்கிறார்கள். நாங்கள் ரயில்வே துறை அமைச்சரை பார்க்கிறோம், அவர்கள் அதிகாரிகளை பார்க்கிறார்கள். இன்னும் அதற்கான தீர்வு கிடைக்கவில்லை. நான் பேசுவதை ரயில்வே துறை அதிகாரிகளும் கேட்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். உங்களது பொது மேலாளர் போன வாரம் ஜூன் மாதத்தில் எப்படியும் விட்டுவிடுகிறேன் என்று எங்களுக்கு வாக்குறுதி தந்திருக்கிறார்கள். அருள்போது அதை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை போலவே தஞ்சாவூரிலிருந்து பட்டுக்கோட்டை, தஞ்சாவூரிலிருந்து அரியலூர், திருவாரூரிலிருந்து மன்னார்குடியிலிருந்து பட்டுக்கோட்டை, தஞ்சாவூரிலிருந்து புதுக்கோட்டை ஆகிய தொடர்கள் பாதி தொடங்கப்பட்ட நிலையிலும் புதிதாக தொடங்கப்படாமல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலும் இருக்கிறது. அதை பற்றியும் நீங்கள் கவனம் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறுகிய தூரங்களை உடைய சிறிய நகரங்களுக்கு இடையில் 8 அல்லது 7 பெட்டிகளை உள்ளடக்கிய டெமோ ரயில்களை தென்னக ரயில்வேயின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இயக்குவதன் மூலம் ரயில்வே துறைக்கு அதிகமான வருவாயை நீங்கள் பெற முடியும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் வித்தவுட் டிக்கெட்டுங்கிறது ரொம்ப குறைச்ச, பெரும்பாலும் 100க்கு 99 பேர் டிக்கெட் எடுத்து தான் போறவங்க. ஆக டிக்கெட் எடுத்து போறவருக்கு கொஞ்சம் வசதியில் பெருக்குவதற்கு நீங்கள் மனம் வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே பெட்டிகளை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளும் எஞ்சினை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளும் முதலாளித்துவ நாடுகள் எல்லாம் துணைக்கு வராத போது பொது உடைமை நாடுகளின் உதவியோடு உருவாக்கப்பட்டவை. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைக்கும் வரலாற்று சிறப்பு உண்டு. நீங்கள் ரயில்வே துறையை உண்மையிலேயே காப்பாற்றுவதற்கு மன உறுதி கொண்டிருந்தால் நம்முடைய நாட்டில் உற்பத்தியாகிற ரயில்வே இன்ஜின்களுக்கும் ரயில்வே பெட்டிகளுக்கும் உலக நாடுகளில் மிகப்பெரிய வரவேற்பும் மதிப்பும் நன்மதிப்பும் இருக்கிறது. அவைகளை அருள்கூர்ந்து ஒரு தனிப்பட்ட 4 அந்த முதலாளிகளிடத்தில் விட்டுவிட்டு ஒரு காலத்தில் இந்த ரயில்வே பாதையை உருவாக்கியதில் சுதந்திர இந்தியாவுக்கு இருக்கிற பெருமையை விட ஆங்கிலேயர்களுக்குத்தான் பெருமை உண்டு. அவர்கள்தான் இந்த நாட்டின் காடு மேடுகள் எல்லாம் அலைந்து திரைந்து இந்த பாதையை உருவாக்கினார்கள். அதை வைத்து காப்பாற்றுகிற யோகியதையாவது संस्कार तक और ले से फ्यांग होते हुए नुब्रा तक के जो 2 पावर ट्रांसमिशन लाइन है, क्या ये अभी तक पेंडिंग है? यदि है तो इसका क्या कारण है?
भारत सरकार इसको कंप्लीट करने के लिए क्या एक्सपेडाइट इसको कर रहा है? यदि कर रहा है तो इसका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एक्शन प्लान है और इसको कंप्लीट करने का क्या टाइम फ्रेम है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा सर। सर, ये दोनों लाइन महत्वपूर्ण है और ये दोनों लाइन के बनाने का और इसके साथ जो एसोसिएटेड सब स्टेशंस हैं उसको बनाने के लिए टेंडर हो चुका है। जिस समय ये लाइन दिया गया REC-PCCL को जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे नहीं किया था। तो जब ये अलॉट हुआ उसका डिटेल्ड सर्वे करना पड़ा। बिना सर्वे के उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था 357 करोड़ का। सर्वे के बाद, और वो एस्टिमेट बनाया था 2014 के शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार। तो सर्वे के बाद वो रेट्स रिवाइज करने पड़े और जबकि रेट्स रिवाइज करके फिर सबमिट किया गया जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले वो कारगिल से चाहते थे जंस्कार तक लाइन, उसके बाद उन्होंने कारगिल से पादुम, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो रूट में कुछ दिक्कत है तो आप द्रास से पादुम तक कर लीजिए। तो फिर से सर्वे करना पड़ा। जो डिज़ाइन था उसको फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। ये एयर इंसुलेटेड वहाँ पर सब स्टेशंस नहीं चलते हैं, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस लगाना पड़ा। और जितने भी टावर्स वगैरह थे, चूँकि बहुत ठंडा उसका एटमॉस्फेयर है, उसके लिए स्पेशल चाहिए था, तो उसका फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। तो सारे टावर्स के डिज़ाइन हो गए हैं। ये उसमें से 3 तरह के टावर के टेस्टिंग भी हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करने के लिए टेंडर भी फ्लोट हो गया है। 2 पार्ट में टेंडर फ्लोट हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर 13/3 को आने को है और दूसरा जो सब स्टेशन इत्यादि का टेंडर है वो 16/3 को आने को है। तो कार्य प्रगति पर है। लेकिन जो जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 357 करोड़ का एस्टिमेट दिया था वो बढ़ करके हो गया है 1063 करोड़। तो एडिशनल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडिशनल राशि की मांग हमने की है सरकार से, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास पहले तो कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो एस्केलेशन है इसको मीट करे। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास इतनी राशि नहीं है कि वो एस्केलेशन को मीट करे। तो मैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय से और राशि के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय के माध्यम से हमने भेजा था मांग, फिर मैं मांग भेज रहा हूँ। लेकिन टेंडर हो गया है। टेंडर रिसीव होने पर कुछ राशि भी हम लोगों ने एडवांस कर दिया है और काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। विस्तार से मंत्री जी ने जानकारी दिया और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह श्रीनगर ले ट्रांसमिशन जो 220 kV है जिसको पैकेज वाइज इम्प्लीमेंट किया था, उसी प्रकार ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन को भी पैकेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उससे जो है कार्य क्षमता और बढ़ेगा, क्योंकि जांस्कर के टेरेन बहुत वहाँ उबड़ खबर रोड होने की वजह से हेवी मटेरियल वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए क्या ये पैकेज वाइज होगा या पूरा कंप्लीट हेवी मटेरियल जाने के लिए कंप्लीट टेंडर में होगा, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ एक सुझाव मैं ये भी देना चाहूंगा, जो नुब्रा ट्रांसमिशन लाइन के मुझे कॉन्फिडेंस है मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व उत्तर राज्यों में रेलवे से भी कनेक्ट है, हाईवे से भी कनेक्ट है, आज फ्लाइट से भी चेयरमैन साहब हमारा होम टाउन तो कनेक्ट कर दिया मोदी जी के सरकार में। तो इसलिए डिमांड फॉर ग्रांट में जैसे मैंने कहा वांट्स आर अनलिमिटेड लेकिन मीन्स आर लिमिटेड। इसी में मैं अपना पूर्व उत्तर राज्यों की ओर मैं अपना दोनों मंत्रालय को और मंत्री दोनों को मैं लेके जाना चाहूंगा। मोदी जी जैसे आए, पीयूष गोयल जी जैसे रेलवे मंत्री बने और मेरा साथी ने बने, पूर्व उत्तर राज्यों में बहुत रेलवे स्कीम्स सैंक्शन हुए हैं, लेकिन धीमी गति से डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है हिमालय पहाड़ पर्वत है, सर्वेन इन्वेस्टिगेशंस में कहीं गति नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी के नेतृत्व में और पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में 12,000 फीट अल्टीट्यूड तुआंग जैसा जगह में रेलवे कनेक्टिविटी
और वो भी टनल होते हुए रेलवे कनेक्टिविटी करने का प्रस्ताव और सैंक्शन किया है तो मोदी जी के और हमारा रेलवे मंत्री जी ने किया है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपने सैंक्शन किया, जो अभी सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशंस है, इसमें आपको भी जाके देखना होगा। और तुआंग के, हमारे अरुणाचल प्रदेश के तुआंग के वासी जो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि रेलवे आएंगे और रेलवे देखने का उत्सुक है, और ये केवल रेलवे पब्लिक, आम पब्लिक के लिए नहीं है। मैं मंत्री जी को ये बताना चाहूंगा, जो भी रेलवे पूर्वोत्तर राज्यों में चेयरमैन साहब, रेलवे सर्विस के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटी में हमको देखना चाहिए। रेलवे कहेंगे कि यहां इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन इस रेलवे इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं होने के कारण 1962 से पहले रेलवे कनेक्ट नहीं हुआ था। ये 1962 का लड़ाई में हमारा हार के कारण ये एक रेलवे था। इसलिए आज मैं रेलवे, आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय को, ये मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, कोई भी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को इकोनॉमिकल वायबिलिटी से तुला नहीं जाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी से तुला जाना चाहिए। हमारा पैरामिलिट्री के, हमारा आर्मी के, हमारा टैंक हो, हमारा एमुनिशंस हो, जो भी जितना जाना है रेलवे से ही पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिकल वायबिलिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इट शुड बी ओवरलुक्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फॉर स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए तुआंग में आपने बहुत अच्छा गति से जा रहा है, लेकिन इसको स्पीड अप करना चाहिए। साथ में हमारा किरण रिजिजू, हमारा MOS अरुणाचल के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके वहां भी शिलापत्थर से बाम तक 2 साल 3 साल पहले आपने सैंक्शन किया, लेकिन वो अभी तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में अभी तक रखा है। तो इसलिए भी इस चीज को स्पीड से आपको ले जाना होगा, इसको आप आगे बामे तक ले जाना होगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको मैं रेलवे मंत्रालय को सुनाना चाहता हूं। हमारा होम टाउन असम मुरकोंग सेलेक्ट द लास्ट एंड ऑफ रेलवे स्टेशन नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र मेरा घर से 3 किलोमीटर है। मुरकोंग सेलेक्ट से हमारा होम टाउन पासीघाट, ये नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2 साल में इसको रेलवे लाइन पासीघाट 30 किलोमीटर तक कंप्लीशन होना था। रेलवे डिपार्टमेंट एंड रेलवे ऑफिसर भी सारा सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुआ था, लेकिन कॉम्पेंसेशन पेमेंट में यहां एक बहुत बड़ा एक इशू बन के खड़ा हो गया। आज मैं रेलवे मंत्रालय जी को, मंत्री जी को, चेयरमैन साहब आपका माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। रेलवे ऑफिसर्स, स्पेशली डिविजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर्स का ईगो प्रॉब्लम से मुरकोंग सेलेक्ट टू पासीघाट 30 किलोमीटर रेलवे लाइन अभी जो कंप्लीशन होना था, मोदी जी पासीघाट में आके अगला बार जब मैं विजिट करूंगा यहां रेलवे पहुंचेंगे, ऐसे भाषण देके एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन रेलवे ऑफिसर्स का ईगो, आपस में ईगो प्रॉब्लम के कारण ये कैसे हुआ, जिस रेलवे ऑफिसर ने कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट किया, अगला रेलवे ऑफिसर ने आके उसको कैंसिल कर दिया। ये इसमें हम नहीं मानेंगे। उसमें 100 करोड़ ऑलरेडी डिपॉजिट किया, डिस्पर्स भी हो गया। उसके बाद अनदर रेलवे ऑफिसर केम और वो डिक्लाइन करता है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं मेरा होम टाउन मुरकोंग सेलेक्ट टू पासीघाट 30 किलोमीटर को तुरंत जो रिमेनिंग कॉम्पेंसेशन है उसको कॉम्पेंसेशन को कंप्लीट करके इसको आगे बढ़ना चाहिए। और चेयरमैन साहब, ये पासीघाट टू रोइंग टू तेजू, तेजू टू परशुराम कुंड टू सोकाम नामसाई
और उसके बाद रुपये असम में ज्वाइन होता है। सुना है इसका सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन सारा रिपोर्ट रेलवे मिनिस्ट्री को दिया है। इसको भी रेलवे मिनिस्टर इस चीज को भी ये एक कनेक्टिंग अलोंग्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालय का असम एंड अरुणाचल का एक कनेक्टिंग रूट है, इसको भी एक्सपेडाइट किया जाए। जो सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन आपका यहाँ डिपॉजिट सबमिट किया हुआ है, इसको भी आप एक्सपेडाइट करने से ठीक है। और और एक सर्वे हुआ है, असम कोलफील्ड एरिया है हमारा, करसंग एंड मार्गेरिटा लेदो 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसी में लड़ा गया था, लेदो टू नामपोंग। उसका भी रेलवे लालू प्रसाद यादव जी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं 14 लोकसभा में जब मैं आपके साथ यहाँ मेंबर थे, लालू जी को मैंने रिक्वेस्ट किया मार्गेरिटा लेदो नामपोंग that will connect the Myanmar in future, और मार्गेरिटा टू देवमाली और आपका कानूबारी बॉर्डर टू नागालैंड एंड देन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू नागालैंड एंड दीमापुर। ये रूट ऑलरेडी सर्वे हुआ है और रेलवे में डिपो सबमिट है। इस चीज को भी आप इस डिमांड फॉर ग्रांट पे आप इसको आप नजर रखिए। और उसके बाद मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब, अरुणाचल एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव स्टेट है पूर्वोत्तर राज्यों में। मैं आज ऑनरेबल मिनिस्टर को रेलवे कंप्लीट करने के लिए क्या एक्सपेडाइट इसको कर रहा है, यदि कर रहा है तो इसका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एक्शन प्लान है और इसको कंप्लीट करने का क्या टाइम फ्रेम है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा सर। ये दोनों लाइन महत्वपूर्ण है और ये दोनों लाइन के बनाने का और इसके साथ जो एसोसिएटेड सब स्टेशंस हैं उसको बनाने के लिए टेंडर हो चुका है। जिस समय ये लाइन दिया गया REC PCCL को जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे नहीं किया था। तो जब ये अलॉट देखते हुए द्रास से जांस्कर तक और ले से फ्यांग होते हुए नुब्रा तक के जो 2 पावर ट्रांसमिशन लाइन है, क्या ये अभी तक पेंडिंग है? यदि है तो इसका क्या कारण है? भारत सरकार इसको कंप्लीट करने के लिए क्या एक्सपेडाइट इसको कर रहा है? यदि कर रहा है तो इसका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एक्शन प्लान है और इसको कंप्लीट करने का क्या टाइम फ्रेम है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा सर। ये दोनों लाइन महत्वपूर्ण है और ये दोनों लाइन के बनाने का और इसके साथ जो एसोसिएटेड सब स्टेशंस हैं उसको बनाने के लिए टेंडर हो चुका है। जिस समय ये लाइन दिया गया REC PCCL को जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे नहीं किया था। तो जब ये अलॉट हुआ उसका डिटेल्ड सर्वे करना पड़ा। बिना सर्वे के उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था 357 करोड़ का। सर्वे के बाद और वो एस्टिमेट बनाया था 2014 के शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार। तो सर्वे के बाद वो रेट्स रिवाइज करने पड़े और जबकि रेट्स रिवाइज करके फिर सबमिट किया गया जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले वो कारगिल से चाहते थे जांस्कार तक लाइन, उसके बाद उन्होंने कारगिल से पादुम, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो रूट में कुछ दिक्कत है तो आप द्रास से पादुम तक कर लीजिए। तो फिर से सर्वे करना पड़ा। जो डिज़ाइन था उसको फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। ये एयर इंसुलेटेड वहाँ पर सब स्टेशंस नहीं चलते हैं, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस लगाना पड़ा। और जितने भी टावर्स वगैरह थे, चूँकि बहुत ठंडा उसका एटमॉस्फेयर है, उसके लिए स्पेशल चाहिए था तो उसका फिर से डिज़ाइन करना पड़ा। तो सारे टावर्स के डिज़ाइन हो गए हैं। ये उसमें से 3 तरह के टावर के टेस्टिंग भी हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करने के लिए टेंडर भी फ्लोट हो गया है। 2 पार्ट में टेंडर फ्लोट हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर 13/3 को आने को है और दूसरा जो सबस्टेशन इत्यादि का टेंडर है वो 16/3 को आने को है। तो कार्य प्रगति पर है। लेकिन जो जेके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 357 करोड़ का एस्टिमेट दिया था वो बढ़ करके हो गया है 1063 करोड़। तो एडिशनल राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडिशनल राशि की मांग हमने की है सरकार से।
क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास पहले तो कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो एस्केलेशन है इसको मीट करे। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास इतनी राशि नहीं है कि वो एस्केलेशन को मीट करे, तो मैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय से और राशि के लिए मैं मांग कर रहा हूं। गृह मंत्रालय के माध्यम से हमने भेजा था मांग, फिर मैं मांग भेज रहा हूं, लेकिन टेंडर हो गया है। टेंडर रिसीव होने पर कुछ राशि भी हम लोगों ने एडवांस कर दिया है और काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, विस्तार से मंत्री जी ने जानकारी दिया। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह श्रीनगर ले ट्रांसमिशन जो 220 kV है जिसको पैकेज वाइज इंप्लीमेंट किया था, उसी प्रकार ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन को भी पैकेज वाइज इंप्लीमेंट किया जाएगा। उससे जो है कार्य क्षमता और बढ़ेगा, क्योंकि जांस्कर के टेरेन बहुत वहाँ उबड़ खबर रोड होने की वजह से हैवी मटेरियल वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए क्या ये पैकेज वाइज होगा या पूरा कंप्लीट हैवी मटेरियल जाने के लिए कंप्लीट टेंडर में होगा, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ एक सुझाव मैं ये भी देना चाहूंगा, जो नुब्रा ट्रांसमिशन लाइन के साथ जिस तरह आपने जांस्कर ट्रांसमिशन लाइन को जो है द्रास से आपने ऐड किया, उसी तरह नुब्रा ट्रांसमिशन वाले में दुर्बुक सब डिवीजन को भी क्या जोड़ सकते हैं? जो टेंडर हुआ है वो टेंडर हुआ है एक 220 kV ट्रांसमिशन लाइन का, और जैसे कि हमने पहले बताया था जिसका कि ओपनिंग डेट है 13/3/2020, और सब स्टेशन का टेंडर हुआ है, उसका शेड्यूल्ड ओपनिंग डेट है 16/3। तो दो पैकेज में टेंडर हुआ है। जो लाइन्स टेंडर हुए हैं वो एक है द्रास से पादू 196 किलोमीटर, जो कि जंस्कार को कनेक्ट करता है, पादुम जंस्कार को, और वहां पर हम सब स्टेशन भी बना रहे हैं पादुम में। और दूसरा फयान से डिस्किट जो 77 किलोमीटर का है, यह नुब्रा वैली को कनेक्ट करेगा। जो एडिशन आप चाहते हैं, माननीय मेंबर ने चाहते हैं, वो हमने नोट कर लिया है, उसको हम एग्जामिन करवा लेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 262 नारायण भाई। माननीय मंत्री जी वो पटल पे रखें। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं 8 मार्च 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देश की महिलाओं को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, देश की महिलाओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा दूरदृष्टि के ध्यान में रखकर देश में महिलाओं के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा आज देश के जनमानस पर है और आम आदमी पर भी है। साथ ही में माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की। इससे पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता और प्राप्त रोजगार हेतु कहीं भी व्यवसाय की शुरुआत कर सकती है और इस योजना से लाभान्वित हो सकती है। और इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि देश की महिलाओं को इस पोर्टल की जोड़ेंगे जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई प्रसार और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और कौन कौन से माध्यम से ये व्यवस्था की है? और पोर्टल में कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं और गांव, गरीब और दराज गांव में, दूर दराज गांव में जो महिलाएं रहती है उसके लिए भी रोजगार की कोई व्यवस्था की है? माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय स्पीकर महोदय, इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स IDEMI ये ऑटोनोमस बॉडी है और उसके अंडर हमारे मिनिस्ट्री ने उद्यम सखी ये पोर्टल उसका शुरू किया है। अभी तक इसमें 2012 महिलाओं को इसका फायदा मिला है और इसके साथ साथ और बड़े प्रमाण पर इसका प्रसार करने की आवश्यकता है। सम्मान्य सदस्य ने जो सुझाव दिया है इसका प्रचार और करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि हमारी अनेक स्कीम से, मुझे डिटेल्स मेरे पास है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसमें 3% अभी तक का महिलाओं को प्रायोरिटी देकर उनसे परचेस किया गया है। महिला कॉयर योजना है,
पर सबसे बड़ी बात है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए अभी स्पीकर महोदय मुझे इशारा कर रहे हैं, उनको मैंने एक घड़ी भेंट दी है। ये इसमें भी महिलाओं का योगदान है। ये खादी का बेल्ट है और इसका डायल भी खादी का और इसके ऊपर चरखा निकला है। टाइटन कंपनी ने घड़ी तैयार की है और स्पीकर साहब को भी पसंद आई और स्पीकर साहब के आदरणीय श्रीमती जी के लिए भी, लेडीज के लिए भी है, वो भी बहुत अच्छी है। उसकी कीमत 5,000 रुपये है, पर मैं कंसेशन रेट में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। आउट ऑफ मार्केट हो गई है। स्पीकर महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने की आवश्यकता है और इस बारे में मैं आपके मार्फत सभागृह से एक निवेदन करूंगा कि एक बात की कमी हमारे पास है कि हमारी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं और अच्छी अच्छी योजनाएं हम ले रहे हैं, पर उसकी पर्याप्त जानकारी हमारे सांसदों को और विधायकों को जितने प्रमाण में चाहिए वो नहीं है। मैं एक छोटा सा उपक्रम मेरे क्षेत्र में मैंने शुरू किया है। उसका पहले हमारे यहाँ मराठी में खासदार कहते हैं, तो खासदार क्रीड़ा महोत्सव हुआ, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, अब 14, 15, 16 खासदार उद्योग महोत्सव है और मैंने अपने क्षेत्र में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम हाथ में लिया। अभी तक 33,000 लोगों को मिला है और मैंने हर एमएलए को हमारे विदर्भ क्षेत्र के कहा है कि 5,000 रोजगार वो देंगे और हर एमपी अगर ये तय करता है और आप अनुमति देते हैं तो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में और इतनी अच्छी अच्छी योजना है कि आपके क्षेत्र में आप 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं और इसके लिए आपको पूरी जानकारी, फाइनेंस, सब प्रकार के मदद करने के लिए हम तैयार हैं। स्पीकर महोदय, एक सोलर चरखे की योजना है और ये सोलर चरखा सोलर पर चलता है, पावर का खर्चा नहीं है। इसके 13 क्लस्टर्स हमने मंजूर किए हैं और सभागृह में जितने लोग बैठे, जितने कपड़े पहने, इससे अच्छे कपड़े सोलर चरखे पे सूत तैयार होता है, सोलर पे वेविंग होता है, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग सोलर पे होता है और रेडीमेड गारमेंट उसके बनते हैं लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए और उसका एक्सपोर्ट होता है। ये जो डेनिम खादी आई है ये इतनी पॉपुलर है कि हमारी एक प्राइवेट मिल खरीदती है और अमेरिकन कंपनी है जो लेवाइस करके, लेवाइस, वो पूरा हमारा डेनिम खादी खरीद लेती है। तो खादी में काफी बदल हुआ है। तो मैं ये 13 क्लस्टर्स अभी हम मंजूर किए। इसमें एक क्लस्टर में 2,500 महिलाओं के घर के लिए एक एक महिला को 2-2 चरखा मिलता है, सोलर चरखे, और उसकी कीमत है 40 से 45 हजार। और बाद में एक ही उसी जहां कपास होता है उसी गांव में ये योजना होगी तो 4,000 लोगों को एक योजना में रोजगार मिल सकता है। महात्मा गांधी जी के बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी में उनका उद्देश्य था, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये उसके लिए सबसे अच्छी योजना है जिसमें लाखों महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। स्मृति ईरानी जी के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने 25% सूत केवल सोलर चरखे का लेने का मान्य किया है और अगर ये सूत अगर हम उनको भी सप्लाई करते तो 2 लाख महिलाओं को काम मिलेगा। तो मेरा सभागृह से ये निवेदन है कि इसकी योजना के लिए आप जरूर, जैसे अनेक कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे अधिकारियों को बुलाकर हमारे सांसद इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, 10,000 रोजगार मिल सकते हैं और ऐसी योजना महिलाओं के लिए हमने प्रायोरिटी रखी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, शहरी क्षेत्र के लिए बाद में विचार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा विकास की और जो 115 डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए भी प्रायोरिटी है। हम फाइनेंस करने के लिए भी तैयार है। हमने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं और अभी जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में वो भी बढ़ा है और बढ़ाने की आवश्यकता और फाइनेंस वित्त मंत्री जी का बहुत सपोर्ट है। मेरा सभी सांसदों को कहना कि इस योजना के बारे में कोई कार्यक्रम करके जरूर इसमें आइए और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इस कार्यक्रम को चलाइए और 10-10 हजार रोजगार कम से कम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके मार्फत अगर मिलेंगे तो अच्छा काम होगा। उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी है, आप जरूर इसमें इनिशिएटिव लीजिए, सरकार पूरा सहयोग करेगी। पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि गडकरी साहब का कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो जवाब सुनने के लिए भी एक अवसर होता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि इस पोर्टल द्वारा महिलाओं की बेरोजगारी का चयन किस मापदंडों के आधार पर किया जाता है और उनके व्यवसाय के सशक्त करने हेतु उनके उत्पाद को बाजार और संरक्षण सुविधा के तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद
भी इस फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है या नहीं, तो माननीय मंत्री जी ये बस बताइए। स्पीकर महोदय, ये पोर्टल में सब कुछ है, पर अभी तक केवल इसमें 2012 महिलाओं ने इसका फायदा लिया है। बहुत कम है, बहुत कम है। और जो मैंने पहले ही मान्य किया कि इसके बारे में सबसे बड़ी अड़चन इस मिनिस्ट्री में आने के बाद मेरे ध्यान में आई कि कोई भी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, तीनों बातें की जरूरी होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अच्छी योजना है, मैं मंत्री बनने के बाद अभी भी मुझे पूरी तरह से उसकी अध्ययन नहीं हुआ है, तो आप बाकी लोगों के लिए कितना पहुंची है ये प्रश्न है। और इसलिए इनिशिएटिव लेकर अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और हम भी ले रहे हैं, तो ये पोर्टल जो है अभी ये सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसमें कम से कम 2012 के बजाय 2 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन चाहिए था, और मैंने पहले ही मान्य किया है कि इसको और लोगों तक पहुंचाना, मदद करना, और बाद में पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम में हो, बाकी स्कीम में हो, प्रधानमंत्री गारंटी रोजगार गारंटी स्कीम है उसमें हो, सब जगह पर 80% महिला उसमें है, और महिलाओं को जिससे रोजगार मिल सकता है ऐसी अनेक योजनाएं हमने तैयार की है। एक तो योजना केवल 1 लाख रुपए की है, पुराने कपड़े खरीदना, उसकी थैलियां सिलाना, और जो कपड़े की चिंदी बाकी है उससे उसके कारपेट तैयार करना। 1 लाख रुपए की योजना है जिसमें कम से कम 50-60 महिलाओं को काम मिलता है। ऐसी छोटी छोटी योजना केवल महिलाओं के अलग से निकली है। मैं आपके संसदीय क्षेत्र में आप इसको इनिशिएटिव लीजिए, हम मदद करेंगे। श्री जसवंत सिंह जी, श्री मोहम्मद जावेद जी। सर, माननीय मंत्री ने बताया कि मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ 2012 महिला इसमें रजिस्टर्ड है, और अफसोस की बात यह है सर कि बिहार, जिसकी आबादी लगभग 8% है हिंदुस्तान की आबादी की तुलना में, वहां सिर्फ 10 है। और आप जानते हैं सर कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे तो बिहार के लेबर मिलेंगे। तो मेरी उनसे जानकारी ये है कि बिहार में इस तरह की योजना को बेहतर बनाने के लिए क्या उनका सोच है, और कब तक ये आंकड़ा जो 2000 का है, जो खुद कह रहे हैं कि 2 लाख होना चाहिए, तो मेरे समझ से 2 लाख नहीं, कम से कम 20 मिलियन, 2 करोड़ होना चाहिए सर। और उस दिशा में माननीय मंत्री जी क्या करना चाहते हैं, और खास करके बिहार और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जो सीमांचल का एरिया है बिहार में, सबसे ज्यादा लेबर वहां से पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उनके उसको रोकने के लिए वो क्या करना चाहेंगे उस एरिया में? थैंक यू सर। सर महोदय, केवल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैंने बताया, फिर कायर योजना में 1811 है, वैसे प्रधानमंत्री गारंटी स्कीम में है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी हनी का उत्पादन 10 गुना बढ़ाने के लिए योजना बनाई है, अगरबत्ती में महिलाएं बड़े प्रमाण पर काम कर रही है, सोलर वस्त्र की बात मैंने की है, अभी बांबू के इसमें कुछ महिलाएं, तो अनेक प्रकार की योजना है। आप आगे खादी ग्रामोद्योग के इसमें हम लोग योजना बना रहे हैं कि खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी स्पेशल शोरूम और ब्रांडिंग करके हम लोग उसके लिए बेचेंगे। तो अनेक जगह पर महिलाओं को रोजगार मिला है, बिहार में भी मिला हुआ है। पर एक बात जो सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं कि इसमें जितनी संख्या में हमें बेनिफिट देना चाहिए उतने प्रमाण में नहीं हुआ है, और इसकी समस्या ये है कि एक तो महिलाओं से सुमोटो इनिशिएटिव प्राप्त होना, वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे तरफ से उनको योजना पहुंचाना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सब लोक प्रतिनिधि एमएलए एमपीज है, वो अपने क्षेत्र में इन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इनिशिएटिव करेंगे। कमियां होगी तो हमें बताएंगे। बैंक, अभी आपको मैं बताते मुझे खुशी हो रही है कि निर्मला जी ने और मैंने अशोका होटल में सभी बैंकों के चेयरमैन और एमडी की मीटिंग ली, और अलग अलग योजना में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला किस प्रकार से बैंकों ने फाइनेंस किया, इसका हमने ब्रांच वाइज हमने डाटा इकट्ठा किया और मॉनिटर कर रहे हैं। तब ध्यान में आया कि 22% लोगों को लोन ही नहीं दिया था। तो पूछा गया क्यों नहीं, तो बोले हमारा मिनी टारगेट पूरा हुआ। तो बैंकों के चेयरमैन को मैंने कहा टारगेट के जगह पर आप मिनिमम टारगेट शब्द यूज करिए, और बाद में निर्मला जी ने भी उनको सूचना दी, और बैंकों को यह सूचना है कि मैक्सिमम इन सब योजना में फाइनेंस करें। प्रॉब्लम ये जो है कि इसमें और ताकत लगाने की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से हम प्रयास करें, और इसीलिए मैंने नम्रता पूर्वक सभी सांसदों को कहा कि योजना हमारे है, पैसा देने वाले हम तैयार हैं, आप ऐसा क्यों नहीं तय करते कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
10,000 लोगों के लिए योजना शुरू करूंगा और 10,000 महिला पुरुषों को रोजगार दूंगा। और अगर आपकी नहीं होती योजना तो मेरे पास आइए, मैं आपको फाइनेंस करने में, योजना देने में, सब्सिडी देने में, सब प्रकार के फंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल करने में सब तैयार हूं। अब इसको सब प्रकार से इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में लेते हुए इसको पुश करने की आवश्यकता है। सरकारी लेवल पर हमारा प्रयास है, राज्य सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। अगर आप लोग भी एक एक इसमें आगे आते हैं तो मुझे लगता है इसका फायदा होगा और इसमें निश्चित रूप से आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में योजनाएं भी सक्सेसफुल चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और बिहार के लिए, बैकवर्ड एरिया के लिए जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वो, और महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये विशेष रूप से हमारे कंसंट्रेशन के विषय है। हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 263 श्री विजय कुमार। Question number 263. The House, sir. Hasda. Speaker sir, through you, I would like to know from the minister whether the government is aware of the fact that due to the prime time slots of flying given to the private airlines is causing a severe loss to the government airlines, that is to Air India. Whether the government has any proposal to change and allot the prime slots of timing of flying to the public carriers so that our public sector, private sector competes with our public sector, not the other way around. Sir, the question relates to amenities provided at airports, but I'm very happy to address the issue raised by the honorable member, which essentially relates to prime time slots as between the Air India, the state-run airline and the private carriers. Sir, I want to assure the honorable member that all airline slots, whether these arise due to the cessation of operation of a private carrier as happened a year ago, or those slots which are not being utilized by any particular carrier, whether the carrier is in the private sector or is a straight-run airline, these are constantly under review. And if you look at the growth of civil aviation, where despite having only a penetration of 7 to 8%, we are growing in double-digit figures, that would bear it out. We do not allow any carrier to take a slot and then not utilize it. I mean, the slot has to be utilized. There are prescribed rules and procedures to ensure that. And I want to assure the honorable member that if for some reason any carrier who has been allotted, which has been allotted a slot, is not in a position to utilize it, we will fairly soon be able, that will show up and we will rationalize it. This is both in terms of domestic routes as well as our traffic on international routes. सर, हमारे झारखंड में 2 एयरपोर्ट्स अभी तो रांची में है, सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक देवघर में और जमशेदपुर दलबुंगघर में बने हैं। वो कब तक स्टार्ट हो जाएंगे और फुल पैसेंजर कैपेसिटी कब से स्टार्ट करने की प्लान हो रही है, क्या उसमें तैयारी हो रही है, उसकी जानकारी थोड़ी सी। Question is on amenities at airport, but I'm very happy to respond to the question on the airport in Jharkhand on Devghar. Sir, Devghar Airport is a tripartite MOU project between the Airports Authority of India, the state government and the DRDO of the Ministry of Defence. The overall project is about 400 crores, out of which the construction of the terminal building or ATC tower, which is under progress, is about 77 crores. The construction of the boundary wall, the RCC drainage, security watchtower is about 34.82 crores. The airport is being developed, sir, to be able to take A320 type of aircraft. And as I mentioned, the overall cost is about 400 crores. The date I have been given is that this whole work should be completed by September 2020. That is in a few months from now. Of course, this completion date will be dependent on some tasks which the state government has to carry out, like a village road crossing funnel to be closed, approach roads to a building to be constructed, electricity and water connection, and trees which require to be transplanted. But with the constant monitoring this and other projects are being subjected to, I am reasonably hopeful, sir, that the September 2020 date will be complied with. निशिकांत दुबे जी। इनका तो सर आगे भी लगा हुआ है, इनका क्वेश्चन है सर, लगा हुआ है, चौथा लगा हुआ है।
श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Speaker Sir. Speaker Sir, the Airport Economic Regulatory Authority exercises superintendence over 22 major airports which have a footfall of over 1 million passengers a year. Now, under Section 16 of the Airport Economic Regulatory Authority Act, the authority levies 3 kinds of charges: a passenger usage charge, an airport tax, and a user development charge. Now, these charges, Mr. Speaker, sir, are determined on the basis of the annual revenue requirement. Mr. Speaker, sir, these charges are absolutely exorbitant, and the passengers are being ripped off, and no commensurate facilities are being given by private airports. There are 150 to 200 appeals which have been filed against the decision of the Airport Economic Regulatory Authority with the Appellate Forum. Now, the jurisdiction of the Appellate Forum is continuously being shifted. It was first with the Competition Commission, then it went to the Consumer Forum, now it is with the TDSAT. What I would like to specifically ask the Minister, is he aware of the huge anomaly which is there with regard to the determination of these charges under Section 16 of the Act, and the fact that out of 150 appeals which have been filed, only 5 have been disposed of in the past 5 years, and what exactly does the Minister and his ministry plan to do to rectify this? So, to the question on exaggerated charges, to the question on the procedure, the institutional mechanisms, it is not for the minister in the Ministry of Civil Aviation. All I can tell you is we can encourage the appellate body to do its job more quickly. As far as we are concerned, we are absolutely clear that the 23 major airports which are under AERA and these charges, these have to be worked out rationally. I have had occasion in the past several months that I have been in this ministry of telling the airport operators of both the Airports Authority and them to constantly review these charges. I have had the occasion to revise some of these charges which are under our domain, but where institutionally a mechanism lies either with another forum or a court, surely it is not the honourable member's suggestion that I interfere into that turf. But on the larger question, we are in the larger question. Yes, the government does have the responsibility. Well, that is precisely the point. The government has the responsibility, and the government is fully conscious. You can't allow the situation to go on like that, Mr. Minister. The reason why बोल के एक लाइन में बैठ जाओ ना फालतू इनको क्यों क्लैरिफिकेशन दे? That's the reason why the appeals are not being decided. And you're not doing anything to rectify it. That's my charge. Sir, TDSAT, my learned colleague, even he would be aware, is the appellate authority which we have no control on. The Ministry of Civil Aviation has no control on TDSAT. If he is recommending, if you would show me, sir, if I am allowed to respond. Is it a debate or a question hour? What is this going on? Sir, I am very happy to answer this question. I am also quite happy to enter into a debate, even if it looks like a slinging match. But I want to tell my honourable member that he is a lawyer by training, a lawyer by profession. If there is a quasi-judicial authority, I would be very happy to lend my voice along with his to ask for a rationalization. But I cannot do the work of the quasi-judicial authority. And surely even my learned member, who often displays traits to the contrary, would be aware of that. Yes. Dayanidhi Maran ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, I would like, sir, my question to the honourable ministers in 2 parts. First part regards to the amenities in Chennai, domestic and international airports, sir. Sir, the amenities, so in your answer, you stated the basic amenities provided throughout India. So specifically to Chennai, during peak hours, passengers have to wait for more than 45 minutes
to pass the security clearance, sir. So it is quite a tormenting effect when people are trying to catch their flights. And you may say that the new extension is coming up, but it's going in a very slow space. And also the new airport site has not been formulated, nor the funds been allotted by the Tamil Nadu government. So in being this, can you make some special provisions to ensure, let me finish as two parts, sir. So to ensure that during peak hours, more security personnel or more scannings are put so that to speed up. Similarly, sir, in the immigration of the international airport in Chennai, during peak hours, it is 1.5 hours to 2 hours for passengers to go through immigration and also to come back. So my second part, sir, since the coronavirus is now seriously, and I've been seeing photographs in Mumbai airport, every airport, long queues where for screening the passengers who are entering the country. So, sir, this is also tormenting. And one day I asked, sir, are you providing hand sanitizing solutions for the entering the airport so that passengers are also clean, which can reduce the spread of coronavirus into the country, sir? This is a suggestion, sir. Can you just answer, sir? Sir, I would be very happy to answer both the questions and comments which the honourable member has raised, one with specific reference to Chennai Airport and the other in relation to the arrangements which we have made at the airports to deal with the spreading coronavirus issue. Let me start with the second first. Sir, on an average, something like 70,000 passengers come to different airports in the country, 30 of them which deal with international traffic. Since the coronavirus started, this number has come down from 70 to about 62 or so. We started by screening passengers coming in from what were regarded as the 12 most seriously affected countries. As the information became available, and I must tell the honourable member through you, sir, that the World Health Organization, acting on this comprehensively only around the 31st of January, we started all our procedures, including repatriation of Indians stranded in Wuhan and other places, on 2 weeks ahead, on 17 January. Now, with effect from 4th March, we are screening all incoming passengers from whichever country they come. Daily, several times a day, I personally monitor the queues, the arrangements at the 30 international airports where passengers are coming in. The number of passengers coming in had come down to 62,000 per day. With the travel advisory that we have issued yesterday, sir, it is my expectation that it will come down it has come down a little, 60 to 40, may come down even further. Even at the height of the peak time, as it is called, when maximum number of flights come, the total amount of time being taken at the two large airports, I mean Delhi, which has an annual passenger throughput of 70 million, and Mumbai, which has a passenger throughput of 55 million, it was between 8 and 10 minutes on an average, going up to 20-25 minutes. I have personally examined suggestions by some passengers that they were coming through the screening without having been screened through the airport. Those reports are just not true. Every single incoming passenger is being screened. That that provides a response to the honourable member's assertion about what we are doing to spread it. Whatever is humanly possible in terms of physical arrangement. To prevent it, not to spread it. Now let me explain. If a crowd gathers, Mr. Speaker, sir, at a particular airport, if there is congestion and a lot of people are coming, first of all the passengers who are coming from the seriously affected countries come to the aircraft comes to a different bay. So the screening procedures are completely separate. The baggage of those who are coming in from those affected countries is also separately treated. So that is a major prevention measure. So that you don't allow the passengers who are normal, who may not have the symptom. But every passenger is screened. Those from most seriously affected countries have a separate lane and procedure. Those who are coming in even from other countries are screened. Basic thermal screening, if they test positive, they will then go through the proper testing procedure. I would now like to come through Chennai. If I may, sir, because the honourable member has asked on Chennai, and that is more dear to his heart, equally dear as coronavirus.
Sir, the expansion plan, dear to, not, you want to keep it up. I didn't say dear to that. It's a concern, is the concern, and to prevent it is very dear to his heart. Sir, the expansion plan for Chennai Airport is about 2,200 crores. Work is being done. I take the honorable member's point that perhaps work is slow, but I think he answered the question himself when he said that the state government has not been forthright and totally, land has not been made entirely available. As far as we are concerned, this project is being executed by a commercial entity, Larsen & Toubro. We are monitoring it. Insofar as crowds gathering, or rather queues 30-40 minutes, I want to share with the honorable member that this is partly reflective of the overall national situation. Today we have a passenger throughput in our airports of 345 million or so per year. I see this in the next 2-3 years rising, sir, to 1 billion passengers. We have about, when Jet Airways ceased operation, we had about 560 aircraft in the skies. Today it is well over 700 plus. My secretary uses the figure 1,200. I think we'll be having 2,000 aircraft in the sky. Now, in order to deal with this, we need to expand the existing facilities at airport. We need to build new airports, and this is precisely work in progress. Insofar as Chennai is concerned, I'm very happy to sit down with the honorable member, whom I've had the privilege of knowing for many years, and see what we can, as a central government, do to expedite matters which fall either within the domain of the state government or other agencies. Thank you, sir. श्रीमती दर्शना जी. थैंक यू सर. जैसे कि यात्री की सुविधा के लिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो सूरत का ग्रोथ 250% हुआ है. इसी के हिसाब से फ्लाइट की आना जाना भी होता है. रात को 4 फ्लाइट एक साथ में हो जाती है, और एयरपोर्ट के ऊपर 3 ही फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है, तो चौथी फ्लाइट आधे पौने घंटे तक बाहर खड़ी रहती है. फ्लाइट एयरपोर्ट के अंदर भी लोगों को बैठने की जगह थोड़ी कम है. हमारा नया एक्सपेंशन का खातमुहूर्त भी हो चुका है, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं निकला है. और सर ने जैसे अवेयर है, उनको अर्बन मिनिस्ट्री भी है, तो उनके पास तो सूरत का ग्रोथ कितना है, और इंटरनेशनल फ्लाइट भी जब मिल चुकी है जो रात को एक ही बार चलती है, तो मेरा आपके माध्यम से उनको प्रश्न यही है कि जो ये सुविधा बढ़ाने के लिए और एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करने के लिए कितना टाइम और लगेगा. थैंक यू. Sir, I've had the privilege of discussing with my distinguished colleague many times the timelines for Surat Airport. Surat is indeed, the rate of growth of traffic is very, very impressive, and we need to both expand the facilities, and we also need to ensure that the more flights that come in, we have the infrastructure to deal with that. I have not had time to change my views on the timelines which have been given, but my own sense is that there is no change in the timeline since I'd last discussed it with her, and my own belief is that Surat, we've just added flights from Bhubaneswar, we've added flights from I don't need to give her the figure. She knows that the expansion work is of 350 crores, and the date of completion continues to be 2022. There's no change in that, and she is aware of this. माननीय मंत्री जी, मेरे पास कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय सदस्यों की निजी एयरलाइंस के बारे में शिकायत आई. उनको मैंने आपको कागज दिया है, उनकी भी जांच करा लें एक बार. प्रोफेसर सोगत राय जी, अंतिम वक्त. Sir, the question was regarding the measures taken by government to improve the passenger amenities at airports across the country during the last 3 years. Sir, in our own airport at Kolkata NSCBI airport, of which I am the chairman of the airport advisory committee, I find the queues growing longer and longer. I spoke to the airport director. He said he had no power in the matter because the security check is done by the Central Industrial Security Force, CISF, which is under control of the Home Ministry. He also told me, the airport director, that he has no control over security because that is under Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, which is also under the Home Ministry. Now the
airport authority is being able to give no relief to the passengers who, like in Chennai, have to wait 45 minutes for security clearance. Sir, through you, I'd like to ask the Honorable Minister whether he will take a meeting with the Honorable Home Minister, the powerful Home Minister, so that the problems between the Airport Authority, Ministry of Civil Aviation, CISL, and the Bureau of Civil Aviation Security can be sorted out. The airport director tells me he does not have capacity to issue a single pass without BCAS. तो आप क्यों नहीं बैठते उनके साथ बात करने के लिए और पैसेंजर को रिलीफ देने के लिए? Sir, I'm fully aware of the concerns being raised by the honorable member. Calcutta has developed into a major hub. There are flights from Calcutta being used by one of our airlines in particular to entire East Asia, to all other countries in the Far East, Southeast Asia, etc. Sir, the real issue is that Calcutta today has a passenger throughput of 22 million passengers per annum. It has a capacity for 26 million, but it is already utilizing 22 million. And this traffic is growing. We need another airport. Now we need to be able to allow the CISF and the Bureau of Civil Aviation Security to perform their job in the manner required, without in some way to ease the pressure on the queuing. But it will be most international airports in the world which handle 100, 140 million passengers. That's the norm. But our effort is to reduce it. And that reduction will come when we get another airport, we get a widening. But I'm quite happy to meet my senior colleague, the Home Minister or his Ministers of State. I take meetings and I want to assure the member that we are very much seized of the matter, and we are determined to find ways and means of easing the pressure and reducing the waiting time on account of security checks at the airport. विनायक राउत जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. प्रश्न यस सर, थैंक यू. प्रश्न पैसेंजर एमिनिटीज और साथ साथ टाइमली अराइवल एंड डिपार्चर फ्लाइट के बारे में है, लेकिन तो भी मंत्री महोदय अच्छी जानकारी दे रहे हैं. तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो एयरपोर्ट आपके माध्यम से चालू होने वाला है, क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि 1 मई को सिंधुदुर्ग का एयरपोर्ट चालू करने के लिए कुछ आपने प्रावधान की हो, और करने नहीं किया तो करने की आवश्यकता क्या, आप उसके बारे में हमें जानकारी देंगे? Sir, we stand committed to operationalizing that airport at the earliest. Now, whether the date is 1st May or 10th May, etc., there is, so far I'm told, there is no slippage on that, but we keep monitoring it. Factors beyond our control come. Now, insofar as waiting time at the airport is concerned, we are also trying to install technology. We have provided 200 body scanners which have been installed throughout the country. If you are going through those body scanners, you don't need to wait for being physically checked, etc. So those answer is already provided as part of my answer to the question, and we have other technology which is being implemented all the time. On 1st May, the flights will be operational. As I said, I stand committed to that. I only hope between now and 1st May we don't have any other sidetracking or any other derailment, but we are committed to that. Thank you. माननीय मंत्री जी, विजय बघेल जी को आगरा वाले सांसद को बुला के चर्चा कर लेना. उनका प्रश्न ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 264, श्री प्रताप राव. क्वेश्चन नंबर 264. क्या सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने ग्रामीण क्षेत्रों से खेलों के संवर्धन हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ तो तत्समय ब्यौरा क्या है? सर माननीय, अगर कहीं मिल जाए तो इनकी सीट तो चेंज कर देना. बिल्कुल पोल के पीछे है, खंबा के पीछे है. सर, ग्रामीण भारत के लिए तो हम लोग सबका ध्यान जाना ही चाहिए. भारत बहुत बड़ा देश है. हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के लिए हम लोग विशेष रूप से कार्यक्रम बना रहे हैं.
और उन्होंने जो सवाल पूछा है माननीय सदस्य जी ने कि रूरल इंडिया के लिए, ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए अलग से क्या प्रोविजन किया है। हमारा जो भी कार्यक्रम चलता है युवाओं के लिए, वो ग्रामीण इलाकों को खास करके फोकस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारा कार्यक्रम मैं माननीय सदस्य को मैं भिजवा दूंगा अगर उसको डिटेल में पता चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में राष्ट्रीय खेल विकास निधि से और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से संचालित खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने के हेतु अपने कार्य योजना में शामिल करेंगे क्या? और क्या सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार कर रही है? अगर कर रही है तो कहां और कब तक तथा कितनी धनराशि का प्रावधान किया जाएगा? सर, महाराष्ट्र खेल के क्षेत्र में काफी आगे है और अभी अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 आए हैं। तो महाराष्ट्र में इसका बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए जो हमने कुछ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एकेडमी को जो सपोर्ट किया है उसमें भी अगर आप सूची देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 आते हैं। अभी अभी हमने काफ़ी, क्योंकि लिस्ट लंबा है इसलिए मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मुंबई के अंदर पुणे, नांदेड़ हो या नागपुर, मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो या कोस्टल, सारा रीजन में जो पोटेंशियल को देखते हुए महाराष्ट्र में हमने बहुत सारा खेल का एकेडमी सपोर्ट किया है और साथ साथ साई का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका एक्सटेंशन हम लोग जो कहते हैं वो भी दे रहे हैं। और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मलखम्ब जैसे जो खेल है महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए भी हम इंडिजिनस गेम्स का नाम से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम दे रहे हैं। दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो मंत्री जी का जवाब है सर, हमने प्रश्न पूछा था रूरल स्पोर्ट्स के लिए और रूरल एरियाज के स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। भारत सरकार बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओलंपिक में कैसे पदक जीता जाएगा, एशियन गेम में कैसे पदक जीता जाएगा, लेकिन जब मैं इनका चार्ट देख रहा था सर, तो दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जो पैसा है वो नील हो गया है। और स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट, जिस पर कि ये पूरा प्रश्न था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं पैसे की कमी के कारण, उसमें भी पैसा जो है मंत्री जी जीरो है। आपने जहां पैसा बढ़ाया है वो खेलो इंडिया है। और खेलो इंडिया की जो समस्या है वो समस्या ये है कि आप कहते हैं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और इस कारण से स्टेट जो है इसके लिए जिम्मेवार है। और उसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है सर, जो मंत्रालय का ही रिपोर्ट है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके कारण कि स्टेट को पैसा नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि एक पूरे दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश यदि स्पोर्ट्स में आगे हुआ, तो जैसे एसईजेड डेवलप हुआ है उसी तरह से स्पोर्ट्स सिटीज या स्पोर्ट्स जोन डेवलप होने की बात हमेशा बार बार उठती है, जिसमें टैक्स इंसेंटिव कैसे होगा, जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे होगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट क्या होगा, उसके बारे में माननीय मंत्री जी का विभाग कुछ कर रहा है या इसके बारे में, रूरल स्पोर्ट्स के बारे में भारत सरकार का क्या इरादा है, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपके खेलों के प्रति इतनी रुचि है लोगों की कि कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खेलों के बारे में रुचि है। ये एक अच्छा देश के प्रति संदेश है कि खेलों के प्रति सभी माननीय सदस्यों की रुचि बढ़ी है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। जी सर। आप एमपीज को लेकर एक स्पोर्ट्स बनाओ। करते हैं। सालाना सारे एमपीज को स्पोर्ट्स में बुलाओ कि हम एमपीज क्या कैसे हमको तंदुरुस्त रखती है पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको फिट इंडिया प्रमोट करने के लिए भी बधाई दिया है। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने पिछली बार भी युवा मामला और खेल को आपने चर्चा का मौका दिया था डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में, उसमें काफी चीज का जिक्र हुआ। जो माननीय सदस्य निशिकांत जी ने जो कहा मैं सहमत हूं
खेलों को बढ़ावा देते देते हम जो पैरा ओलंपिक्स है दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स, इसको भी हम भूलना नहीं चाहिए। उनके लिए भी सदा हम प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे ऑलरेडी हम अभी काफ़ी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के लिए हमने जो भी प्रावधान रखा है, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स इस वक्त सस्पेंडेड है, वो आपस का झगड़ा का वजह से हम पैसे देने के लिए पैसा अभी पड़ा हुआ है, हम देना चाहते हैं, लेकिन वो आपस में झगड़ा करके मैटर कोर्ट में चले गए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो इसके वजह से अभी खर्चा नहीं कर पा रहा। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसको सस्पेंशन को उठा करके हम जल्दी पैसा देने का व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक जो स्पोर्ट्स का रूरल एरिया in this whole process, I request you to add a pit lane in Nadikudi. That is where the junction is. If you add a pit lane, it will act as a place where we can start few of the trains in the coming years, because that is where we have the division where one line will go to Tirupati, one line will go to Guntur. So that will become a junction. That is a junction, sir. So if you can add a pit lane, I request you to do that. And second request from my constituency is we have numerous times we have requested the ministry to add stoppages. We're not expecting you to stop a train every 30 kilometers or every 40 kilometers. I know we want to speed up the trains. We want the trains to run in a much better way. We're not expecting a train to stop every 30 kilometers, but there's a train which runs from all the way from Guntur to Secunderabad, which is almost like a 4-hour journey. There is no stop between that, sir. So all we are expecting is the Intercity Express to stop near Nadikudi, sir. It's in between both the stations, almost a 4-hour journey with no stop, sir. So we have made the request numerous times. So please try to facilitate that, sir. And extension of Uday Express, which has been a huge success, is running between Vijayawada and Vizag with the full capacity, and it's a huge success, sir. We request you to extend that from Vijayawada to Guntur. So it runs from Guntur to Visakhapatnam instead of Vijayawada to Visakhapatnam, sir. It will actually ease the traffic also of Vijayawada station, and it will add more passengers to the train if you extend it to Guntur, sir. And last one, RUBs and ROBs, sir. With regards to RUBs, yes, the railways is taking good care of it. The railways is putting all the money into the whole project and doing it. So the issue with the RUBs is when it's a rain-affected area, most of these RUBs in the rainy seasons are getting submerged under water, sir. So almost 3 months there is no connection between the villages when it comes to RUBs. So we expect the railways to actually talk to their engineers and come up with a solution with regards to that. With coming to the RUBs, you are asking for the road over bridge. You are asking 50% to be compensated by the state and 50% to be compensated by the center, sir. But the problem is most of the municipalities in states like Andhra Pradesh doesn't have that much of resources to actually do it, sir. So instead of having 50% across the country, why don't you decrease the contribution from the state from 50% to say 20% or 25%, so that municipalities in some places the ROBs are there in the rural sector also. So Panchayat doesn't have that much money to fund that project. So if you can decrease it by taking all these issues into conscious, it will help to achieve your target by 2022 to have no manned gates across the country, sir. So I hope you will do that. Please, this is a new, as I mentioned earlier, railways is the neural network of this country, and this is the thing that will add the growth in commerce to the country. I hope you will take all these things into consideration and do maximum benefit to the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Thank you, Sri Arvind Samji. थैंक यू चेयरमैन सर। ग्रांट ऑन रेलवे बजट के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। 166 साल पूरे हुए। 1853 साल में ये शुरू हुई, पहली रेल शुरू हुई इस देश में, मुंबई ठाना। अब वहां से लेकर आज तक हम प्रगति कर रहे हैं। और ये नहीं कि मैं टिक्का टिप्पणी आलोचना करने के लिए खड़ा, जो अच्छा है उसको अच्छा कहूंगा।
सबसे पहली बात यह कहूंगा कि मुझे खुशी इस बात की है कि आजकल रेल के प्लेटफॉर्म बड़े साफ नजर आते हैं, बड़े साफ नजर आते हैं। स्वच्छता अभियान अच्छी तरह से चल रहा है, उसमें प्रगति की आवश्यकता और भी है, लेकिन हमने जो एजेंडा बनाया उसमें शुरुआत कर दी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की। अब आप जानते हो कि मुंबई शहर में अभी सौगत राय जी भी कह रहे थे 75 लाख लोग रोजाना लोकल ट्रेन से यातायात करते हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में यातायात करते, आप तो मुंबई शहर बहुत बार आए हो, आते रहते हो। हमारे पीयूष जी तो हमारे मुंबई के हैं, उन्होंने कॉलेज के समय रेल में ही सफर किया है। आज मुंबई की आबादी इतनी बड़ी है, स्थित और बाहर के आने वाले लोग करीबन 2.5 करोड़ लोग मुंबई शहर में आते हैं, विस्तार के लिए जगह नहीं है। और ऐसी स्थिति में उस लोकल ट्रेन में या अन्य ट्रेनों की सुधार करने के बजाय हम बुलेट ट्रेन पे जो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उससे वहां के लोग दुखी है। नहीं कहते कि वो प्रगति नहीं चाहिए, लेकिन क्या उतनी आवश्यकता मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अगर करनी है तो मुंबई दिल्ली करो, वो तो 2.5-3 घंटे की जर्नी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मुंबई अहमदाबाद मुंबई। और आज आप जानते हो कि जबकि हमने जीएसटी के पैसे राज्य को नहीं दिए हैं और हमारे टैक्स इवैल्यूएशन के जो आ रहे पैसे डिवॉल्वमेंट में वो भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार आपको कंट्रीब्यूशन करना है, वो कहां से करेगा? उनके खुद के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो यह बात आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। तेजस जैसे ट्रेन आपने लाई, उसका निजीकरण चल रहा है, जो सौगत राय जी भी कह रहे थे। लेकिन ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो बात तेजस जैसे आप कर रहे हो वो अच्छी बात है। कोकण इज एंटायर जोन ऑफ अ टूरिज्म जोन। महाराष्ट्र में तो बहुत जगह है टूरिस्ट जोगे की, सोचोगे तो अगर ये पैसा वहां भी डाइवर्ट करोगे, जैसे तीर्थ क्षेत्र है, जैसे हिल स्टेशन है, जैसे समुद्री किनारा है, कोकण तो आप जानते हो पूरा, या बाहर से अलीबाग से लेकर शुरू करो गोवा तक की बॉर्डर, जब चाहे वहां, उसमें अपने मुंबई गोवा ट्रेन लाई। मैंने 2014 में गौड़ा साहब रेल मंत्री थे, उसके बाद में सुरेश प्रभु जी थे, तो उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन की बात की थी और कहा था कि मुंबई गोवा भी हम हाई स्पीड करेंगे। अब आप जानते हो मुंबई गोवा में क्या स्थिति है। कोकण रेल के लिए स्वर्गीय मधु दंडवते जी जो रेल मंत्री रहे, उनका प्रयास रहा, वो बनने के बाद में कोकण रेल बनी। आज भी सिंगल ट्रैक है, कहीं कहीं हो रहा है। वो अगर डबल ट्रैक हो जाएगी, डबल लाइन हो जाएगी तो कुछ आगे बढ़ेगा। चल कोशिश हुई थी, लेकिन जिस स्पीड से उसको होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और वहां आप देखोगे तो बहुत हालत है सर, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने 150 ट्रेन पब्लिक प्राइवेट वाईफाई की बात की, मैं तो वाईफाई से आगे कहता हूं सर, सभी को वाईफाई ऑपरेट भी नहीं करना आता। आज आप देखोगे कि मोबाइल डेंसिटी बहुत बड़ी, कॉमन आदमी भी मोबाइल यूज करता है, सभी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होता सर। आप एक टोल नंबर दे दो, कुछ भी तकलीफ है इस टोल नंबर पे डायल करो। जैसे अभी कोरोना के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो लोग कॉल कर रहे हैं सब जगह से कि क्या हो रहा है। एक कोरोना वायरस को लेकर भी रेल को कदम उठाना पड़ा, हर स्टेशन में, हर भाषा में। अभी मैंने आज मंत्री जी से यही बात की कि कोरोना वायरस पे आपने जो अनाउंसमेंट दे रहे मोबाइल पे, उसका स्वागत करता हूं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात वो कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें भी भाषाओं का हिंदी और अंग्रेजी है। अगर रीजनल लैंग्वेज भी में आ जाएगा तो लोगों के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो भी एक बात है, रेल उसका इस्तेमाल इस तरह से करे ताकि वाईफाई या बजाय टोल नंबर और अनाउंसमेंट कोरोना वायरस के बारे में होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, यहां बुलेट ट्रेन की बात करो, यहां ज्यादा आवश्यकता है। उल्टी जो लंबा सफर है, या तमिलनाडु के चेन्नई से ले लो, कोची से ले लो, उनके लिए तो भाई बेचारे इतने घंटे लगते कि पूछो मत। वो अगर होती तो बात अलग है सर। अहमदाबाद से कुछ जरूरत नहीं। पंक्चुअलिटी की बात करता हूं सर, आज भी आपको ये अच्छा है, प्रगति है, रेल के एक्सीडेंट कम हुए, लेकिन एक बात है, फायर के आंकड़े बढ़े, आग लगने के आंकड़े बढ़े, वो 0 से 4, 4 से 7 हुए, वो 0 होना चाहिए। लेकिन पंक्चुअलिटी की बात करोगे तो आज भी हमारी ट्रेनें सही समय पे नहीं जाती। अब मुंबई शहर ले लो, हर एक ट्रेन का आनी है मुंबई में आनी है। वेस्टर्न रेल पे कहां जगह है, सेंट्रल रेल पे कहां जगह है, हमारा वीटी
पहले वीटी कहते थे, विक्टोरिया टर्मिनस, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। इसी दरमियान एक बात याद दिलाता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का नामकरण करने के पहले वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि 1853 में ये ट्रेन जब चली, मुंबई की विकास की अगर नींव किसी ने डाली है तो वो थे नाना शंकर सेठ। वो नाना शंकर सेठ ने अपनी जगह दे दी। जीआईपी रेलवे कहा जाता था, वो जीआईपी रेलवे का हेडक्वार्टर नाना शंकर सेठ के खुद के बंगले पे था। आज भी उनका नाम नहीं दिया गया, जबकि बाला साहब का सुझाव था वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पहले उनका नाम दे दे। मैं आज फिर दोबारा आपको प्रार्थना करता हूं, वो कानूनन टेक्निकल मुद्दों पे नहीं जाना, राज्य की तरफ से आना चाहिए। अरे हमें करना है, रेल हमारी है। जिस रेल को इस देश में जिस व्यक्ति ने लाया, जिस महान व्यक्ति ने लाया, उस नाना शंकर सेठ जी का नाम देने के लिए हम राज्य की तरफ देखते बैठे। रेल खुद आगे है। अभी एक दूसरा टर्मिनस है, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस, बॉम्बे सेंट्रल जिसे कहा जाता है, उस टर्मिनस को आप नाना शंकर सेठ जी का नाम दीजिए तो ये एक छोटा अभिवादन होगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नाना शंकर सेठ जिसने इस देश में पहली रेल अंग्रेजों के साथ में बैठकर लाई, वहां जो सेंट जेवियर कॉलेज है, एल्फिस्टन कॉलेज है, जे स्कूल ऑफ आर्ट है, वो सब नाना शंकर सेठ की देन है। ये उनकी भूमि, उनकी जमीन, उनकी थी आजादी, वो उन्होंने लाई है। ईरानी की बात उन्होंने लाई है। ये सारी चीजें करने वाला इंसान, उसका नाम आज भी हम देते नहीं है। वो मैं मांग करता हूं इसके दरमियान। सभापति चेयरमैन सर, आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हो। मैं आपको एक सुझाव बार बार, मैंने रेलवे कॉर्पोरेशन बना, मुंबई विकास रेलवे कॉर्पोरेशन आपके पास है, आपको एक सुझाव देता हूं। मुंबई में पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट केंद्र के सरकार का है। उनके गोडाउन हुआ करते थे, आज भी है थोड़े। मुंबई बंदरगाह था, बहुत बड़ा बिजनेस होता था, और उसको जो गोडाउन थे उसको लगकर रेल के ट्रैक है, और वो भी ब्रॉडगेज है। मैंने एक सुझाव दिया था कि दिन में यातायात के लिए रखो, पैसेंजर के लिए, रात को फ्रेट कॉरिडोर करके इसको कुछ कोलैबोरेशन उनसे करो, धंधा बढ़ेगा, समय भी बचेगा और उसका इस्तेमाल भी होगा उस जगह का। आज भी आप देखोगे कि मुंबई में सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप है, परेल में है, माटुंगा में है, मुंबई में लोअर परेल में वर्कशॉप है। तीनों वर्कशॉप में हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रोडक्शन है बताओ? मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे सभापति महोदय। तो चेयरमैन सर, इसका इस्तेमाल कैसे करें, यह भी एक सोचने की आवश्यकता है। और आपने जो अच्छा काम किया, स्विचिंग हो और टू मॉडर्न एंड सेफर LSB लिंक के हॉकमन बुश कोचेस, ये जो नया है उसका स्वागत करता हूं। याद होगा सर, आप आए थे मुंबई में एक प्रोग्राम में, मैंने कहा था सर यू शुड डिफाइन दी लोकल ट्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल ट्रेन? कल तक सर मुंबई में चर्चगेट से बोरीवली 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, बाद में विराट तक अराउंड 60 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो लोकल ट्रेन जाती है। यहाँ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सर ठाना था जो पहला शुरू हुआ, फिर कल्याण गई, फिर अभी कसारा गई, करजत गई, अभी आप ढाणू तक जाते हैं। चेयरमैन सर, यू विल ऑल्सो टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट सर। आज हमारी लोकल ट्रेन चर्चगेट से लेकर ढाणू जाती है, यहाँ करजत कसारा से लेकर इगतपुरी तक जाती है। अब आप सोचिए, उस ट्रैवलिंग में करीबन 2.5 से पौने 3 घंटा लगता है, अगर कोई इंटरप्शन नहीं आया तो। भारी बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से पानी भरा या किसी ने आंदोलन नहीं किया। अब सोचिए उस ट्रेन में महिला ट्रैवल कर रही है, अब सोचिए उस ट्रेन में महिला, गर्भार महिला ट्रैवल कर रही है, प्रेग्नेंट महिला ट्रैवल कर रही है। 2.5-3 घंटा ट्रैवल करना है लोकल ट्रेन में, जिसमें किसी कोई भी सुविधा नहीं है। मैं बार बार ये मांग पिछले 5 सालों से करता आया, एटलीस्ट लेडीज कोचेस को आप टॉयलेट की सुविधा दीजिए। पुरुषों के लिए नहीं होगा, चलेगा, कूदेगी कैसे? अब बीच में जब पानी भरा था तो एक प्रेग्नेंट महिला वाज देयर, शी वाज अ रिपोर्टर फॉर वन गुड न्यूज़पेपर और चैनल, आई थिंक शी मेड कांटेक्ट विद देम, शी कुड नॉट जंप डाउन बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। बिजली गई थी, पानी भरा हुआ था, लोग उसको मतलब वो डर रही थी किसके हाथ सहारे उतर जाऊं, पुलिस का इंतजार कर रही थी, कैसे उतरेगी पानी में।
कूदेगी? जेंट्स तो बाकी सारी भी प्राकृतिक जो मांग आती है वो कर लेते कैसे भी। महिला है, हमारी बहन है, उसका सोचो। ये मांग में बार बार करते आए, आज तक उसके ऊपर नहीं हुआ। सोलर पावर कैपेसिटी के ऊपर इन्होंने टिक्का टिप्पणी की, भाई समझ में नहीं, उनको समझ में नहीं आया होगा। खुली जगह जितनी है वहां सोलर पावर लगा के अगर रियल पैसा कमाती है और जो बिजली उनको चाहिए उतने उससे वो खुद इस्तेमाल करे, बाकी बेचे, अच्छा है, स्वागत करता हूं ऐसे प्रपोजल्स का। मुझे एक समझ नहीं आया, स्किल डेवलपमेंट के बारे में रेल क्या कर रही है और क्या करने वाली है? रेलवे डिपार्टमेंट इसमें क्या करने वाली है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जाते जाते सभापति महोदय, 2-3 चीजें ये बहुत सालों से पड़ी हुई है, खास करके स्वच्छता अभियान। हाल ही में आप चलिए, किसी भी ट्रेन में मैं आने के लिए तैयार हूं। राजधानी में भी, मुंबई राजधानी मस्त गाड़ी है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर टॉयलेट में आप जाओगे तो टॉयलेट पेपर नहीं मिलेगा, 2-2:30 बजे के बाद में रात को जाओगे तो खत्म। कौन देखता है बाद में? हमने तो वहां प्राइवेट लाई है, लोगों को खान पान की व्यवस्था देखी है। मैंने फोटो लाया है, समोसा दिया था, उसका फोटो मेरे पास अभी मोबाइल में। इतना गंदा समोसा वो खिला कि हमारी तबीयत बिगाड़ेंगे। खाया नहीं आप तो खा भी नहीं सकते, आधा खा के छोड़ दिया, फिर बताया उनको, फोटो निकाल के रखा। यू हैव टू टेक सीरियस नोट ऑफ इट। और ये जो चीजें होती है उसमें सबसे ज्यादा असर होता है रेल सफर जब करते आप और हम दोनों कहीं भी जाए सर, ट्रैक की इधर देखो, या तो झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती है, नहीं है तो भी कचरा दिखेगा। कहां से आता है? प्लास्टिक की बोतल आती है, प्लेट्स आती है, पानी की बोतल आती है, कहां कौन फेंकता है? वो 2 तरीके के लोग भी है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम नहीं कहते रेल हर चीज को जिम्मेदार है, लेकिन मैंने देखा है ये जो बाकी लॉन्ग डिस्टेंस मेल ट्रेन है, राजधानी जैसे छोड़ो, उस ट्रेन में जो आदमी कलेक्ट करता है वो ब्याज में रात में सोए हुए देख कर बीच में उठा फिर करके गाड़ी में पूरा वो काली बैग पूरी फेंक देते हैं। सर मुझे टाइम, डोंट वरी अबाउट अदर्स, आई विल स्पीक। मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, 2-3 मिनट ज्यादा फेंक देता है। मैंने बताया था कि वैक्यूम क्लीनर जैसा आप एक रात की समय में ले लो ताकि वो सारा कचरा सक करके निकल सकता है। सुझाव देते रहा हूं, बार बार बोलते रहूंगा जब तक नहीं होता है। वो एक स्वच्छता अभियान की बात है। नांदेड़ डिवीजन, अब ये नांदेड़ डिवीजन आती है साउथ सेंट्रल रेलवे के उसके कंट्रोल में। अब सर नांदेड़ आता है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा रीजन पिछड़ा रीजन है सर। इनको कुछ मांग लेनी है तो सिकंदराबाद जाएंगे, तेलंगाना, और वहां उनको महाराष्ट्र से क्या प्यार होगा? नहीं होता है। ये मांग कितने सालों से चल रही है कि नांदेड़ डिवीजन को सेंट्रल रेलवे के तहत लाए ताकि, अच्छा नांदेड़ के लोग कहां आते हैं? विधायक से लेकर सारे मुंबई में आते हैं ना, मंत्रालय मुंबई, अस्पताल मुंबई, सारी कार्यालय मुंबई। तो उनको अगर कुछ वहां सुविधा चाहिए तो सेंट्रल रेल की तरफ मांग कर सकते, क्योंकि उनका मुख्यालय मुंबई। अब उनको सिकंदराबाद जाना पड़ता। तो ये डिवीजन निकाल कर आप खास करके सेंट्रल रेलवे के कंट्रोल में लाएं तो लोगों को फायदा होगा। सर मैंने अभी कहा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मैं कल लखनऊ गया था तो वहां चौधरी चरण सिंह करके एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ है, लिखा है चौधरी चरण सिंह का स्टैचू है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, उसके सामने स्टैचू की मांग की, हां कह दिया, लेकिन किया नहीं। आज तक वो स्टैचू लगा नहीं है। मैं फिर दोबारा मांग करता हूं, महाराष्ट्र की मांग है। आज सर तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। ऐसे शुभ अवसर पर रेल इस मांग को मान्य करे और अपने कैप में एक फिगर लगाए, ऐसे मैं आपको मांग करता हूं। सर दूसरी बात है, सर अभी 1-1.5 मिनट में खत्म भी कर रहा हूं ना। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, समोसा बचा नहीं हमारे जो बचे, मेरा जो समय बचेगा बाकी रहे। रेल में एनक्रोचमेंट की बात आती है सर। आप जानते हो कि रेलवे के पास बर्ड लैंड है, पूरे भारतवर्ष में झुग्गी झोपड़ियां बनी। सुरेश प्रभु जी का भाषण सुन लो 2015 का, उसमें उन्होंने कहा था हम लैंड मैपिंग करेंगे। हमारे पास महाराष्ट्र में सारे स्कीम है। आज झुग्गी झोपड़ियों के बारे में हम निर्णय नहीं ले रहे। यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं पक्के घरों की बात कर रहे, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे। रेल के भूमि पर जो झुग्गी झोपड़ियां है पुरानी है, आज नहीं कल हुई है, 20-25 साल से, उसके बारे में आप क्या निर्णय लोगे? ये एक मेरी मांग है सर। सर एक आखिरी 2 बात करता हूं, और अपने पास जीएम जो है जनरल मैनेजर से आप उनको पूछिए फाइनेंशियल पावर क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द जनरल मैनेजर। इतना बड़ा सेंट्रल रेलवे का जनरल मैनेजर
मुंबई से लेकर भुसावल मुझे लगता है बड़ा लंबा है उनका एरिया। कुछ करना हो तो उसके पास पैसे नहीं है, हर तक बोर्ड के पास जाना है। कुछ फाइनेंशियल पावर दे दो, मेक हिम अकाउंटेबल, मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, बट एट द सेम टाइम गिव हिम फाइनेंशियल पावर्स टू डू ऑल दिस थिंग। इसलिए मैं ये छोटी चीजें मांग करता हूं। आखिर में एक शब्द कहता हूं कि जो बात सुरेश प्रभु जी ने कही थी, इन्होंने अभी बताया हमने अस्पताल निकाला, सुरेश प्रभु जी ने कही थी, याद होगा आपको, रेल में यूनिवर्सिटी निकालूंगा, उसका क्या हुआ ये भी आप बताएं। फिर आप जो अच्छा काम कर रहे उसकी सराहना करता हूं, क्योंकि नहीं तो ये पता नहीं ये तो घड़ी बजा रहे तो वो बताने को बोल रहा है, इसका मतलब बाकी सारा अच्छा हुआ है। वो समझकर मैं आपको अभिनंदन भी करता हूं। ये काम जल्दी से जल्दी करिए, यही मनोकामना करता हूं। एलिवेटेड ट्रेन मुंबई लोकल इज अ मस्ट, यू डोंट हैव स्पेस टू एक्सपांड, बड़ा उसको एलिवेटेड ट्रेन की आवश्यकता है। वो आपने साहब के समय में कहा था लेकिन आज तक नहीं हुआ, वो अगर करे तो लोग बड़ा समाधान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सांस। श्री संतोष कुमार प्लीज। सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के अधीनस्थ अनुदान के मांगों की चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। महोदय, भारतीय रेल विश्व की तीसरी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसके तहत करीब 68,000 किलोमीटर रेल मार्ग आता है। यही कारण है कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। पिछले वर्ष रेलवे के करीब 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करने वाली विश्व की सर्वाधिक सेवा करने वाली रेलवे नेटवर्क की श्रेणी में आती है। रेलवे का राजस्व भी लगातार बढ़ रहा है और रेलवे अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर है। पिछले वर्ष रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी पीयूष गोयल साहब को धन्यवाद देता हूं, अंगारी साहब को धन्यवाद देता हूं और आपके संरक्षण में रेलवे चौमुखी विकास कर रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब एनडीए में रेल मंत्री थे तो वो रेल की सुरक्षा को लेकर रेल सुरक्षा और संरचना को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और इस कारण इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन करने का काम भी किए। उन्हीं की देन है कि रेलवे में आज जो इंटरलॉकिंग सिस्टम आया है और दुर्घटनाएं में काफी कमी आई है, ये नीतीश कुमार जी की देन है। महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं और जो हमारा क्षेत्र है सीमांचल का क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और पूर्णिया से आता हूं। मैं अपने क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूं और विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से मैं अपने मांग पर विचार करने के लिए आग्रह करता हूं। हमारे क्षेत्र में माननीय 2003 में हमारे क्षेत्र में कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड का स्वीकृति मिला था और आज 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी उसके शिलान्यास किए थे। दूसरी बार 2009 में रामविलास पासवान साहब उसका दोबारा शिलान्यास किए और 2008 से उस रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। आज 2020 है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है और इस बार का जो बजट है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस बजट में मात्र 1,000 रुपया का लोकेशन किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, माननीय रेल राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि इस परियोजना को गंभीरता से लेने का काम किया जाए, क्योंकि यह जनहित का मामला है। उस इलाके में पूर्णिया जो हमारा क्षेत्र है वो रेलवे के मानचित्र पे बिल्कुल कमजोर है, रेलवे के क्षेत्र में काफी कमजोर है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं वहीं पे जो हमारा जलालगढ़ से किशनगंज रेलखंड है 50 किलोमीटर के लिए, उसमें भी अधिग्रहण के लिए ये भी योजना स्वीकृत काफी लंबे समय से है। उसमें भी 50 किलोमीटर की योजना है और उसमें 1,000 का फंड लोकेशन इस वित्तीय वर्ष में हुआ है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस योजना को गंभीरता से लेने का काम किया जाए। वहीं हमारे कटिहार के जो रेल के परियोजना है
कटिहार रेल मंडल अंतर्गत राधिकापुर कटिहार तेजनारायणपुर से भालुका रेलवे स्टेशन जो बंगाल में पड़ता है भालुका, वहां तक की परियोजना है, इसको भी चालू करने का हम मांग करते हैं। साथ ही जोगबनी और पूर्णिया, जो जोगबनी हमारे नेपाल की सीमा पे बिहार का अंतिम स्टेशन है जोगबनी, नौ पे वहां पे रेलवे का कोई वॉशिंग फीट है, न पूर्णिया जंक्शन में कोई वॉशिंग फीट है, न पूर्णिया कोट जंक्शन में वॉशिंग फीट है, और 2 रेलवे क्षेत्र है वहां पे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, दोनों में से किसी का वॉशिंग फीट या रेलवे का रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पूर्णिया कोट में रेलवे का वॉशिंग फीट बने और जोगबनी जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहां पे वॉशिंग फीट बने, और लंबी दूरी की ट्रेन जोगबनी से मात्र एक ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, वो सीमांचल एक्सप्रेस, उसकी भी स्थिति काफी भयावह आती है, काफी क्राउड होता है उसके अंदर में। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जोगबनी से दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली के लिए चले और पूर्णिया कोट से दिल्ली और कोटा के लिए अन्य जगहों के लिए भी 2 मिनट लेंगे, रेलवे अन्य जगहों के लिए भी रेलगाड़ी को चलाने की हम मांग करते हैं। कई जो छोटी छोटी समस्या है उसको मैं आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। एक गंभीर समस्या हमारे इलाके में है कि जो अभी नई रेल लाइन पूर्णिया सहरसा का परिवर्तन होने के बाद जो रेलवे का फाटक है उसको बंद कर दिया जा रहा है। अब जो एक तरफ हम सुविधा देने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को रेलवे में सुविधा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है उसको परेशान भी कर रहे हैं, लोगों को जाने आने में काफी कठिनाई हो रही है। सारे फाटक को हम बंद कर दिए हैं। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं या तो आरओबी बनाने का काम करिए या आरयूबी बनाने का काम करिए, तभी रेलवे फाटक को बंद करने का काम करिए। ये हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। साथ ही हम एक नई रेल परियोजना जो हमारा उत्तर बिहार की आर्थिक मंडी है गुलाबबाग और पूर्णिया जंक्शन से दालकोला के लिए एक नई रेल परियोजना को स्वीकृत कराने की हम मांग करते हैं। एक नई रेल परियोजना को लाने का काम करिए जो लगभग 30 किलोमीटर का होगा, उससे व्यापारियों को भी सुविधा होगी, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बिहार में जो मक्के का फसल और कई अन्य जो खेती का सामान है वो गुलाबबाग मंडी में उसका उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसको रेलवे का लाभ मिलना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। साथ ही मैं 2-3 छोटी मांग है रेल से संबंधित। जो पूर्णिया सहरसा रेलखंड में दिन के समय में कोई ट्रेन नहीं है, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 2 जोड़ी ट्रेन दिन में दिया जाए ताकि लोगों को सुबह आती है शाम जाती है। इस दिन में के अंदर में कोई ट्रेन नहीं है, वहां पे ट्रेन देने का हम मांग करते हैं। साथ ही जनहित में सहरसा राजरानी सुपर फास्ट ट्रेन जो है 12,567 12,568 उसको पूर्णिया कोट तक विस्तारित किया जाए। साथ ही जो कटिहार से पटना के लिए इंटरसिटी चलती है उसको जोगबनी से उसको चलाने का काम किया जाए। और वन मिनट अंत में हम रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो हमारा क्षेत्र है पिछड़ा है, विनती पूर्वक आग्रह करेंगे कि रेलवे के क्षेत्र में इसको आगे ले जाने का काम आप करें। इसके लिए हम अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री मालूक नागर जी। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जितना भी मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग इतनी मांग कर रहे हैं कि बजट उतना है नहीं, तो मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पे वो ऐसा कोई प्रक्रिया अपनाए कि रेल मंत्रालय इतना प्रॉफिट में आ जाए ताकि इन्हें बजट की दिक्कत ना हो और हम सभी सांसद जो मांग रखें ये उन्हें पूरी कर सकें। जैसे लालू प्रसाद जी के समय में था, उसकी भी जांच कराएं प्रॉफिट में क्यों था। दूसरा, पूरे देश में आज रेल मंत्रालय के पास इतने एसेट हैं, अगर उन्हें ढंग से डेवलप्ड कर लें, लीज आउट करके कर लें, डीएम मॉडल पे कर लें, जॉइंट वेंचर पे डेवलपमेंट करने के लिए दे दें, तो इन पे इतना रिवेन्यू आ जाएगा
कि हम जैसे सांसद जितना भी मांग कर रहे हैं उनकी सभी मांगे पूरी कर सकते हैं ये लोग। दूसरा, अभी कल मेरा एक लिखित में रेल मंत्री जी ने जवाब दिया है कि तेजस का 7 करोड़ 73 लाख प्रॉफिट आया है। तो सोच का विषय है, रिसर्च का विषय है कि जब एक प्राइवेट सेक्टर में शुरू होने वाले रेल से प्रॉफिट आ सकता है तो पूरे देश में इनकी सभी रेलों से प्रॉफिट क्यों नहीं आ सकता है। तीसरा साहब, एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमारे अभी सावंत साहब कह रहे थे कि बंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगनी चाहिए, मैं भी सहमत हूं, लगनी चाहिए। और पूरे देश में गुर्जर प्रतिहार का भी 300 साल राज रहा, दिल्ली में गुर्जर सम्राट मीर भोज की भी मूर्ति लगनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा साहब, मैं ममता बनर्जी साहब जब मंत्री थी तो उन्होंने देहरादून से होते हुए बिजनौर और मुजफ्फरनगर मेरठ होते हुए सर्वे कराया था, और वो जब से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मैंने भी इस 1 साल में मंत्री जी से लिखित में प्रश्न 377 पे 0 आवर में 11वीं बार मुद्दा कल मुझे लिखित में जवाब आया है। तो जब इतने, अभी हमारे साथी भी बोल रहे थे कि उनका भी सर्वे चल रहा है, तो जब ये चुनाव के समय में ये लोग घोषणाएं कर देते हैं, देहरादून से साहब दिल्ली के लिए सीधी रेल चलेगी, बिजनौर होते हुए वोट भी मिल जाती है इन लोगों को, सारा चीज ठीक हो जाता है, और बाद में इंप्लीमेंटेशन में साफ हो जाता है। तो साहब मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये लोग देहरादून से बिजनौर होती हुई, मुजफ्फरनगर होती हुई और मेरठ होती हुई दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ी चलानी चाहिए। इनसे भी प्रार्थना के साथ मांग करता हूं। एक बात साहब और कहना चाहता हूं, ये अयोध्या में मंदिर बनवाए, बहुत अच्छी बात है। वाराणसी के लिए कई हजार करोड़ की योजनाएं लाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हस्तिनापुर, वहां भी कृष्ण भगवान ने बहुत दिन रहे, वो भी एक ऐसी एक धरती है, वहां के लिए, हस्तिनापुर के लिए इन्होंने जरूर कुछ करना चाहिए। और खास करके रेल, दिल्ली से अगर सीधा मेट्रो चला दें हस्तिनापुर तक, तो जो लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं, टेलीविजन में देखते आए हैं, फिल्मों में देखते आए हैं, इतना भव्य रूप से हस्तिनापुर देखते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं हस्तिनापुर कहाँ है, बिल्कुल नजदीक है, 70-80 किलोमीटर है दिल्ली से। अगर सीधी वहां के लिए मेट्रो चले तो वहां के लोगों को बहुत फायदा होगा, और भारत सरकार टूरिज्म को बहुत रिवेन्यू आएगा, और बहुत देश और विदेश में हमारे महाभारत के समय के पौराणिक ग्रंथ की, महाभारत की, भगवान श्री कृष्ण जी की, कौरवों की, पांडवों की, पूरे वर्ल्ड में इससे इसकी ख्याति होगी। और मेरी पार्टी के कई लोग दूसरे बोलने हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री के मुरलीधरन। Chairman, thank you very much for giving me the chance to participate these demands. Sir, regarding the railway, the major problem is after the merging of railway budget to general budget, the sufficient fund is not given to the railway. That is our feeling, because if we approach any development work for the railway station, including constructing new building or making new platform, the reply is there is no sufficient fund to us, so you should use your MP fund. Sir, you know MP fund is only 5 crores and 3.7 crores is only the general fund, and 1.25 crores are the for SC/ST fund. So how can we utilize this fund, sir? And number 2, sir, the budget, you know about Kerala, you are from Karnataka. But this railway budget, our state was totally neglected. We did not get sufficient fund. I don't know what is the reason. But in your state, Karnataka, your party got maximum seat out of 25, you got 25. 29. But in our state, your party did not get any seat. If only that reason, all trains are stopped in Talapadi, the border area. That is our feeling, sir. Mangalore. So we are up to Mangalore. So many
if the development work we approach to railway ministry, your cabinet ministry is telling us you should approach state government. We are not getting sufficient land from Kerala. If we approach CM of Kerala, Chief Minister of Kerala, he tells that there is sufficient land, we are ready to give. The chairman also know that. So we are now running not only from pillar to post, we are running from Pinarayi to Goyal. That's our main problem. Then there are so many development work and new railway line. You know, sir, there's a long pending demand. A railway new line from Talisheri to Mysore, that is your state, Mysore, via Manandawadi. Now, Wayanad district is not in the railway map. This line was proposed in the beginning of when Mr. Lal Bahadur Shastri was the railway minister. That time, a survey was done from Talisheri to Mysore, but later it was dropped. Now I understand that a survey has done by the railway ministry, and Kerala government is also recommended that railway line. They give full support for this line. So my request is this major project should be introduced to the state of Kerala. And the Shabari railway line. If Shabari line came, lot of pilgrims are coming to Shabarimala, you know that. And Idukki district is also not in the railway map. If Shabari lines comes, Idukki also will come in railway map. So 14 districts of Kerala will be in the railway map. That is our request. And there is no Shatabdi train in the state of Kerala. So that is a long pending demand from the Kerala to introduce a Shatabdi Express to the state of Kerala. Then regarding this pit line, sir, from Cochin to Mangalore, there is no pit line. Pit line is in Cochin, pit line is in Mangalore. The difference is from Cochin to Mangalore is more than 200 kilometers. So these 200 kilometers, there is no pit line. If pit line comes to Kannur, Kannur is a sufficient place for pit line because major trains are starting from Kannur, especially Kannur Yeshwanthpur Express is starting from Kannur. Kannur Trivandrum Janshabdi Express is starting from Kannur. So if there is pit line in Kannur, it is very much benefit in the state of Kerala totally actually. So there is no memo service from Shornur to Mangalore. Now the Shornur-Mangalore double line is completed. Electric work is also completed, but there is no memo service from to Shornur to Mangalore. So we are demanding a memo service from Shornur to Mangalore. It will be beneficial to the state of Kerala. And another major thing is doubling of railway line from Kollam to Ernakulam via Kottayam, Kollam to Ernakulam via Alapi. Sir, in 2002, when Nitish Kumar was the railway minister, that time this proposal was approved and started. But even now, it is not completed. It is going very, very slowly. The amount also very much less allotted by this time. So our demand is it should be completed as early as possible. Sir, there are one Rajani Express is running from Trivandrum to Nizamuddin. It is only 3 days in a week. So it should be 7 days in a week. Then my last proposal is regarding my constituency. There are major railway stations in my constituency, Koilandi, Vadagara and Talcheri. But no development works are going there. In Koilandi, the work has started. Now the contract is disappeared. The work is stuck now. It is a historic place also. The first foreigner, Vasco da Gama, came in Kerala in Kapad. That is only 5 kilometers from Koilandi.
So Koilandi station is a major station, so the renovation work should be start as early as possible. And Vadagara and Taliseri, these are the two major railway stations. The renovation work should be completed as early as possible. So, sir, these are the major demands from the state of Kerala. So, please allow sufficient fund for the development of Kerala. Kerala people are giving more fund to the railway. Then my last request is regarding privatization of railway should be stopped, sir, because common people are traveling in railway. So it go to the private, it will be very much difficult to the common people. These are my suggestions, sir. Thank you. श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। देश की बदली हुई परिस्थितियों में आप चेयर पर विराजमान हैं और रेल बजट के ऊपर पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, पहले काफी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से रेलवे के ऊपर चर्चा की। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की डिमांड्स और ग्रांट्स 2021 के समर्थन में यहां सदन में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की हमारी रेलवेज जो है, इसका नंबर भले ही तीसरा लगता है, जो पूरे देश के अंदर रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, हमारा नंबर तीसरा है। लगभग 68,000 किलोमीटर का रेल मार्ग हमारे देश में है, लेकिन हम लोगों को यात्रा कराने में दुनिया में पहले नंबर पर। 840 करोड़ लोगों को 68,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारी रेलवे हर साल यात्रा कराती है। मैं सदन में आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और चूंकि रेलवे का हमारा बजट पहले अलग आता था, मुख्य बजट के साथ क्लब हुआ है, मुख्य बजट में रेलवे हमारा आता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, रेल राज्य मंत्री जी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि लगातार पिछले 5-6 सालों से रेलवे ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, कई क्षेत्रों में माइलस्टोन स्थापित किए हैं। और मुझे लगता है शायद इस महान सदन में अगर हम रेलवे के उन हजारों हजार कर्मचारियों का उल्लेख नहीं करेंगे जिनके कारण इस देश में अगर हमको सुरक्षित रखने का काम हमारी सेना करती है, तो हिंदुस्तान में 24 घंटे पूरा हफ्ता 365 दिन अगर हमारा रेलवे का पहिया नहीं रुकता, तो वो उन सामर्थ्यवान कर्मचारी अधिकारियों की वजह से जो लगातार इस देश में रेलवे के माध्यम से रेलवे के कल्याण के लिए इस देश के यात्रियों की सेवा करने में अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं सभापति महोदय इस सदन के माध्यम से। रेल बजट में, हमारे मुख्य बजट में जो रेलवे के लिए प्रावधान किया गया है 2020-21 के लिए लगभग 70,000 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए हमारे बजट में किया गया है, और 1.61 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय का प्रावधान हमारे बजट में है। मुझे लगता है बहुत विस्तार से जो फाइनेंशियल हमारा स्ट्रक्चर है उस पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब यह समय आ गया है कि रेलवे जिस गति से इस देश में बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसके सहयोग की आवश्यकता है। नए बजट में 12,000 करोड़ रुपए का नई रेल लाइनों के लिए प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है इसे और बढ़ाने की आवश्यकता थी, और आगे आने वाले समय में जब वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, तो शायद नई रेल लाइनों में जो व्यय हम करने जा रहे हैं 12,000 करोड़, इसको शायद और रेल मंत्रालय को और पैसा मिलेगा वित्त मंत्रालय से। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपके समक्ष बात रखता हूं। इस देश में डिब्बों के अंदर जो हमारे यात्री सवारी डिब्बे हैं और बेहतर इंजन, इसके ऊपर भी लगातार मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने और सरकार ने काम किया है। 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान नए डिब्बों और इंजन के लिए भी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सभापति महोदय, इस देश में रेलवे ने किराया नहीं बढ़ाया। बहुत आंशिक किराया वृद्धि के बावजूद
सुविधाओं के ऊपर लगातार हमारी सरकार ने और रेल विभाग ने काम किया है। 2750 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि यात्री सुविधाओं के ऊपर रेल बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि अगर भविष्य में और बढ़ाया जाएगा तो शायद अनुचित नहीं होगा। 2,25,613 करोड़ परिचालन से आय होती, एक बड़ी आय का आधार हमारा रेलवे है और ये पिछले 19-20 के मुकाबले 9.6% इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन रेलवे हमारा आय का साधन नहीं। हमारी सरकार ने इस देश में एक तंत्र विकसित किया है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम एक आय का साधन बनाएं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनता की सुविधा के लिए, जनता के हित के लिए इस देश में हमारी सरकार ने चलाई है। रेल भी उसमें से एक माध्यम है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मुझे लगता है बजट में किया गया है कि रेलवे के पास सरप्लस लैंड बहुत है। रेलवे पटरियों के किनारे पूरे हिंदुस्तान में हजारों हजार एकड़ जमीन हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। हमारी सरकार ने जो सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने का एक प्रोग्राम बनाया है, मुझे लगता है इससे बेहतर निर्णय पहले कभी रेल मंत्रालय ने नहीं लिया होगा। इससे दो काम होंगे, एक अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी, सरप्लस लैंड का हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे, और दूसरा जो हम हमारे जो महंगे साधनों से बिजली का हम उत्पादन करते हैं उस बिजली की बचत करते हुए हम सोलर पावर को, बिजली को, सौर ऊर्जा से बनी हुई बिजली का उपयोग हम रेलवे भी करेगा और सरप्लस बिजली को हम बाहर बाजार में बेचकर रेलवे की आय बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। लगातार कई जगह हम देखते हैं अखबारों के माध्यम से भी और सदन में चर्चा के द्वारा भी कि पीपीपी मोड पर लोग कई बार कटाक्ष करते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम 150 ट्रेन के आसपास जो है निजी भागीदारी पर उनको संचालन करेंगे। मुझे लगता है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, पूरी दुनिया में हम देखें, हिंदुस्तान में बहुत सी चीजें हैं जो सरकार संचालित करती है, लेकिन सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां हर काम सरकार नहीं करती। सरकार व्यवसाय का, धंधे करने का काम नहीं करती। सरकार बेहतर तरीके से देश चले इस पर फोकस करती है। और रेलवे पीपीपी मोड के साथ अपने नियंत्रण में चीजों को रखते हुए जो आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं सबसे स्वागत योग्य कदम है। इस पर और ताकत से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार पीपीपी मोड पर जाने के बाद बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, समय का बेहतर प्रबंधन होगा और लोगों को जो एक मानसिकता है कि अच्छा हम पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो हमको बेहतर सुविधा मिले, वो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। किसानों के लिए रेलवे में कभी कोई स्थान नहीं होता था। कभी रेलवे भी किसानों की बात करेगा, इस देश में किसी व्यवस्था में सोचा नहीं गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री का कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का दायित्व इस देश में संभाला है, किसान और गरीब की बात हर जगह की जाती है। जहां भी गुंजाइश बनती है, किसान की मदद करने का काम हमारी सरकार करती है। रेलवे ने भी कृषि उत्पाद जो पहले किसान कल्पना नहीं कर सकता था, उसकी सब्जी, उसके फल फूल का उत्पादन, ये कहीं बाहर भेजना है, कोई संसाधन नहीं होता था। किसान रेल के माध्यम से जो पीपीपी मोड में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मुझे लगता है ये रेवोल्यूशनरी निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। और आगे आने वाले समय में रेलवेज को सर्वाधिक, अगर मुझे लगता है कि कोल और दूसरी चीजों के बाद में अगर किराए से आमदनी होने वाली है, तो वो कृषि उत्पाद के ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर आगे आने वाले समय में आय में वृद्धि होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। आज किसान फलों का उत्पादन नहीं करता, फूल का उत्पादन नहीं करता, उसे मालूम है हम तैयार भी कर लेंगे तो हम निर्धारित समय पर ये चीज भेज नहीं पाएंगे। अगर किसी ने जबलपुर में कोई फल तैयार किए हैं, मुंबई भेजने में उसका माल ही रास्ते में सड़ जाता था, लेकिन अब ट्रेन के माध्यम से उसको, किसान रेल के माध्यम से बेहतर गति के साथ उस माल को बड़े शहरों तक भेज सकते हैं। रेफ्रिजरेटर पार्सल बैन, ये एक कोल्ड स्टोरेज की तरह, हमारे फ्रीजर की तरह एक ट्रेन को रेफ्रिजरेटर ट्रेन के रूप में इस तरह के उत्पादों को, जो ठंडे आइसक्रीम है, दूसरी चीजें हैं, फल हैं, इन चीजों को उस रेफ्रिजरेटर वैन में भी हम भेजेंगे। तो इससे भी किसानों को भी, उत्पादकों को और रेलवे को, तीनों सेक्टर में इससे लाभ होने की उम्मीद है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो तेजस ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आए हैं कि पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम
तेजस ट्रेन करेगी। आज हमारे पास हिंदुस्तान में पहले आदमी को प्लान करना पड़ता था, अगर उसे कहीं पर्यटन पर निकलना है तो सोचना पड़ता था किस ट्रेन से जाएंगे, बीच में कहां जर्नी ब्रेक करना है, फिर कौन सी ट्रेन से हमको जुड़ना है। अब इस कॉन्सेप्ट में सीधा आपका पर्यटन ट्रेन, उसको पता है कि अगर आपको राजस्थान यूपी से होकर कोई टूरिज्म के लिए कोई ट्रेन निकली है, उसमें ये स्टेशन कवर होंगे। अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोई तेजस ट्रेन चल रही है, उसमें ये टूरिस्ट सेंटर कवर होंगे। तो हमारे टूरिस्ट को भी आसानी होगी और जो यात्री जो पर्यटन पर जाना चाहते हैं उनको एक निर्धारित व्यवस्था के तहत उनको एक प्रोग्राम रहेगा कि तेजस ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे रेल राज्य मंत्री जी यहाँ विराजमान है, उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र है तो पचमढ़ी एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। मड़ई सतपुड़ा की पहाड़ियों में हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें मड़ई एक बैक वाटर पे बड़ा टूरिज्म सेंटर बना है। नर्मदा के किनारे ब्रह्मांड घाट है, बड़ा टूरिस्ट सेंटर जहाँ लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन जो रेलवे स्टेशन इन टूरिस्ट सेंटर को जोड़ते हैं, मुझे लगता है उनको विकसित करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड घाट को जो रेलवे स्टेशन करेली है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जबलपुर जोन में आता है, वहां पर स्टॉपेजेस स्टेशन का बेहतरीकरण करना यह बहुत आवश्यक है। पचमढ़ी हमारा पिपरिया स्टेशन है, उसको मॉडल स्टेशन में लिया है, हमारे मंत्रालय ने बहुत वहां काम किया है, लेकिन अभी भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पचमढ़ी मध्य भारत का इकलौता हिल स्टेशन है। वहां हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए इन स्टेशन को भी अपग्रेड करने की जरूरत है और तेजस जैसी ट्रेन वहां रोककर यात्रियों को सुविधा देने की आवश्यकता है। सुहागपुर स्टेशन है, सुहागपुर स्टेशन हमारे मड़ई टूरिस्ट सेंटर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, इसको भी अपग्रेड करके स्टॉपेजेस बढ़ा के बेहतर सुविधाएं देके हम इसमें काम कर सकते हैं। और तेजस जैसी ट्रेन है, इनको यात्री मिले, स्टॉपेजेस देंगे हम, बेहतर जो आपके टूरिस्ट सेंटर है उनसे जोड़ेंगे, तो शायद इन ट्रेन की सार्थकता भी सिद्ध होगी। और दूसरा जो एक मंत्रालय ने तय किया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो उल्लेख किया है बजट भाषण में कि हम एक आदर्श किराया नियम की एक पॉलिसी बनाएंगे। मुझे लगता है इस पे काम करने की आवश्यकता है और सदन में बैठे मेरे साथी सांसद इस बात से सहमत होंगे कि अब 2 रुपए 4 रुपए का भाड़ा बढ़ने से यात्री को फर्क नहीं पड़ता, यात्री को फर्क पड़ता है बेहतर सुविधाओं से। अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि कितना भाड़ा बढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, यात्री को कितनी सुविधाएं बढ़ के मिल रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, रेलवे में 2020 से लेकर 2030 के बीच में 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए, अगर इतनी बड़ी राशि 50 लाख करोड़ रुपए हमको रेलवे में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो इसके लिए हमें पीपीपी मोड पर जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से निवेश कराने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं किराए की पॉलिसी को हमें कुछ इस तरह से लाना पड़ेगा कि यह सुचारू रूप से रेलवे का संचालन हो सके। सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं, 1/1/2020 में जो किराया बढ़ा, पूरे देश में बवाल चला, टीवी पे फ्लैश चलता रहा कि भारी वृद्धि और आम गरीब आदमी की जेब में डाका डाला। आप कल्पना करिए, साधारण किराया 1 पैसे पर किलोमीटर, मतलब एक नॉमिनल चार्ज है। 400 किलोमीटर मुंबई जाना है, 4 रुपए अगर बढ़ गया कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस देश में 500 किलोमीटर में 5 रुपए का अगर भाड़ा बढ़ा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अंतर केवल टीवी के ऊपर पड़ता है और इस सदन में जब चर्चा होती है उस समय पड़ता है। इन चीजों पर कहीं ना कहीं हमें विराम लगाना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा कि एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक देश में बेहतर व्यवस्था देने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को हमें दरकिनार करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं। 4-5 मिनट सर, सेकंड स्पीकर हूं अभी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। माननीय पीयूष गोयल जी और राज्य मंत्री जी हमारे यहाँ अंगड़ी जी विराजमान है। सर 4-5 मिनट खत्म कर, बिल्कुल। मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने लगातार 5-6 सालों में काम किया। मैं उदाहरण अपने संसदीय क्षेत्र का देना चाहता हूं। हमारे यहाँ केवल 2 रेल ओवरब्रिज बचे हैं जिनके ऊपर अभी हमको रेलवे फाटक बचे हैं जिसमें रेल ओवरब्रिज देना। एक साथ 9 रेल ओवरब्रिज का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान का सबसे ऐसा पार्लियामेंट्री एरिया है हमारा 350 किलोमीटर का, जहां पर 19-20 रेलवे स्टेशन है।
सैकड़ों गाड़ियां वहां से रोज गुजरती हैं। देश का सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी हमारे यहाँ है, 350 से ज्यादा जहां पर सवारी गाड़ियां रोज जाती हैं। आप कल्पना करिए, हर रेलवे क्रॉसिंग को रेल ओवरब्रिज परिवर्तित करने का काम हमारी इसी सरकार ने, इसी रेल मिनिस्ट्री ने किया है। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बड़ा हमारे यहाँ समस्या थी सभापति महोदय कि आजादी के 70-75 साल के बाद भी कई जगह ऐसी थी जहां सिंगल ट्रैक था। मुंबई हावड़ा बिजिएस्ट ट्रैक इस देश का, और बीच बीच में 4-4-6 किलोमीटर सिंगल ट्रैक था जहां ट्रेनें लगातार खड़ी रहती थी। जब एक दूसरे ट्रेन क्रॉस हो जाती थी फिर जाती थी। इसी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने, हमारे माननीय पीयूष गोयल जी की मंत्री रहते हुए वहां पर डबल ट्रैक किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया है, एडिशनल पुल का निर्माण कराया है। हम उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र के इश्यूज हैं वो भी मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इंदौर बुधनी गाडरवारा एक नई रेल लाइन हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए लगभग 3200 करोड़ रुपए जारी भी हुए हैं, लेकिन वो इंदौर से बुधनी तक हुआ है। बुधनी से गाडरवारा अभी प्रोग्राम को रोका गया है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो अनाउंस हो चुका है, उसका भूमि पूजन हुआ है। हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा जी ने उसको कार्यक्रम को किया था, तो सुषमा जी की स्मृति में हम सब ने घोषणा की है तो उस रेलवे ट्रैक को बुधनी से गाडरवारा तक हर हाल में जोड़ा जाए। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्टेशन हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोहागपुर बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन है, लोग लगातार वहां मांग कर रहे हैं। जबलपुर नई दिल्ली ट्रेन का वहां स्टॉपेज हमारे मांग कर रहे हैं। करेली में ओवरनाइट ट्रेन का स्टॉपेज मिले, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। गाडरवारा रेलवे स्टेशन है, वहां संघमित्रा, दक्षिण भारत के लिए कोई ट्रेन नहीं है, संघमित्रा ट्रेन के स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। और दूसरा मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सिवनी मालवा एक स्टेशन है, वह कामायनी एक्सप्रेस के लिए हम मांग कर रहे हैं। दूसरा, जबलपुर भोपाल के बीच में एक छोटी ट्रेन चलती है, फास्ट, यस सर, आई कंक्लूड कर रहा हूं सर। फास्ट पैसेंजर एक ट्रेन है जबलपुर भोपाल के बीच में, उस फास्ट पैसेंजर को लोकल ट्रेन है, छोटे छोटे स्टेशन है, जुनेटा स्टेशन है, उसका गुरमखेड़ी स्टेशन है, इन स्टेशन पर बोहानी स्टेशन है, इन छोटे स्टेशन पर कम से कम लोकल ट्रेन को रोकने का प्रावधान आप करेंगे, मुझे ऐसी माननीय मंत्री जी से अपेक्षा है। मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्टेशन जहां सवारियां काफी ज्यादा हैं, जहां ट्रेनों के स्टॉपेजेस हैं, जैसे करेली है, सोहागपुर है, सिवनी मालवा है, इन स्टेशन पर कोच डिस्प्ले सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर डिस्प्ले के बुजुर्ग यात्रियों को इंजन को खोजने, अपना डिब्बों को खोजने में परेशानी होती है। कोच डिस्प्ले सिस्टम से यात्रियों को राहत मिलती है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं, तो पुनः मैं इस आग्रह के साथ कि भोपाल से बीना और भोपाल से इटारसी बड़े स्टॉपेज है, लोगों का अप डाउनर्स की बड़ी संख्या जाती है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। यहाँ मेमू ट्रेन का प्रावधान हो गया है, उसे शीघ्र वहां चालू कराया जाए, ऐसी मंत्रालय से अपेक्षा करता हूं। पुनः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का, माननीय मंत्री जी का, राज्य मंत्री अंगड़ी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि रेलवे में बेहतर काम आपने किया है, बेहतर संभावना से आगे आप बढ़ रहे हैं। थैंक यू। CST हसन। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। No, it's a consensus. House is run by consensus, please. Over. Yes, Shasan ji, please carry on. सर, मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं मुरादाबाद शहर से आता हूं, जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। तमाम दुनिया में इसके आर्टिजन्स ऐसा आइटम बनाते हैं जो मशीनें भी नहीं बना सकती। मैंने पिछले बजट सेशन में भी इस बात की डिमांड करी थी कि बहुत पुरानी डिमांड है मुरादाबाद की, कि मुरादाबाद से बॉम्बे की एक ट्रेन चलाई जाए। और मैं अफसोस के साथ ही कहना चाहता हूं कि मुझे जवाब मिला, अधिकारियों ने ये लिख के दिया कि आपके रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटीज नहीं है। अगर वो फैसिलिटीज मुहैया कराना हमारा काम है तो फिर हम बेकार यहाँ पे बोल रहे हैं। ये काम तो डिपार्टमेंट का है कि फैसिलिटीज अवेलेबल कराए। जो डिमांड हम लोग करते हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, इफ एंड बट ना करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि मुरादाबाद से
तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ करता था, और ये एक्सपोर्ट आज कम होते होते तकरीबन 5,000 करोड़ के ऊपर आ गया है, जिसकी बहुत सी वजहें हैं। WTO की वजह से बहुत परेशानियां हैं, हमारी सब्सिडीज कम कर दी गई हैं, और WTO की जो परेशानियां हैं उसको हटाते हुए जो काम हम कर सकते हैं, मेरा रेल मंत्री जी से ये दरखास्त है कि मुरादाबाद से या जहां से भी एक्सपोर्ट होता है वहां से जो फ्रेट है उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दी जाए। फ्रेट मुरादाबाद से कंटेनर भेजने के लिए बॉम्बे जाने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपया लगता है, जबकि अगर हम चाइना और वियतनाम और कंबोडिया से कंपेयर करें तो बहुत मामूली फेयर लेते हैं वो लोग और सब्सिडी देते हैं, और उन्होंने हमारा मार्केट कैप्चर कर रखा है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि रेलवे भी इसमें हाथ बटाए, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉलर के रेट और रुपए के रेट में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा फर्क होता चला जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट ही तबाह हो गया तो हमारे रुपए का रेट डॉलर के मुकाबले कहां से कहां पहुंचेगा और हमारी इकोनॉमी कहां जाएगी। इसलिए सर मेरी आपसे दरखास्त है कि जबरदस्त सब्सिडी दी जाए ताकि एक्सपोर्टर्स अपना एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल सके। मैं अभी हमारे एक भाई ने एक सुझाव दिया कि रिवेन्यू बढ़ना चाहिए। मैं इसके मत में हूं कि आप अपना रिवेन्यू बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और तरीकों से बढ़ाएं। चाहे आपकी जमीन जो स्ट्रेटेजिक जगहों पर है वहां पे बड़े बड़े मॉल्स बना सकते हैं, शॉप्स बना सकते हैं। आज तो मॉल्स का जमाना है और इससे बहुत बड़ा आमदनी रेलवे को भी होगी, जमीनें बेकार पड़ी हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले मैं एक डेलीगेशन के साथ मिला भी था। मुरादाबाद के अंदर 10 बाई 10 की 165 दुकानें रेलवे की उस पर बनी हुई हैं, सड़क के किनारे हैं। ये लोग बराबर किराया देते थे, किसी टेक्निसिटीज की वजह से अभी 20 साल से या 15 साल से किराया नहीं दे पाए हैं। 50 साल से ये लोग किराया देते थे। अधिकारियों ने इसको हटाने के आदेश दिए हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि 165 परिवार कहां जाएंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे। हम कुछ ना कुछ हमें ह्यूमन एंगल भी देखना चाहिए, और इन लोगों को मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, आपने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी थी, इन गरीबों की बात सुनी थी और फौरन ही अधिकारी को बुला के डायरेक्शंस भी दी थी। मेरी आपसे दरखास्त है कि हमदर्दाना तरीके से इस बात पे गौर करें। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी लोकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ रोशनपुर, बहेड़ी और सीतापुर के बीच में अंग्रेजों के ज़माने से एक लाइन के ऊपर एक क्रॉसिंग थी, उसे अचानक बंद कर दिया गया। किसान जो उधर के हैं और इधर आने में उन्हें कई किलोमीटर का फासला तय करके आना पड़ता है। मैंने इस बात को रखा था और बात करी भी थी, मंत्री जी से भी कहा था, तो मुझे अधिकारियों ने जवाब दिया कि साहब 1 किलोमीटर के ऊपर एक क्रॉसिंग है, इसलिए हम ये क्रॉसिंग नहीं खोल सकते। किसान जो अपने मवेशियों का चारा लेके आते हैं, छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं, अब आप बताइए वो 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने सर पे रख के वहां पहुंचे, जबकि सामने उनका घर होता है। तो मेरी दरखास्त है कि वहां पे भी इस क्रॉसिंग को खोल दिया जाए ताकि उनकी बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रालियां और वो पैदल वहां से निकल सकें। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र ठाकुरद्वारे का है। ठाकुरद्वारे में आज तक कोई रेल कनेक्शन नहीं है। ठाकुरद्वारे के पास से रेल लाइन गुजरती है। आपसे दरखास्त है कि ठाकुरद्वारे को भी इस लाइन से जोड़ दिया जाए। एक रोड ओवर ब्रिज की मैं बात करना चाहता हूं, जो मूर्ना पांडे से, मुरादाबाद के मूर्ना पांडे से मनकरे के बीच में पड़ता है। यहाँ पे सैकड़ों गांव आ गए हैं, वहां पे लोग जाम में फंस जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे जाम रहते हैं। मेरी आपसे ये विनती है, दरखास्त है कि इस पे ध्यान देते हुए यहाँ भी एक ओवर ब्रिज बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। और मैं आपसे इतना बहुत जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मुरादाबाद एक मशहूर शहर है, मुरादाबाद के स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बाहर के एक मिनट सर, बाहर के लोग आते हैं, उनको एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन ए क्लास स्टेशन होना चाहिए। यही मेरी आपसे दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री नमो नागेश्वर जी।
Thank you, Chairman sir, for giving this opportunity. Chairman साहब, अभी कंट्री में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का बहुत जरूरत है। हम लोग इंडिपेंडेंस आके 73 इयर्स होने का बाद भी जिस तरह से जो है ना कनेक्ट करना चाहिए एंटायर कंट्री को, उस तरह से जो है ना रेलवे कनेक्ट नहीं कर पाया। गवर्नमेंट तो कोशिश तो कर रहा है, मगर वो कोशिश में हम तो यही बोलेगा टोटल फेल हो रहा है। हम ये बात इसलिए बोल रहा है, उसका डिटेल्स तो हम बता देगा। इतना दिन होने के बाद भी आज के दिन में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पाया। आज कंट्री का जो इकोनॉमी बहुत डाउन में है। अभी अब हमारा कोलिग्स जो है ना ऑनरेबल एमपीज ने कुछ पॉइंट्स रेज किया है। अभी डेवलप्ड कंट्रीज में वो लोगों का रेलवे नेटवर्किंग, रोड नेटवर्किंग बढ़ने का वजह से कंट्री का इकोनॉमी भी जो है ना बढ़ गया। अभी जो रिसेंटली हम तो पूरा चैंबर्स के साथ हम लोग डिस्कस किया है, वो लोग ने ये बता दिया है जब रेलवे का फ्रेट का, रोड का फ्रेट का ये सब चार्जेस जब तक कम नहीं करेगा, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में वो लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा। और साहब अभी तो जोर से इसलिए बोल रहे, कम से कम आपका आंख में ये सब चले जाए, हमारा बात को थोड़ा जो है ना ध्यान में रखे, उसको जो है ना चालू करे, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है। तेलंगाना से आया है, तेलंगाना का बहुत पॉइंट्स है, बहुत दफा लेटर्स दिया है। अभी जो है ना ऑनरेबल मिनिस्टर इधर बैठा है, अधिकार लोग उधर बैठा है, हमारे पास इतना लेटर्स दिया है उसी की वजह से जोर से बोलना पड़ रहा है। आग से चले जाए। थैंक यू चेयरमैन साहब। अभी गरीब लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, पैसेंजर के लिए ये रेलवे लाइन जो है ना काफी बढ़ाने का जरूरत है। उसी तरह से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा 15th लोकसभा में इज्जत पास बोल के जो गरीब लोग के लिए इज्जत पास दिया था, जो भी हम लोग का जो एमपी दे सकता है। अभी भी हम लोग 15th लोकसभा में ऑनरेबल चेयरमैन है तो रिकॉर्ड है, हम तो 60,000 जो है ना रेलवे पासेस दिया है। 60,000 रेलवे पासेस 5 इयर्स में दिया था। अभी भी जो है ना अभी 17th लोकसभा में हम आने के बाद अभी कम से कम जो है ना 5,000 जो है ना रेलवे पासेस दिया है। मगर इसमें गरीब लोगों के लिए यह प्रॉब्लम हो रहा है, उसका रेवेन्यू सर्टिफिकेट का वजह से गरीब को जो है ना इज्जत पास नहीं मिल पा रहा है। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता है मिनिस्ट्री को, अगर वो उसका जो सर्टिफिकेशन भी जो है ना एमपी को पावर दे दे, सो दैट जो है ना रेवेन्यू सर्टिफिकेट और इज्जत पास दोनों जो है ना देने का कोशिश करे। उसके साथ साथ जो है ना आजकल में जो ऑटो अगर रेलवे स्टेशन में लगाने के लिए पूरा इंडिया में चार्जेस लगा रहा है, अल्टीमेटली वो चार्जेस जो है ना कॉमन मैन का ऊपर जो है ना पड़ रहा है। उसलिए वो चार्जेस के बारे में थोड़ा सोचे साहब। अभी वाजपेयी जी का टाइम में, ऑनरेबल जो है ना स्वर्गीय वाजपेयी जी का टाइम में गोल्डन क्वाड्रिलेटर लेके आया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करने का वजह से उसका बाद कंटिन्यूअसली बाद में जो है ना दूसरा गवर्नमेंट भी उसी तरह से उसको आगे बढ़ाए। अभी ने जो है ना रोड नेटवर्किंग हम लोग को काफी आगे लेके गया। अभी नितिन गडकरी साहब जो है ना काफी रोड वर्किंग जिस तरह से जो है ना लेके गया है, उस तरह से जो है ना रेलवे का नेटवर्किंग जो है ना उतना लेके नहीं जा पा रहा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी इंडिया के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। उसका साथ साथ हमारा जो तेलंगाना बनने के टाइम में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम लोग कुछ वादा किया है। मेनली उसमें काजीपेटे में कोच फैक्ट्री देने के लिए एग्री किया था। अभी तक जो है ना अभी तेलंगाना बनके 7 साल हो गया, अब अभी तक जो है ना वो फुलफिल नहीं किया है। हमारा रिक्वेस्ट यही है, हम ऑनरेबल मंत्री साहब को हम यही बोलना चाहते हैं, कम से कम वो जो है ना हमारा तेलंगाना अभी न्यूली फॉर्म हुआ है, उसमें जो है ना काफी जो है ना हम लोग का रेलवे लाइन से जो आप एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो एग्री किया है, कम से कम जो है ना उसको तुरंत जो है ना उसको टेकअप करे। उसका साथ साथ जो है ना भद्राचलम कोवूरू अभी जो है ना डिवीजन होने के बाद ये जो है ये भद्राचलम का जो है ना श्री राम देवालय है और वो उसमें जो है ना कनेक्टिविटी नहीं है।
और वहां से भद्राचलम से लेकर कोवूर जाने के लिए अभी ऑलरेडी जो है ना साउथ अभी बना कोल बना हम लोग का सिंगरेनी कॉलरीज ने उसके सर आप तो चले जा रहे हैं, आप तो सुनना चाहिए मिनिस्टर जाने से जो ना सुनने वाला कौन है। अभी हम तो यही रेलवे का मिनिस्टर होने से कम थोड़ा अच्छा रहता है साहब। सर हम तो यही बोलना चाहते हैं वो सिंगरेनी कॉलरीज का जो है सिंगरेनी कॉलरीज वाला ऑलरेडी 50% पैसा दिया है। कल भी जो है कम से कम दो दिन का पहले 200 करोड़ का उसका पेमेंट भी दिया है। वो दोनों स्टेट को तेलंगाना को आंध्रा को कनेक्ट करने के लिए अच्छा आरओआर है। उधर से जो है ना हम ऑनरेबल उसमें आपको भी जो है ना लेटर लिखा साहब, हर एक टाइम में लेटर लिखे तो मिनिस्टर से एक ही 2 लाइन का रिप्लाई आता है, रिसिप्ट योर लेटर एक्नॉलेज इट एंड द रिक्वेस्ट विल बी लुक्ड इनटू। हो गया, कितना भी लेटर आएगा 1-2 लाइन का रिप्लाई आ जाता है, मगर इश्यू तो ऐसे पड़ा रहता है। मैं रिक्वेस्ट ही जो है ना अभी तेलंगाना का हमारा जो रेलवे लाइन्स का है, महबूब नगर का रेलवे लाइन अभी तक जो नहीं हुआ है, गद्वाला का रायचूर का भी नहीं हुआ है, पटानचेरू संगारेड्डी का, विकाराबाद वाडी का और पेद्दपल्ली काजीपेट का और जो ना भुवनगिरी का और उसी तरह से जो है ना हुजराबाद का, निजामाबाद निर्मल का और गद्वाल का, इस तरह से जो ना काफी रेलवे लाइन हम लोग जो है ना तेलंगाना नया स्टेट है जो रेलवे लाइन्स को जो है ना आप तुरंत जो है ना टेकअप करे। उसका साथ साथ ऑनरेबल चेयरमैन अभी पूरा हाउस भी ये बात सुनना है, जब हम लोग जो है ना एमपी बन के आने का टाइम में कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग ये सोचता है हम तो एमपी का पास जाके कम से कम जो है ना रेलवे स्टेशन का छोटा इश्यूज को रेलवे स्टॉपिंग हो लाइक रेलवे डेवलपमेंट हो, रेलवे जो है ना स्टेशन को डेवलपमेंट के लिए हम लोग का पास आ जाता है। हम तो ऑनरेबल मिनिस्टर को लेटर लिखा है, अधिकार लोगों को लेटर लिखा है, कम से कम जो है ना खम्मम रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर नहीं है। खम्मम रेलवे स्टेशन में सब ओनली 2 मिनट सर, खम्मम रेलवे स्टेशन में कम से कम जो है ना सीसी कैमरास नहीं है। हम इस बीच में खम्मम रेलवे स्टेशन पूरा जो है ना 3 दफा इंस्पेक्ट किया है अभी एमपी बनने के बाद, और वहां से हम पैसेंजर ट्रेन से खम्मम से लेकर मदुरै में ट्रैवल किया है। पैसेंजर का ट्रेन में भी बहुत फैसिलिटीज नहीं है, रेलवे स्टेशन का भी फैसिलिटीज नहीं है। कम से कम जो ना रेस्ट रूम हम ये रिक्वेस्ट किया था उसको जो ना मेन को वुमेन के लिए एक रेस्ट रूम लगा दे। सीसी कैमरा सिर्फ 8 सीसी कैमरास है, कम से कम उधर 50 सीसी कैमरास रेलवे स्टेशन में लगना चाहिए। आजकल रेलवे में काफी चोरी होता है, कॉमन मैन का जो है ना बहुत दिक्कत होता है। ये सीसी कैमरास वगैरह लगाने के लिए हम लोग बता दिया था। उसी तरह से हम 2 हाल्ट के लिए भी बता दिया था, कम से कम जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन को जो है ना दो हाल्ट करने के लिए अभी 2 लेटर लिखा है। मैं रिक्वेस्ट जो है ना जरूर जो है कंक्लूड कर रहे सब। अभी कम से कम जो है ना जो हम लिखा है, खम्मम इज द जो है ना स्टेट जिला हेडक्वार्टर है, खम्मम इज द जो है ना अच्छा रेलवे स्टेशन है। वो रेलवे स्टेशन को इंप्रूव करते हुए उसको 2 रेलवे लाइन जो है ना 2 रेलवे को जो हम स्टॉपेज के लिए जो लिखा था वो स्टॉपेज जरूर जो है ना उसके लिए ये करे, और ए ग्रेड से लेकर जो है ना आप A1 का ग्रेड को जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन करे, और पूरा तेलंगाना का पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी का साथ आप लोग टेकअप करे। हम लोग छोटे इश्यूज आरयू का भी जो है ना एक नहीं कर पाते हैं चेयरमैन साहब, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। हम लोग जब भी जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब दिक्कत होता है। मैं रिक्वेस्ट इज ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका माध्यम से मिनिस्टर को हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सीरियसली जो है ना ये इश्यूज को टेकअप करे। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने रेलवे की अनुदान मांगों पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं बड़े धैर्य से अपने साथियों की बातों को सुन रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल के बाद से रेलवे का जो स्वरूप परिवर्तित देखने में आ रहा है, अभी नामा नागेश्वर राव जी हमारे बोल रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि आज पूर्वोत्तर में जो ना त्रिपुरा तक रेल पहुंच गई है, और त्रिपुरा से ढाका आते हुए कोलकाता की तरफ जो है ना सरकार उस दिशा में गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। कश्मीर की वादियों में भी रेलवे के इंजन की आवाज, रेलवे की आवाज वहां भी सुनाई देने लगी है।
केरल से लेके कश्मीर तक जिस तीव्र गति के साथ में रेलवे का विस्तार हुआ है, रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाने का जो काम हुआ है, उससे आम आदमी के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ये सरकार सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की थीम पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम जब रेल में बैठते हैं, हम देखते हैं कि कई बार मैं सामान्य श्रेणी के डिब्बे में भी यात्रा करता हूं, और जब हम रेल में जाकर बैठते हैं तो हमारे बाजू में कौन बैठा है इसका किसी को पता नहीं चलता। जाति, भाषा, धर्म, प्रांत सब चीजों से ऊपर उठकर, और यात्रा के दौरान ही लोगों की आपस में मित्रता हो जाती है। कई बार देखने में यह आता है कि रेलवे में जब परिचय बढ़ता है तो वो परिचय आगे बढ़कर रिश्तेदारियों में भी बदल जाता है। रेलवे सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा जो है ना, वो उदाहरण प्रस्तुत करती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को जो गति दी है, उसका सबसे ज्यादा असर कहीं दिखलाई देता है तो रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। मैं झांसी स्टेशन की एक घटना का इस समय उल्लेख करना चाहता हूं। मैं टीकमगढ़ से आता हूं तो झांसी से ट्रेन पकड़ना पड़ती है। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी, और मैं वहां पर खड़ा था। एक बेंच पर मैंने देखा एक पति पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा वहां पर बैठा हुआ था। उस बच्चे के पिता ने आलू के चिप्स और बिस्किट के पैकेट लिए, बच्चे को खिलाए और उन्होंने खुद भी खाए। खाने के बाद जो रैपर थे, वो रैपर उसके पिता ने बेंच के बाजू में डाल दिए। सभापति महोदय जी, 4 साल का नन्हा बालक वो अपने पिता से कहता है कि पापा आपने यहां डाल दिए, डस्टबिन थोड़ी दूरी पर था। और वो अपने पापा से कहता है, पापा मोदी जी का स्वच्छता अभियान। आपने स्वच्छता अभियान का भी आपने टीवी में सुना था। हम जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, बड़े कौतूहल से पिता पुत्र के संवाद को देख रहे थे, और उसके पिता ने देखा कि चारों तरफ से रस्सियां उसकी तरफ उठी हुई हैं, और उसके पिता ने वो रैपर वहां से उठाए और रैपर उठाकर जो डस्टबिन थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था उसमें जाकर डाला। इन 4 साल के बच्चे के मन में भी जो है ना स्वच्छता का असर जो है ना वहां पर भी ग्रहण किया हुआ है, वहां पर भी उसका प्रभाव पहुंचा है। पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हम देखा करते थे कि लोग वहां पर भोजन करते थे, नाश्ता करते थे, पॉलिथीन के पैकेट, कागज के टुकड़े वहीं पर डाल दिया करते थे। लेकिन आज स्वच्छता वहां पर दिखाई देती है, स्वच्छता अभियान का असर वहां पर दिखाई देता है। मैं आपके माध्यम से मैं बड़े स्टेशनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आदरणीय हमारे मंत्री महोदय जी का, कि हम दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर जाते, दिल्ली स्टेशन जाते हैं, नई दिल्ली स्टेशन, हमारे कोलकाता से हमारे साथी आते हैं, मुंबई से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, और इन बड़े स्टेशनों पर एक बहुत बड़ी संख्या, जो वाहनों की बड़ी संख्या है, इन वाहनों की बड़ी संख्या के कारण इतना वहां पर गहमा गहमी का दृश्य उपस्थित हो जाता है कि लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। इन बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म के बाहर जो है ना, मल्टी स्टोरी जो है ना, कार पार्किंग जो है ना बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे उन स्टेशन पर बढ़ते हुए दबाव को कम किया जा सके और लोग भी आसानी के साथ में और वहां पर आने जाने का अपना आवागमन ठीक ढंग से कर सकें। रेलवे स्टेशनों की जो खाली भूमि है, रेलवे स्टेशनों के पास जो खाली भूमि है, उस खाली भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरा जो पूर्व क्षेत्र था, सागर संसदीय क्षेत्र, 4 बार मैं वहां से रहा। वहां पर एक बीना स्टेशन पड़ता है, जंक्शन है, बड़ी मात्रा में वहां पर भूमि जो है ना रेलवे की खाली पड़ी है। और रेलवे की खाली जगह का जो है ना, बाहुबली लोग जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे लोगों को देने का काम करते हैं। ऐसी सारी जो रेलवे के स्टेशनों के बाद जो रेलवे की भूमि है, उस सारी भूमि पर अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए या अन्य दूसरे व्यावसायिक उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। एक और बात देखने में आ रही है कि रेलवे में पहले जो टिकट चेकर चला करते थे, वो टिकट चेकर आजकल गाड़ियों में नहीं चलते, और इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग ये सोचने लगे कोई जांच करने वाला तो है नहीं, और बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। कई बार लोग टिकट लेना भी चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म पर जो टिकट विंडो होते हैं, अब टीकमगढ़ में टिकट विंडो केवल एक ही है, और इसके कारण से लोग टिकट भी लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक टिकट विंडो होने के कारण लोगों को टिकट नहीं मिल पाते हैं और उनको परेशान होना पड़ता है। फिर स्टेशनों पर जो है ना, कई शहरों के स्टेशन जो है ना शहर से दूर हैं, जैसे टीकमगढ़ स्टेशन काफी दूर है,
छतरपुर का स्टेशन 5-6 किलोमीटर दूर है और स्टेशन के बाहर कुछ भी खाने पीने की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं होती। मैंने जब इस संबंध में डीआरएम महोदय से कहा तो टीकमगढ़ स्टेशन पर तो यह सुविधा प्रारंभ करा दी गई, लेकिन छतरपुर अभी खान पान की सुविधा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, 6 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है। तो ऐसे देश भर में जितने भी ऐसे स्टेशन हैं उन सारे स्टेशनों पर जो है ना खान पान की सुविधा जो है ना वो उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। आज हम एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इन रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान के लिए जितना रेलवे विभाग के द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कई स्थानों पर हमने देखा कई एनजीओ भी इस दिशा में आगे आ रहे हैं। और चाहे रेलवे स्टेशन की सुविधा हो या सार्वजनिक स्थल की सुविधा, इन सबको साफ स्वच्छ रखना केवल रेलवे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, यह शासकीय विभागों की अकेली जिम्मेवारी नहीं होती है। इसमें समाज की जब तक सहभागिता नहीं जुड़ती है तब तक वो लक्ष्य को प्राप्त करना बगैर समाज की सहभागिता के अधूरा होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में जो कदम बढ़ाया तो आज समाज की सहभागिता जुड़ रही है और रेलवे स्टेशन के साथ साथ रेलवे स्टेशन के रेलवे के डिब्बों के अंदर भी वो स्वच्छता का दृश्य दिखाई देता है। पहले हम देखते थे कि जो बेड रोल मिला करते थे गंदे मिला करते थे, कंबल गंदे मिला करते थे, बेड रोल जो है ना गंदे हुआ करते थे, लेकिन आज जो रेलवे में डिब्बों में जो बेड रोल सप्लाई किए जाते हैं वो साफ स्वच्छ उजले धवल जो है ना वो सप्लाई किए जाते हैं। वो स्वच्छता का असर वहां पर भी दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर और मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जो एक डुमरा स्टेशन है, यह डुमरा स्टेशन आजादी के साथ में इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। वहां डुमरा स्टेशन के बाद सिंहपुर गांव है और वहां पर आजादी के समय बड़ी मात्रा में आजादी के दीवाने वहां पर इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। बुंदेलखंड का मिनी जलियांवाला बाग उस डुमरा को कहा जाता, सिंहपुर को कहा जाता है। इस डुमरा स्टेशन पर पहले काफी गाड़ियों का स्टॉपेज हुआ करता था, लेकिन आज वहां पर केवल पैसेंजर ट्रेन को छोड़कर बाकी गाड़ियों के हाल्ट नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी से कि डुमरा स्टेशन पर सारे एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज होना चाहिए। ऐसे ही टहरका स्टेशन पर पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस का स्टॉपेज था, वो बंद कर दिया गया। तो टहरका स्टेशन पर भी सारे एक्सप्रेस ट्रेनों का वहां पर स्टॉपेज होना चाहिए। हम पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ओरछा हमारे संसदीय क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। उस पर्यटन केंद्र पर बड़ी संख्या में धार्मिक और पर्यटक जो है एकत्रित होते हैं। तो ओरछा स्टेशन पर सारे जो है ना एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया जाना चाहिए। निवाड़ी हमारा नया जिला है, लेकिन उस नए निवाड़ी जिले पर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति का स्टॉपेज नहीं है। वो उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति का स्टॉपेज वहां पर किया जाना चाहिए। हमारे निवाड़ी स्टेशन के पास में रेलवे ओवरब्रिज और निवाड़ी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। हरपालपुर पर जो है ना गाड़ी खड़ी रहती है, उसी समय दूसरी गाड़ी आती है तो लोग गाड़ी के ट्रेन के नीचे से यात्रा करते हैं, गाड़ी के नीचे से होकर दूसरी तरफ जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ट्रेन के नीचे से निकलना अपराध है, और अगर गाड़ी खड़ी और फुट ओवरब्रिज नहीं बनाया गया, लोग अगर ट्रेन के नीचे से यात्रा कर रहे हैं तो ये अपराध करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं, हमारा विभाग जिम्मेवार है। तो रेलवे को ऐसे देश भर में जितने स्टेशन हैं, जिन स्टेशनों पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म है लेकिन फुट ओवरब्रिज नहीं है, जहां पर यात्रियों को खड़ी ट्रेन के नीचे से जाकर यात्रा करना पड़ता है, ऐसे सारे स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की पहल वहां पर करना चाहिए। आपने संकेत दे दिया, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। सभापति महोदय जी, प्लीज कंक्लूड। जी मैं 1 मिनट अपनी बात कर दूंगा। हरपालपुर जो हमारा स्टेशन है, हरपालपुर स्टेशन से एनएच होकर जाता है, जो झांसी मिर्जापुर वाराणसी एनएच जाता है, और शहर के बीचों बीच से रेलवे स्टेशन का जो फाटक है, उस फाटक के उस तरफ जो है ना हरपालपुर का अस्पताल है, मंडी कमेटी है, कॉलेज है, और लोगों को उस तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ट्रेन निकलने के कारण पूरे दिन भर अधिकांश समय वो रेलवे फाटक बंद रहता है। अतः उस हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर जो है ना रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है और स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री बेन्नी बेहन। Sir, note, my gate is getting. Press your button. Yes, has already pressed. Yeah. Thank you, sir. Sir, there are a few institutions and organizations that can be described as truly pan-Indian, like the Indian Railways.
Millions of passengers speaking different languages, consuming different types of foods, wearing different type of dresses, and believing in diverse religions use one common vehicle for transportation every day. So in this process, they give up their individual identity and become one Indian. Sir, our ex-president, Pranab Kumar Mukherjee, who said that the Indian Railways is an integrator and unifier of the country. I feel we have a major role to play, not only maintaining and upgrading the Indian Railways, taking one of the largest railway network of the world to new heights and not selling it off. Sir, our main problem is our railway speed. Sir, India's fastest indigenously manufactured train, Vande Bharat Express, has now been running successfully. The semi-high-speed intercity electrical multiple unit self-propelled trains run at a speed of 130 miles per hour. It has cut running the time between New Delhi and Kotra by 4 hours. I would like the Honorable Railway Minister, he is not here, nobody is here. So I would like the Honorable Government to consider this as a proposal of Kerala and try to operate a Vande Bharat Express between Thiruvananthapuram and Kasaragod. This will help daily commuters who travel from the capital city to Kochi, which they could reach by 2 hours. Sir, one of my thoughts on privatization of the Indian Railway, which was hinted at by the Finance Minister in her budget. Though subsequently the Railway Minister ruled out privatizing and that the government is looking out for public-private partnership, I have my fears. Recently, the Indian Railway allowed private operators to run passenger trains on select routes, and I understand in identifying routes where 150 more trains can be run by private operators. This, I think, is the first step to disaster. So privatization is, if putting the Indian Railway on sale would be like breaking the backbone of our country's transportation infrastructure. So please do not do it, sir. The Indian Railway is one organization that touches the hearts and existence of all Indians. Please do not destroy it. Too often we don't realize what we have utility done. Sir, as far as the Indian Railway, for my state, some problems are there, sir. I will conclude very shortly. Sir, before, I would like to point some urgent needs of my state. Kerala has approximately 1.2 lakhs kilometers of road lines. That is 4.2% of Indian total length. It is quite a high considering that the Kerala accounts for 2.7% of the total population of the country. The existing railway network in the state is also not suitable for the faster travel. The average speed of the journey by rail and road in the state is about 30% to 40% lower than the neighboring state like Tamil Nadu. And this becomes slower the rainy season. There is a little scope of increasing the speed of the train on existing railway lines. It is in this context that doubling of strategic line was undertaken. The Ernakulam-Kayangulam line is fully rectified and the line doubling work is in progress. Similarly, work on the Thiruvananthapuram-Mangalore semi-high-speed line that runs along the densely populated coastal region is still inching along. My request to the respected railway minister is to initiate steps to speed the train. Sir, another thing is, one of the major railway projects is the Sabri project, sir. Sir, the Sabri project didn't get the green signal to run because it is now the estimated cost of that Sabri project is 2,815 crores. But I'm sorry, sir, in the 1920 union budget, only 1 crore has been allocated, sir. Sir, the railway board has written to the Kerala government that without 50% of cost sharing by the state government, they could not allocate any further funding to the Sabarimala rail project.
my request to the Honorable Railway Minister is to consider a special package of Kerala like it is done for the Northeast states, which will primarily include the concern of the percentage of the coach sharing. Sir, another 2-3 points, sir. Another point is, sir, the state, we had two dangers. One, the coach factory and the sword. Sir, the previous government announced a coach factory at Palakkad, and there was a proposal for a railway zone at Trivandrum. Both are the cold storage, sir. So please expedite that and please allow to start the coach factory's work and sanction the railway zone also. Sir, the state railways infrastructure and operation in my state has declined into a situation that is beyond pathetic. The quality and the levels of railway service in the state have fallen drastically as passengers have been suffering no end with the terrible punctuality and horrible trains. Sir, I would like to stress on the quality of the coach of the trains in the Kerala is the worst. There are no timely repairs and maintenance of the tracks of the state. It does not matter what parameters you take and how you look into it. Kerala still gets among the lowest fund and infrastructure allocation in the country. It already, I'm concluding, sir. It already has the lowest railway track per person ratio and also the lowest fund for railway allocate per person in the country. It turns out that Kerala is one of the most neglected in the country. Sir, before I conclude, sir, one thing I will quote one what said, sir. Sir, like some rightly said, I quote, if you board the wrong train, it is no use running along the corridor in the other direction. Do not take the wrong decision. Please help the Kerala and the Indian Railways, sir, please. 3 years, Ramalingam. Honorable Speaker, sir, I wish to draw the attention of the Minister through you, sir. Honorable Minister proposed a budgetary allocation of rupees 70,000 crores for the railway, which overall capital expenditure of 1.61 lakh crores for the financial year. The union budget through the capital expenditure of 2021 fall an increase of mere 3%. We, the people of Tamil Nadu, were disappointed as there is no investment in Southern Railway, especially in Tamil Nadu. There is no safety-related work, including track renewals, level crossing, over bridges and under bridges. Though you have allotted rupees 12,000 crores for the construction of new lines, rupees 10,599 crores for track renewal and rupees 2,250 crores for gauge conversion, rupees 700 crores for doubling and rupees 1,650 crores for signaling and telecom. Why I am mentioning all these figures? I have frequently requested the Honorable Minister for a most essential work in Tamil Nadu have not been included in this budget. Like bicycle and trains are continuing to be poor man's transport. The whole nation connect the railway, like elsewhere in my Mailaduri constituency, is underdeveloped. I request the restoration of railway line between Mailaduri and Tarangambadi. There was a meter gauge rail link between Mailaduri and Tarangambadi from 1926 for a distance of 30 kilometers, as it was closed in 1987. This train route connects Mailaduri, Mandamandal, Thirukadayur, Thillayadi, Porayar and Tarangambadi. These places are historically, religiously, culturally, commercially and educationally of importance. Tarangambadi is right on the east coast. Its meaning in Tamil is musical wave. The first Lutheran Christian missionary to India, namely Zalgan Balu, landed here. This is an ancient coastal town educationally developed by Catholic and Lutheran churches.
The first wooden printing press in India was established here. There was a Danish settlement and its fort, Dansberg, is now maintained by the Tamil Nadu Archaeological Department. This place is full of ancient monuments. The famous Chola period Sri Masalamani Nadar, a Hindu temple, stood here. There is a flourishing seafood trade. In 2004, tsunami, many precious lives of the fisherman community were lost. The train service is necessary for the development. Porayar is the tall headquarter having a wide range of business, schools and colleges. Tellayadi is the birthplace of freedom fighter Srimati Valliyamai, who was a close associate of Mahatma Gandhiji in South Africa. Gandhiji came to this village in 1915 to see the ailing Valliyamai. There is a memorial for her in this village, which is thronged now by visitors. Tirukadayur is of great Hindu mythological importance, associated with the 9th century Chola period. Amritagadeswarar Abhirami temple here. There are more than one mythological events attributed to Shiva and Parvati here. This is one of the famous Shiva shrines in India, where one prays for enhancement for longevity and thanks God for 60th and 17th birthdays. Samanar Goil is the Panchayat Union headquarter and busy shopping center. Mayiladuthurai is the subdivisional revenue magistrate headquarter. Why I am saying all these things, the Mayiladuthurai Tarangambadi railway track is more essential for the public. Mayiladuthurai Tarangambadi meter cage was dismantled around 1991 for broad gauge conversion, where once the majestic steam engine rolled over a stretch of 30 kilometers. Some survey appears to be made in 2006-07 to restore the Tarangambadi-Mayiladuthurai link. People are still awaiting. No acquisition of land is required, as the land already belongs to the railway. In the first phase of this link may be restored. In the second phase, Tarangambadi may be linked with Karikal after acquisition of land. This will reduce the rail distance between Karikal and Mayiladuthurai from present 80 kilometers. In the absence of the rail link between Tarangambadi and Mayiladuthurai, peasants, fishermen, students, office goers, daily wage earners, pilgrims or long distance travelers bound for Chennai and North India are seriously inconvenienced. The road traffic is very heavy in the triangular area. So, Porayar, Tirukadayur and Tellayadi people now have spent nearly 3 hours to reach Mayiladuthurai, as they have to get down at more than one place to get connecting buses. The parcel service to this region remains wrecked over since Tarangambadi rail link was dismantled. Another request, sir. Kumbakonam and Tanjavur stand as the pilgrimage and business center of the Tanjavur district. One of the oldest districts of Tamil Nadu state in the Southern Railway. Out of 33 districts in Tamil Nadu, this is the only district not covered by the train from Mumbai to Tanjavur or Mumbai to Kumbakonam. Almost 14 pairs of trains have been current operation, covering almost nook and corner of the Tamil Nadu. But the most parts of Indian Railways to places like Bangalore, Mysore, Bhubaneswar, Varanasi, Ujjain, Mumbai, Karnataka, Andhra, Telangana and other places, Kolkata, Jaipur, Indore, etc.
This Please is conclude. apart from the 5 pairs of trains coming directly to Chennai. It is regretted that these two key places, Kumbakonam and Tanjavur, from Mumbai have been omitted in the last many years in spite of many representations. The Honorable Railway Minister can consider introducing a new pair of trains, keeping Tanjavur as the origin. Sir, one more request. I would like to bring your notice. Construction of a level crossing across the railway line between Tiruvadi Marudur and Tirunaiswaram to connect the road with the Kangayambete village. The Kangayambete village consists of 500 Adi Dravida families. There is no link between road and the hamlet. The agriculturist with the bullock cart is not able to cross the railway line, and the two-wheelers also are not able to cross the line. There was one fire accident. The ambulance and the fire service van also not able to reach there. So this level crossing with manned gate have to be launched very soon. One more request, sir, please. Please conclude now. There is 40 acres of railway land in my constituency. It is owned by the railway department. It can be used for the solar power generation or any ancillary industries for railway, which is situated near Kumbakonam. Another request, sir. A survey has been made for a new route from Nedamangalam to Virthajalam via Kumbakonam may please be sanctioned. It will connect many underdeveloped places, religious, cultural values. Thank you, sir. श्रीमती रंजना बेन भट्ट। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे रेल बजट 2020-21 अनुदान मांगों पे बोलने का समय दिया। साथ में मैं मेरी पार्टी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि रेल बजट 2020-21 अनुदान मांगों पे बोलने का मुझे समय दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय रेल राज्य मंत्री जी को अभिनंदन देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहली भारतीय रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में बोरी बंदर से राणे तक चली थी, जो अब ठाणे तक चली थी, जो लगभग देश के सभी कोनों तक पहुंच गई है। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि अगले 5 वर्षों में अब संरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए निषेध किए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को 113 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन शुरू की थी, जिसमें 650 से भी अधिक परियोजनाएं हैं, जिनमें आधुनिक रेलवे स्टेशन, मेट्रो तथा रेल यातायात शामिल है। हमारी सरकार के कार्यभार प्राप्त करने के 100 दिन में ही 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं मुहैया कराई दी गई है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य करके 27,000 किलोमीटर तक विद्युतीकरण किया गया तथा साथ ही सभी मानव रहित फाटकों को समाप्त करने का भी लक्ष्य किया है। हमारी सरकार ने रेलवे में 5 उपाय किया है। सबसे पहले रेलवे की जमीन पर रेल ट्रैक के साथ साथ बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है और स्टेशन के पुनर्विकास की 4 परियोजनाओं और 150 रेलगाड़ियों का संचालन सरकारी और निजी भागीदारी रीति से किया जाएगा। इसी प्रकार तेजस की तर्ज पर अनेक गाड़ियां पर्यटक स्थानों को जोड़ेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच तेज रफ्तार की गाड़ियों में भी तेजी के कार्य किया जाएगा। हमारी सरकार रेलों की गति बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता के लिए 160 किलोमीटर की गति से
ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को अपडेट करने का काम किया जाएगा। इसके तहत तारबंदी ट्रैक उन्नत करना, सिग्नलिंग और मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किया जाएगा। हमारी सरकार दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता रूटों पर रेलवे का लक्ष्य 2 श्रेणी की हाई स्पीड ट्रेन चलाना है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाना है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए तहत महाबोधि एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर कर दी गई है, ताकि यात्री कम से कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सके। इसी कड़ी में जल्दी ही 24 दूसरी ट्रेनों की गति जल्दी बढ़ाई जाने की संभावना है। पिछले कुछ माह में कई रेलखंड की गति बढ़ाई गई है। रेलवे अपनी खाली जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने जा रही है। रेलवे के पास 51,000 हेक्टेयर जमीन है जिस पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा सकता है और इससे 10 मेगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन करने लगेगा। इसके अलावा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और डीजल खर्च कम करने के लिए 27,000 किलोमीटर का बचा हुआ काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगने से एक गेट रेलवे अपने लिए और ऊर्जा प्राप्त करेगी। वही रेलवे की जमीन जिस पर अवैध कब्जा है उसे मुक्त कराया जाएगा। हमारी सरकार 150 निजी ट्रेनों भी चलाना पर विचार कर रही है तथा 9,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। हमारी सरकार किसानों की आयु दुगना करने के लिए उनके उत्पादन फल, सब्जी, डेयरी आदि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की त्वरित धुलाई एवं आसान मार्केटिंग के लिए किसान रेल नामक योजना का ऐलान किया है। इसके तहत रेलवे ने किसान रेल चलाने की बात की है। किसान रेल के तहत रेलवे की ओर से विशेष प्रकार की रेफ्रिजरेटर कंटेनर वाली ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है ताकि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित बाजार तक पहुंचाया जा सके और किसानों को इन उपजों को उचित मूल्य मिलने के साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ाई जा सके। हमारी सरकार पेरिशेबल गुड्स के लिए 70 टन क्षमता की नई डिजाइन वाले रेफ्रिजरेटर पार्सल बेन विकसित किए हैं। फल और सब्जी की धुलाई के लिए रेलवे ने कॉरिडोर 12 टन से प्रत्येक क्षमता वाले 98 वेंटिलेटर कंटेनर खरीदी की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी मांग को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा गुजरात का छायापुरी सैटेलाइट रेलवे स्टेशन की मैंने मांग रखी थी माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के पास। वो सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बन भी गया और जिसका शिलान्यास, जिसका लोकार्पण माननीय रेल राज्य मंत्री सुरेश जी के कर कमलों से हुआ है। मैंने एक अन्य मांग भी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रखी थी, जो प्रतापनगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाया जाए। वो भी मांग माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी से उसी सैटेलाइट रेलवे स्टेशन पे जल्दी से काम शुरू हो जाए ऐसी मांग रखती हूं, क्योंकि प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से वो अच्छा बनने से ये हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सुविधा अच्छी तरह से कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि मेरी दोनों मांगे आपने स्वीकृत की। साथ में मैंने वडोदरा रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने के लिए भी मांग रखी थी, जो ये मांग को स्वीकार करके अभी हमारा वडोदरा रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। एक बार मैं फिर से रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। साथ में 1-2 मिनट छोटा उदयपुर धार 1 मिनट उदयपुर धार सर, मेरे पार्टी की ओर से मेरा तीसरा स्थान था, तो कहाँ 2 मिनट में आप खत्म करो। 13 members have to speak in your party. No time, please. नहीं, मैं तीसरा नंबर है मेरा। छोटा उदयपुर धार गेट
कन्वर्जन के प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए मियागाम करजन, डभोई के लिए गेज कन्वर्जन का 15 करोड़ जो दिया है वो कम होना मुझे लगता है, तो मैं मंत्री से मांग करती हूं कि मियागाम करजन डभोई शमलाया वाला गेज करजन के लिए आप ज़्यादा रुपया वहां आवंटन करें। साथ में बड़ोदरा सर सयाजीराव महाराजा गायकवाड़ का शहर है, बड़ोदरा संस्कारी नगरी है, बड़ोदरा शिक्षण नगरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ोदरा को रेल यूनिवर्सिटी दी। तो साथ में मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 मांग रखना चाहती हूं कि आप मेरे वडोदरा के लिए बड़ोदरा से हरिद्वार की ट्रेन, साथ में वडोदरा से अमृतसर की ट्रेन और वडोदरा से पांडिचेरी की ट्रेन की मैं मांग रखती हूं। तो मैं माननीय मंत्री जी ये चारों ट्रेन मेरे यहाँ शुरू करवाई जाए ऐसी मैं मांग रखती हूं। फिर से मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूं और ये इस बजट को मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद। श्री असनाइन मसूदी। Honorable Chairperson, thank you for allowing me take almost 9 minutes to speak on demand under the head Ministry of Railways. Sir, the proposals put placed before the House are run-of-the-mill proposals. We don't find any path-breaking proposal that would help railways to address the problem areas. For last few years, we have seen that the number of passengers who use railways is coming down, and so is the resources, the income from passenger traffic is confronted a loss of 38,000 crore rupees, and it was expected that the Honorable Minister will be alive to all the problems confronting the railways and come up with some kind of decisive proposals. Having said that, sir, the railways is official transporter of the nation. It has its own cultural and emotional value. The government is expected to realize that it is not a commercial enterprise because it serves the people at the lower strata of the society. It provides means of transport to the people who mostly belong to disempowered, disadvantaged and unattended sections of society. And government should have been large-hearted and provided more resources to the railways to come out of the problems that the railways face. Sir, coming to my Jammu and Kashmir, the state of Jammu and Kashmir and now what is called Union Territory of Jammu and Kashmir, no new proposal has been made to strengthen the railway network in the state. We have 3 proposals under consideration. One is Jammu-Poonch railway line. I believe that survey has already been done and it should have attracted the attention of the ministry. The second is Baramulla-Kupwara railway line. Again, the survey has been done and the ministry was expected to make an announcement during the current financial year and provide some kind of allocations to start the project. Sir, most ambitious railway line would be Kazigund-Pahalgam. We know that 5 million pilgrims visit Amarnath every year. The tourist traffic is almost 500,000 to Kashmir, and Kazigund-Pahalgam railway line, the proposal I believe is already under consideration of the ministry, would give a fillip, not only give fillip to the tourism, but will also be of much assistance for the pilgrims and have easy means of transport for the pilgrims right from New Delhi or right from other places in the destinations in the country. So I
demand that if already some work has been done, the project, the Kazigund Railway, Kazigund Pahalgam project should be given in consideration at the earliest and preferably included in the next financial year, and earliest the survey and other work completed in the present year. So, same way, Lolab Valley has big tourist potential. We were given to understand that much the work has gone ahead. The proposal has almost got concretized as regards Baramulla, Kupwara and then Lolab Valley. हमें ये आशा थी कि बारामूला को लोला वैली से कनेक्ट किया जाएगा रेलवे के और लोला वैली जुड़ जाएगी सारे मुल्क के साथ। उसमें भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुए, नहीं उस बारे में कोई निर्णायक फैसला अभी तक हुआ है। तो हम ये आशा करेंगे कि आने वाले साल में इस जो अभी का करंट फाइनेंशियल ईयर है कुछ ना कुछ इसमें पेशरफ्त की जाए। और इसी तरह जो मंत्री जी जानते हैं कि पुंछ का एरिया मोस्टली अनअटेंड है जम्मू प्रोविंस का, तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाए जम्मू के साथ, ताकि जो दीरीना मांग है पुंछ के लोगों की, राजौरी के लोगों की और जो बॉर्डर एरियाज की, उनको जोड़ा जाए और उनको ये सुविधा फराहम की जाए ताकि वो कनेक्टिविटी बढ़ जाए। Some of my friends have made proposals for naming the railway stations. अभी शिवाजी के नाम पर रेलवे स्टेशन बात करने की बात की गई, कहीं पर सेठ साहब के नाम पर रेलवे स्टेशन को नाम देने की बात की गई और कभी कहीं गुजर सम्राट की बात हुई। I feel tempted to make a similar demand, but in Kashmir things are going in reverse direction. मेरी भी ये इच्छा है कि जो सबसे बुलंदतरीन जो कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के रहे हुए, जिनके नेतृत्व में, जिनकी लीडरशिप में हमने आज़ादी की जंग लड़ी है, उनके नाम पर ये किया, लेकिन वहाँ तो उल्टा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमें ये संदेश दिया जा रहा है कि हम देश का हिस्सा नहीं, और वहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि उनके नाम को मिटाया जा रहा है। वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो, उनका जो जन्मदिन है उसकी छुट्टी हो, या जो उसके साथ जो भी संबंधित हो, उस सारे उनके नाम को उससे मिटाया जा रहा है। मालूम नहीं क्या संदेश दिया जा रहा है। और इस पस मंजर में इन दिस बैकग्राउंड हाउ कैन आई मेक अ डिमांड एंड जॉइन अदर्स दैट the railway station in Srinagar should be named after the Dal leader who has spearheaded the freedom struggle and who Sher Kashmir Sheikh Mahmud Abdullah. Please, who with Gandhi ji, with Nehru ji and Patel ji and all others who participate in the freedom. In any case, I am not on that. I say that as regards Jammu and Kashmir, things go in a reverse direction. So I would expect Honorable Railway Minister to give some kind of consideration to the proposal I have made. First is Jammu Punch, second is Baramulla, Kupwara, and then Lolab, and third is Kazigund Pahalgam. Yes. Thank you very much. Sri Om Raji Nimbalkar. धन्यवाद सभापती महोदय। देशाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। सभापती महोदय, रेल्वे राज्यमंत्री मला वाटतं आता तुळजापूरला येणार आहेत आई तुळजाभवानीचं दर्शन घेण्यासाठी। शनिवारचा त्यांचा दौरा आहे। आजच्या या भाषणाच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे माझी मागणी आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या मागणीनुसार देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी 2014 मध्ये सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद या रेल्वे मार्गाची घोषणा केली होती। One minute. You are speaking in Marathi, na? Interpreter is coming on the way. Wait for a minute. Meanwhile, I will call the other person. Wait for some time. Interpreter has to come. Dal Singh Besan, Sri Dal Singh Besan. महोदय, आज मांग संख्या
43 रेल मंत्रालय की मांग अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी और हमारे राज्य मंत्री अगाड़ी जी का धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय संसदीय मंत्री का पहली बार मुझे मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर मिला है, और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का और हमारे संसदीय मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं जिस प्रदेश के जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर का इलाका है, जहां पर कान्हा और पेंच जैसे नेशनल पार्क आते हैं, और अंग्रेजों के ज़माने की 1903 की रेल लाइन थी, जो मेगा ब्लॉक के बाद 2016 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, और इसलिए जो जिस गति के साथ तेज काम होना चाहिए था, उस गति को देने का काम मोदी जी ने किया। 2004 के पहले गेज कॉर्पोरेशन का घोषणा हुई थी, परंतु जब मोदी जी की सरकार, जब तेज गति से काम करने वाली सरकार आई, तभी इस रेल का काम मेरे जिले में, मेरे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को और आदरणीय हमारे पीयूष मंत्री जी को, गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तेज गति के साथ काम कर रहे हैं, उसमें अभी उस काम को और तेज गति से करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। यदि समय पे हमें धनराशि मिल गई तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की जो छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट कि जो मार्ग का जो गेज कॉर्पोरेशन का काम है, एक समय सीमा मार्च अप्रैल तक पूरा करके आपके माध्यम से लोकार्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं विस्तार से ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी सारी बात कही है, पर जिस तरह से निश्चित रूप से रेल सबसे सस्ता साधन है यात्रा के लिए और सुलभ साधन है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो एक थीम है कि साफ, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा, और उसको पूरा करने का हमारा रेल मंत्रालय काम कर रहा है। क्योंकि रेल समय सीमा पर यदि जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कई बार रेल को बदलना पड़ता है, ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो ऐसे समय पर यदि समय पर हमारी यात्रा नहीं होती है तो अनेक बार यात्रियों को परेशानी आती है। वर्तमान समय में मेरे यहाँ बालाघाट से नागपुर के लिए जब रेल यात्री जाते हैं तो गोंदिया में उनको परिवर्तित करना पड़ता है ट्रेन को, तो वहाँ पर यदि ट्रेन लेट होती है तो जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रेल का जो समय है वो बिल्कुल ठीक हो। अभी एक ट्रेन मेरे यहाँ पर जो बालाघाट से प्रारंभ की गई है, जिसका मैंने मांग की थी कि सुबह करें और शाम को वापस ट्रेन आए, और वो जो ट्रेन दी गई, उस ट्रेन का समय जो दिया गया है, तो गोंदिया वाली जो ट्रेन है हमारी, वो उसका 10 मिनट समय पहले कर देने के कारण से यात्रियों को असुविधा होने लग गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बालाघाट से नागपुर को जाने वाले यात्रियों के लिए जो गोंदिया से ट्रेन प्रारंभ की है उसका समय यथावत रखा जाए, या बालाघाट से चलने वाली ट्रेन को 10 मिनट पहले कर दिया जाए तो यात्रियों को उसकी सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कुछ मांग के ही विषय में कहना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, जो मैं जो मांग रखने जा रहा हूं, ये पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, रामटेक से पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सांसद होते थे, उस समय की उनकी घोषणा थी 84-85 की, कि नागपुर से जबलपुर रेल लाइन के लिए रामटेक गोटेगांव रेल लाइन का सर्वे भी हुआ, पर जिन किसी भी कारणों के कारण से आज तक उसको फिजिबल नहीं माना गया। और इस बार भी मैंने मांग रखी है कि रामटेक से गोटेगांव या सिकारा यदि इस रेल मार्ग को बनाने का काम किया जाता है तो उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला सीधा मार्ग होगा। 275 किलोमीटर की दूरी हमारी कम होगी नागपुर से जबलपुर के बीच के लिए, क्योंकि अभी नागपुर से इटारसी और इटारसी होकर जबलपुर जाया जाता है। ये सीधा नागपुर और जबलपुर के बीच में केवल 250 किलोमीटर का 275 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम होगी, इसलिए इस रेल मार्ग को स्वीकृत करने का काम करें। इसी तरह से सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर बालाघाट में मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर सारा माल ढुलाई का होता है। रेल को सबसे ज़्यादा आमदनी ढुलाई से होती है, पर रेल मार्ग न होने के कारण से सारी ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। यदि मलाजखंड से चिरई डोंगरी जो मंडला और नैनपुर के बीच में आता है, मुश्किल से 50 किलोमीटर का मार्ग है, यदि इस मार्ग को पूरा किया जाता है तो रेलवे को भी फायदा होगा, यात्रियों को भी लाभ होगा, और हमारे को इस यात्रा के माध्यम से कान्हा पार्क में आने जाने वाले लोगों को भी इस रेल मार्ग का लाभ मिलेगा। जिस तरह से नागपुर जबलपुर के बीच में
पेंच है, यदि यह मार्ग भी बनता है तो पेंच में आने वाले यात्रियों को भी रेल मार्ग का लाभ मिलेगा। दूसरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, एक दो तीन मांगे मेरी, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बजट पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक दो तीन मिनट का समय दे। इसी तरह से कटंगी, क्योंकि मेरे यहाँ मोबाइल है, सारा ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं इन मांगों को रखना चाहता हूँ कि कटंगी से सिवनी एक नया रेल मार्ग जिसकी भी लंबाई केवल 50 किलोमीटर दूरी है, यदि इसको भी बनाया जाता है तो इसके कारण से भी हमारे यात्रियों के साथ साथ माइल के भी काम में हमको लाभ मिलेगा। बालाघाट में चूंकि नई रेल लाइन बहुत जल्दी पूरी करने जा रहे हैं, बालाघाट से लंबी दूरी की गाड़ियां चलेंगी, वॉशिंग यार्ड नहीं होने के कारण से अभी हमको यहाँ से गाड़ी प्रारंभ करने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह से सभापति महोदय, नया ट्रैक बन रहा है मेरा छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच का, और सिवनी में चूंकि रेक पॉइंट नहीं है, अभी जो भी हमारा रेक लगता है वो छिंदवाड़ा या बालाघाट से आता है, जो कि हमको लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। यदि रेक पॉइंट बनाया जाता है सिवनी में तो हमारे यहाँ के व्यापारियों को, किसानों को और सारे, चाहे खाद बीज, चाहे सीमेंट, लोहा लाने में उसकी सुविधा मिलेगी और हमको शासन को भी उसका, विभाग को भी उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर चूंकि नया रेल मार्ग बन रहा है तो भूमि अधिग्रहण हुई है, तो भूमि अधिग्रहण का भी राशि अभी तक एक दो सभापति महोदय, क्योंकि प्लीज जुड़ा हुआ मामला है, भूमि अधिग्रहण हुआ है और उनका पैसा अभी भी लोगों का नहीं मिला है, और जिनको पैसा मिल गया उनको नौकरी नहीं मिली है। जो शासन ने जो बात रखी है उसकी पूर्ति कर दे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जो नया रेल मार्ग बन रहा है इसमें लगभग 840 पटरियां चोरी चली गई। मैंने शायद जीवन में पहली बार पढ़ा होगा कि पटरियों का चोरी जाना, 840 रेल की पटरियां रेल मार्ग, निर्मित मार्ग से चोरी चली गई, जिसके कारण हमारा मार्ग विलंबित हो गया। दोषी जरूर उसमें पकड़ाई गए, जिसका जो रैकेट करने वाले पकड़ाई गए, पर उनके खिलाफ अभी बहुत तगड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियां हैं जिन्होंने सारी पटरियां खरीदी हैं, बहुत सारी अभी पटरियों का पकड़ाई जाना आवश्यक है। एक सुझाव के तौर पे अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से किसानों को जो असुविधा हो रही है उसके कारण से अंडरब्रिज बन रहे हैं या ओवरब्रिज बन रहे हैं, तो अंडरब्रिज में पानी भरने की दिक्कत आती है और पानी भरने के कारण से लोगों को आने जाने। सभापती महोदय, आपण मला मी या ठिकाणी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पावर माझे विचार मांडण्यासाठी उभा आहे। सभापती महोदय, आपले रेल्वे राज्यमंत्री आता परवा दिवशीच त्या ठिकाणी आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी तुळजापूरला येत आहेत। पण साहेब, मला आपल्याला आठवण करून द्यायची आहे की जर तो रेल्वे मार्ग पूर्ण झाला असता तर आपल्याला डायरेक्टली रेल्वेनंच तुळजापूरला येता आलं असतं। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या मागणीनुसार देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी 2014ला या रेल्वे मार्गाची घोषणा केली, पण ज्या गतीनं रेल्वेचं काम या ठिकाणी व्हायला अपेक्षित होतं त्या गतीनं मात्र हे रेल्वेचं काम त्या ठिकाणी होताना दिसत नाही। सभापती महोदय, तुळजापूर हे तीर्थक्षेत्र आहे, महाराष्ट्राच्या पूर्ण महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीचं क्षेत्र आहे। या ठिकाणी प्रत्येक महिन्याला जवळपास 1 ते 1.5 लाख भाविक त्या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात। दसऱ्यामध्ये तर ही गर्दी जवळपास 12 ते 15 लाखाच्या घरात जाते आणि कोजागिरी पौर्णिमेला तर जवळपास 17 ते 18 लाख भाविक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यातनं सुद्धा येतात। असा हा महत्वाचा रेल्वे मार्ग आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे आजच्या या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या माध्यमातून की आपण सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून रेल्वेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना कराव्यात। मी खासदार म्हणून या ठिकाणी प्रत्येक महिन्याला रेल्वेची आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेतो। त्या ठिकाणी भूसंपादनाची प्रक्रियेला कशी गती मिळेल आणि हा रेल्वे मार्ग कसा पूर्ण होईल याच्यासाठी प्रयत्न करतो। पण साहेब, आमचं काम असं झालंय आगीतून ऊप काढून फुपाट्यात टाकल्यासारखं। हा रेल्वे मार्गाचं काम पूर्वी पुणे डिव्हिजनला होतं, ते काढलं आणि भुसावळला दिलंय। आता भुसावळच्या अधिकाऱ्याला जर त्या ठिकाणी उस्मानाबादला यायचं म्हटलं तर 17 तासाचा प्रवास करून यावं लागतंय। मला वाटतंय भुसावळचा माणूस त्या ठिकाणी हे काम करू शकणार नाही, म्हणून पूर्वीप्रमाणे पुणे डिव्हिजनला हे काम ठेवावं। दुसरं सगळ्यात महत्वाचं, मी स्वतः आपले सेंट्रल रेल्वेचे जे जनरल मॅनेजर आहेत सन्माननीय मध्य रेल्वेचे,
त्यांचीही स्वतः भेट घेतली, त्यांनाही विनंती केली आणि विनंती करून त्यात एक नोडल ऑफिसर तुम्ही द्यावा या प्रकल्पासाठी, जेणेकरून या प्रकल्पाचं काम लवकरात लवकर त्या ठिकाणी पूर्ण होईल. ही महत्वाची मागणी आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातून मला सन्माननीय रेल्वे मंत्री महोदयांना विनंती करायची की उस्मानाबाद जिल्ह्याची जर भौगोलिक परिस्थिती आपण बघितली, हा मतदारसंघामध्ये पूर्वी 5 विधानसभाचे मतदारसंघ होते, पण 2009 मध्ये 5 मतदारसंघाचे 4 झाले. म्हणजे ह्या वाढत्या लोकसंख्येच्या काळात एक मतदारसंघ वाढायला पाहिजे होता, पण एक वाढला नाही, उलट एक कमी झाला. म्हणजे जवळपास 2 विधानसभा मतदारसंघामध्ये राहणाऱ्या लोकांचं विस्थापित झाली. काही लोक पुण्याला जाऊन राहिली, काही मुंबईला जाऊन राहिली. म्हणून माझी आजच्या या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या माध्यमातून सन्माननीय रेल्वे मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण पुणे, उस्मानाबाद, लातूर अशी एक इंटरसिटी रेल्वे गाडी त्या ठिकाणी चालू करावी. कारण परिस्थिती आणि अवस्था अशी आहे की एक रेल्वे फक्त लातूर मुंबई त्या ठिकाणी चालते. लातूरवरनं गाडी उस्मानाबादला आल्याच्या नंतर मधनं ती गाडी लॉक केलेली असते आणि अक्षरशः उस्मानाबादच्या पॅसेंजरला तसंच त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मवर राहावं लागतं. मोठ्या प्रमाणात पॅसेंजरची संख्या असून सुद्धा त्या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात गाड्या उपलब्ध नसल्यामुळं त्या पॅसेंजरची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. ही गैरसोय लक्षात ठेवून माझी सन्माननीय रेल्वे राज्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी पुणे, उस्मानाबाद, लातूर ही इंटरसिटी रेल्वे चालू करावी. आज याच चर्चेच्या माध्यमातून साहेब जवळपास 20 वर्ष झालं त्या ठिकाणी निजामाच्या काळापासून रेल्वे लाईन आमच्याकडे होती. पहिली नॅरो गेज होती, आता ब्रॉड गेज झाली आणि ह्याच नॅरो गेजवर असणारा कळमरोल स्टेशन आणि डोकी ह्या स्थानकाची जवळपास 20 वर्षापासून एक्सप्रेस गाड्यांना स्टॉपेज देण्याची मागणी. 20 वर्षापासून ती लोक आंदोलन करतायत, रेल रोको करतायत, सगळे आंदोलन त्या ठिकाणी करून झाली. माझी सन्माननीय रेल्वे राज्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्या ठिकाणी ढोकीला किंवा कळमरोल स्टेशन ह्या दोन्हीपैकी एका ठिकाणी रेल्वे एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा देण्याची त्या ठिकाणी मागणी आहे. ती मागणी आपण पूर्ण करावी. सन्माननीय रेल्वे मंत्र्यांना माझं अजून एक निवेदन आहे की उस्मानाबाद हे जिल्ह्याचं ठिकाण आहे. उस्मानाबादला झालं 1-2 मिनिटात संपवतो साहेब. उस्मानाबादला, धाराशिवला त्या ठिकाणी रॅकची सुविधा आहे, रॅक पॉइंट आहे, पण बहुतांश मान्सूनच्या सीझन मध्ये शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारा खात असेल, बियाणं असेल, हे रेल्वेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी येतं. आणि रॅक पॉइंटची अवस्था अशी आहे की जो आवश्यक असणारा प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारं शेड आहे, ह्याची सुद्धा मागणी मी सन्माननीय रेल्वे मंत्र्यांना वारंवार केलेली आहे. माझी आजच्या या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे की त्या ठिकाणी आवश्यक असणारा प्लॅटफॉर्म आणि त्याला जे आवश्यक असणारा त्या ठिकाणचं वरचं शेड आहे ते द्यायची विनंती आजच्या या रेल्वेच्या चर्चेच्या माध्यमातून मी करतो. सन्माननीय सभापती महोदय, मला बोलण्यासाठी आपण संधी दिली, माझ्या पक्षानं मला बोलण्यासाठी संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी या ठिकाणी आपले आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू. श्री कौलेंद्र प्लीज. महोदय, आपने मुझे रेल मंत्रालय 2020-21 के अनुदान मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. रेलवे जब से सदन में रेलवे पर जब भी चर्चा होती है, चाहे बजट का हो, चाहे रेलवे का किराए का सवाल हो, रेलवे से संबंधित लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं कि पार्लियामेंट में आज रेलवे पर चर्चा हो रहा है. आज पूरा देश देख रहा है. माननीय मंत्री जी को मैं इसलिए यह बात कह रहा था कि आपके रहते माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और आपके सहयोग से रेलवे काफ़ी काम हुआ है. लेकिन जो हम लोग का स्थानीय स्तर पर कुछ मांगे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको पूरा करिए. खास करके मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ मांग को रखना चाहता हूं. मैं नालंदा से आता हूं. नालंदा में इस्लामपुर से नटेसन नई रेलवे लाइन है, आपको भी मैंने पहले बताया है सर. वो बनकर तैयार है, बिजली का भी कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन आपके द्वारा समय नहीं दिया जा रहा है. मेरा अनुरोध है कि आप समय जरूर दें. दूसरा एक मेरा सवाल था, हरनौत रेलवे स्टेशन पर बुद्ध पूर्णिमा का ठहराव का कई बार माननीय पीयूष गोयल जी से आपसे भी चर्चा किया हूं और कई बार पत्र भी लिखा हूं
वहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री भी है, वहाँ पर स्थानीय जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का मांग है वहाँ के लोगों को भी कि यहाँ पर रोका जाए, जिससे कि वहाँ पर कर्मचारियों को भी लोगों को राहत मिले और हम लोग को जो आम लोग हैं उनको भी इससे राहत हो। दूसरा मेरा मांग था सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस का विस्तार इस्लामपुर तक किया जाए। मुंबई और हावड़ा से राजगीर के लिए सीधी ट्रेन अभी उपलब्ध नहीं है, जबकि पर्यटक सालों भर वहाँ पर आते हैं। राजगीर एक ट्रेन चलाई जाए और लगातार जब वहाँ यात्री लोग आते हैं तो हम लोग से भी डिमांड करते रहते हैं। राजगीर से दनियामा होते हुए फथुआ तक मात्र एक मेमो ट्रेन चलती है, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया सरकार खर्च की है। तो उसमें मेरा एक अनुरोध है कि राजगीर से दनियामा होते हुए जो फथुआ तक चलती है उसका विस्तार पटना तक किया जाए या दानापुर तक किया जाए, जिससे कि लोग राजधानी से जुड़ जाए। सारे लोग को ट्रेन बदलना पड़ता है और एक जोड़ी ट्रेन और बढ़ाने की जरूरत है। वहाँ पर काफ़ी पैसेंजर हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अंडरपास का मामला उठते रहा है और मैं भी कई बार हाउस में उठाया हूँ। अध्यक्ष पीठ से माननीय अध्यक्ष महोदय ने कि अंडरपास के मामला पर उन्होंने मंत्री जी से कहा कि पूरे देश के सांसद अंडरपास का मामला को उठा रहे हैं, आप इसको देखिए। तो माननीय पीयूष गोयल जी ने उठकर आश्वासन भी दिया कि मैं इसको देख रहा हूं। उसमें मेरा निवेदन है कि पूरे देश का समस्या है, अंडरपास जहां जहां बन रहा है वहां पर फाटक की भी व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि किसानों को हार्वेस्टर नहीं जा रहा है। और जब बरसात का मौसम आता है महोदय तो इतना पानी भर जाता है कि पानी पीटर से निकाला जाता है और गाड़ी को पार किया जाता है। इसलिए मेरा इसमें सजेशन है कि वहाँ पर जहाँ भी अंडरपास बन रहा है वहाँ पर फाटक की व्यवस्था कराई जाए। नालंदा में डियामा और रहुई दो ऐसे पहले रेलवे स्टेशन था और उसको अब होल्ट बना दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि रहुई को और रहुई को और डियामा को स्टेशन का ही दर्जा रहने दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर गाड़ियाँ आवागमन में रोका जा सके। दनियामा से शेखपुरा रेलवे लाइन बिहार शरीफ तक कार्य पूरा हो चुका है। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शेखपुरा तक उसको स्वीकृति दिया गया था। अभी भी बिहार शरीफ से दनियामा तक ट्रेन चल रही है, लेकिन बिहार शरीफ से शेखपुरा आज भी पेंडिंग है। अभी आपने बजट में पैसा दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरा अनुरोध है कि उसको कुछ कार्य को शीघ्र यथा संभव जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दनियामा से बिहार शरीफ रेलखंड पर रामपुर होल्ट में गाड़ी रुकती है महोदय, लेकिन वहां पर टिकट नहीं कटता है। वहां पर स्थानीय लोगों का डिमांड है कि रामपुर होल्ट पर टिकट का भी व्यवस्था कराई जाए। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के बगल में NH 82 क्रॉसिंग है और सभापति महोदय मेरे क्षेत्र का मामला उतना तो पढ़ते हुए 5 मिनट 82 NH 82 क्रॉसिंग है, वहां पर घंटों जाम लगा रहता है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि ओवर ब्रिज वहां पर दे दिया जाए, जिससे कि जिला मुख्यालय में आने जाने का जो भार है वो हल्का हो जाए। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा महोदय तो काफी लोगों का किल्लत होता है। नालंदा और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है सभापति महोदय, यहाँ सालों भर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मेरा अनुरोध है कि राजगीर से सीधा अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई और कटरा के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। फथुआ से इस्लामपुर रेलखंड एवं दनियामा बिहार शरीफ रेलखंड श्री नारायण सभी होल्टों पर सभापति महोदय प्लीज मेरे संसदीय क्षेत्र के जितने भी होल्ट हैं सर, आज भी प्लेटफार्म ऊंचा नहीं है, वो कम से कम प्लेटफार्म बनवा दिया जाए और यात्री को वहां पर यात्री सेट का निर्माण करा दिया जाए, जिससे कि जो बूढ़े लोग उतर चढ़ नहीं पा रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको शीघ्र हर होल्ड पर इसकी सुविधा मुहैया करा दिया जाए। इस्लामपुर पटना पैसेंजर को एक जोड़ी ट्रेन चलती है सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस्लामपुर पटना तक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।
मैं आपका और मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे 2020-21 के इस रेल बजट के डिमांड और ज्ञान पर बोलने का अवसर दिया। सभापति, उसके साथ ही मैं आम जनमानस का भावनाओं की भी थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। सभापति, वर्ष 2019 में हुई आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने भारी जनादेश देकर दूसरी बार लगातार सत्ता पर काबिज होने के अवसर प्रदान किया। इसके साबित होता है कि एनडीए गठबंधन को मतदाता कितना पसंद करता है और उससे अपनी कितनी अपेक्षाएं और आकांक्षा रखता है। जनता की अपेक्षाओं का ध्यान में रखते हुए ये सरकार दशकों तक लगातार चली आ रही है और लचर, अनासक्ति और अव्यावहारिक व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मतदाताओं की भावनाओं को, आकांक्षाओं के साधनों के रखते हुए हमारी सरकार ने रेल विभाग ने ही नहीं बल्कि देश के चौमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्प किए हैं। सभापति महोदय, आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ दूरदृष्टि एवं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के चाणक्य नीति एवं साहस के दम पर कड़े कदम उठाकर देश के कई अभूतपूर्व परिवर्तन किए, जिसकी प्रशंसा आज देश का आम नागरिक भी कर रहा है। इसके जाहिर होता है कि सरकार की मंशा और दृष्टिकोण कितनी उस प्रकार की है। ये सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपने अग्रसर के, इसके लिए भारत सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभापति महोदय, अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। रेल विभाग अपने आप में एक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विभाग है। भारत सरकार द्वारा पर डे 11,000 से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें 7,000 से ज़्यादा यात्री ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इन ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग 12 से 15 लाख यात्रियों का सफर करते हैं। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेनों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और ट्रेन साधारण मध्यम वर्गीय लोगों का आवागमन का यह एक महत्वपूर्ण एक योगदान है। पीपीपी मॉडल महोदय, भारत सरकार रेलवे विभाग का अत्याधुनिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ट्रेन संचालित करने जा रही है। इस योजना का आरंभ यात्रियों को, व्यापारियों को एवं आम जनमानस को ही नहीं, असुविधा एवं परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया है। रेलवे विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी जी के पीपीपी मॉडल ट्रेनों का संचालन की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के यात्रियों को, किसानों को, व्यापारियों को हितों के विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। इस योजना का आरंभ भारत सरकार द्वारा रेलवे विभाग में वर्तमान में आ रही कई कठिनाइयों का ध्यान में रखकर किया जाने वाला है। इन दिनों योजना के विशाल कायम करेगी और इसके लिए सरकार कम आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और सभापति महोदय, पीपीपी मॉडल ट्रेन योजना अपने आप में एक उदाहरण है। इस योजना के प्राइवेट सेक्टर में लोग जुड़कर इस योजना का रेल विभाग ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी होगी और ख्याति भी कायम करने वाली है, योगदान प्रदान करेगी। एक किसान रेल जो हमें आज तक कभी सुना भी नहीं था। अध्यक्ष जी, 2020-21 के बजट में किसानों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रिपल पीपीपी मॉडल का माध्यम से विशेष किसान रेल चलाई जाएगी। इस रेल के माध्यम से किसानों को द्वारा उत्पादित मिल्क, डेयरी उत्पादन, मीट, मछली, सब्जी, फल, फूल यदि को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज जाने के लिए समुचित योजना बनाई गई है। इस ट्रेन में ऐसे कोच की व्यवस्था की गई है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें रेफ्रिजरेटर की भी समुचित व्यवस्था होगी, जिसमें कृषि उत्पादक का गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इससे पहले किसान माल खराब होने से डर से डेयरी और मिल्क के उत्पादन को मच्छी को उसको संबंधित माल बाहर नहीं भेजे पाते थे। इसके कारण उन्हें सबसे ज्यादा समुचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब इस ट्रेन के संचालन के किसानों को और अपने उत्पाद को समुचित मिल पाएगा। इस राष्ट्र हित के निर्माण के कार्य में बहुत सी चीजें कंपनियों को सहयोग देने के अपनी अपनी इच्छा जाहिर की है। इस प्रकार की व्यवस्था ट्रेनों को होने से व्यापार को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए
भारत सरकार ने इस योजना को शुभारंभ किया है, तो किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम को मैं सराहनीय समझता हूँ। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। 2 मिनट नहीं है, 2 मिनट प्लीज। अब मैं अपने क्षेत्र के सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र अमरेली संसदीय क्षेत्र में पिप्पावाव सुरेंद्र नगर ब्रॉडगेज लाइन 2003 में रखी गई थी। इसमें कार्य के लिए लाइन में लगभग 7 गांव आते थे, राजूला, भेराई, रामपरा, उसिया, कड़ियाली और वसादर, जिसमें विभिन्न 167 किसान उसमें आए, इसकी जमीन संपादित की गई थी। इस प्रक्रिया में मिले हुए मुआवजे से किसान नाखुश होकर ये राजूला कोर्ट में किसान चले गए थे, तो मैं उनका पूरा मुआवजा नहीं मिलने के खेती की जमीन का 550 रुपया और बागायती जमीन का 750 रुपया मुआवजा राजूला कोर्ट ने आदेश कर दिया। लेकिन महोदय, इस मामले का जितना भी विलंब किया जाएगा उतना नुकसान रेलवे का होगा, क्योंकि उसका ब्याज समेत पूरी राशि किसानों को अंत में देनी पड़ेगी। साथ ही किसानों को भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिससे उनको अधिक से अधिक, प्लीज 1 मिनट, अपने क्षेत्र का किसानों का मामला है, परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अदालत के आदेश के अनुसार मुआवजा शीघ्र दिलाकर इस मामले को निपटा कर किया जाए और इस केस को संदर्भ में रेलवे बोर्ड की ओर से ऊपरी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जाए और किसानों के हित में मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। और अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र गारियाधार और पालीताना जो जैन का बहुत बड़ा जैन स्थल है, उसको भी एक रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाए। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट है मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर डिवीजन के अंतर्गत खिजड़िया विसावदर सेक्शन के गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जो खंड में विभाजित है, विसावदर, जूनागढ़, वेरावल, तालाला, विसावदर, जिसका गेज परिवर्तन का कार्य RVNL மாற்று தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த மசோதாவில் எனது கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு முன் முதலில் தமிழகத்திற்கு ரயில்வே பட்ஜெட்டிலே இழைக்கப்பட்டிருக்கிற அநீதிக்கு எனது வலிமையான கண்டனங்களை முதலிலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன். ஏனென்றால் கடந்த 2006 ஆண்டு முதல் மத்திய ரயில்வே பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட சுமார் 10 திட்டங்கள், புதிய வழித்தடங்கள், 10 வழித்தடங்கள், அவற்றுக்கான தேவை 12,000 கோடி. ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் அந்த 10 வழித்தடங்களுக்கும் தலா 1000 ரூபாய் வீதம் வெறும் 10,000 ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள். எனவே அமைச்சர் இந்த மன்றத்திற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் இந்த 10 திட்டங்களையும் கைவிடப் போகிறீர்களா அல்லது நடத்தப் போகிறீர்களா? இந்த 10 திட்டங்கள் தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு, மக்கள் வளர்ச்சிக்கு, மக்களினுடைய மேம்பாட்டுக்கு மிக அடிப்படையான திட்டங்கள். எனவே தான் மக்களின் பிரதிநிதிகள் மூலம் இதே அவையிலே முன்வைக்கப்பட்டு மத்திய பட்ஜெட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள். இந்த திட்டங்களினுடைய நிலை என்ன என்பதை நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இதுவரை தமிழகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற ரயில்வே திட்டங்களுக்கான தேவையான நிதி 22,000 கோடி. ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் ஒதுக்கி இருப்பது வெறும் 1,800 கோடி மட்டுமே. அதாவது வெறும் 5% நிதி மட்டுமே ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள். அப்படி என்றால் இப்பொழுது தமிழகத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ரயில்வே திட்டங்கள் முடிவடைய சுமார் 2 தலைமுறையாகும். இதைத்தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்ற கேள்வியும் நான் கேட்க விரும்புகிறேன். அதே போல தமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக காட்பாடி டு விழுப்புரம், சேலம் கரூர் திண்டுக்கல், ஈரோடு கடூர் ஆகிய 3 திட்டங்களுக்கு 389 கிலோமீட்டர் 3,851 கோடி இரட்டை வழிப்பாதைக்கான புதிய திட்டம் இந்த பட்ஜெட்டிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால் இந்த பட்ஜெட், இந்த திட்டங்களுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கி இருக்கிற தொகை தலா 1000 ரூபாய் வீதம் 3,000 ரூபாய் மட்டுமே. இது புதிய வழித்தடம் அல்ல, இரட்டை வழிப்பாதை. எனவே நிலம் கையகப்படுத்துகிற பிரச்சனையும் இதில் இல்லை. அப்படி என்றால் வெறும் 3,000 ரூபாய் மட்டும் ஏன் ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள்? பெயரளவுக்கு கண்துடைப்புக்கு திட்டத்தை அறிவிக்கிற ஒரு நோக்கம் இதில் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை இந்த மன்றத்திலே நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன். அதே போல மதுரை கன்னியாகுமரி இந்த இரட்டை வழி பாதைக்கும் இந்த ஆண்டும் நீங்கள் ஒதுக்கி இருப்பதை சேர்த்து 60% தான் ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள். மீதம் 40% எப்பொழுது ஒதுக்கப் போகிறீர்கள் என்ற கேள்வியும் இங்கே எழுப்ப விரும்புகிறேன். அதே போல தனியார் மயம் என்பது இன்றைக்கு மிக மோசமாக ரயில்வே துறையில்
ஏறக்குறைய அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 500 பயணிகள் ரயில் தனியார் மயமாக்கப்படும். இப்பொழுது 150 ரயில்கள் 100 வழித்தடங்கள் என்று அறிவித்திருக்கிறீர்கள். இது மிகப்பெரிய ஆபத்திலே போய் முடியும். இன்னும் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் கிசான் எக்ஸ்பிரஸ் நிதி அமைச்சர் தன்னுடைய உரையிலே இங்கே குறிப்பிட்டார், விவசாயிகளுடைய விளைபொருட்கள், விவசாயிகளுடைய உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைக்கு கொண்டு வருவதற்கு கிசான் எக்ஸ்பிரஸ் என்று குறிப்பிட்டார். ஆனால் அவற்றையும் நீங்கள் தனியாருக்கு அறிவித்திருக்கிறீர்கள். அப்படி என்றால் இந்த அரசாங்கமே விவசாயிகளின் மீது அக்கறை இல்லாத பொழுது எந்த தனியார் நிறுவனம் விவசாயிகளின் மீது அக்கறை கொண்டு இந்த ரயிலை லாப நோக்கம் இல்லாமல் அல்லது மிகப்பெரிய விவசாயிகளின் நலனோடு இந்த ரயிலை இயக்கும் என்ற கேள்வியை இங்கே எழுப்ப விரும்புகிறேன். அதே போல பாதுகாப்புக்கு மிக முக்கியமாக 4500 கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு வருடமும் தண்டவாளங்கள் பழுதடைகிறது. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது ஒதுக்கி இருக்கிற நிதி வெறும் 3500 கிலோமீட்டருக்கு மட்டுமே ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள். இது பாதுகாப்பை ஒரு பெரிய கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறது. அதே போல மின்மயத்திற்கு 2022இல் 100% எலக்ட்ரிபிகேஷன் மின்மயம் என்று அறிவித்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் அப்படி அறிவித்தால் இந்த ஆண்டு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு நீங்கள் நிதி ஒதுக்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்பொழுது ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது வெறும் 6000 கிலோமீட்டருக்கான நிதி மட்டுமே இப்பொழுது ஒதுக்கியிருக்கிறீர்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல தனியார் மையத்தினுடைய மிக முக்கியமாக தென்னக ரயில்வேயில் 11 ரயில்கள் தனியார் மையத்துக்கு 11 ரயில்கள், அவற்றில் 6 ரயில்கள் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்தும் 5 ரயில்கள் தாம்பரத்தில் இருந்தும் இயக்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறீர்கள். அதாவது தாம்பரத்தை முழுமையாக தனியார் மையத்தினுடைய முனையமாக டெர்மினலாக மாற்றுகிற ஒரு முயற்சி இதில் இருக்கிறது. இதை வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். அதே போல கோவையில இருந்து மங்களூருக்கு இயக்கப்பட இருக்கிற தேஜஸ் ரயில் தனியாருக்கு விடுவதாக இப்பொழுது அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது. இதுவும் மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே போல உற்பத்தி ஏறக்குறைய ICF உள்ளிட்ட 8 உற்பத்தி நிறுவனங்களும் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்ற இந்த அறிவிப்பு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை உருவாக்குகிற அறிவிப்பாக, மொத்த ரயில்வேயையும் தனியாருக்கு தாரை வார்க்கிற அறிவிப்பாக இருக்கிறது. இவற்றை கைவிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you. नेक्स्ट स्पीकर श्री विद्युत बेरन महोतो जी। सभापति महोदय, जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिमांड ऑफ ग्रांट्स 2020-21 पर बोलने का मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर के अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व के तीसरे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों की संख्या में साथ विश्व में सर्वाधिक यात्री के लाने ले जाने वाली रेलवे रही है तथा माल ढुलाई के चौथा सबसे बड़ा साधन रही है। भारतीय रेलवे में 17-18 के दौरान 11,596 लाख टन राजस्व अजर माल भाड़ा लादन की तुलना वर्ष 18-19 में 12,215 लाख टन के राजस्व अजर माल भाड़ा लादन किया था। आज इसमें 5.34% वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वर्ष 2017-18 के 82,885 लाख यात्रियों की तुलना में 1.85% अधिक रही है। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे जैसे प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छता। अगर स्वच्छता कहीं देखना है तो रेल, भारत के रेल स्टेशन पे देखा जा सकता है। मैं अपने और लोकसभा क्षेत्र जमशेदपुर को आता हूं, क्योंकि वो के मिनी भारत के रूप में विख्यात है, क्योंकि देश के विभिन्न प्रदेश के लोग वहाँ बसे हुए हैं। हमारे जो 2 डिवीजन है, सीकेपी डिवीजन और धनबाद डिवीजन, जो सबसे ज्यादा कोयला लोहा का ढुलाई होती है और राजस्व भी 42% के लगभग मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि पूरा रेलवे का 42% राजस्व वहां से आता है। लेकिन दुख की बात है कि वहां पर यात्री सुविधा एकदम नगण्य है। आज 70 वर्ष पार होने के बाद भी आजादी का लोग आज यात्रियों की सुविधा के लिए वंचित है। मैं आपसे मांग करता हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र में एमएसएमई और ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा सेक्टर है और आपका एसेट जो है सीनी पर व्यवस्थित है, एक कोच फैक्ट्री वहां बनाया जाए ताकि 2000 जो एमएसएमई और ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें टाटा स्टील से बात करके
कोच इंडस्ट्री वहां लगाया जाए। साथ साथ आरओबी जुगसालाई चाकुली और घाटशिला जो आरओबी सैंक्शन है उसको इमीडिएट उसको शुरू किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नायर रेल लाइन जो चांडिल बड़ाम पटमदा काटिन बंदवान होते हुए झाड़ग्राम ये 4 लोकसभा क्षेत्र में आता है, एक पूरा किया जाए। साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया से बहरागुड़ा होते हुए बूढ़ा मरा इसका भी सर्वे हो चुका, सैंक्शन है, इसका इमीडिएट जो है इसको टेंडर किया जाए। कंडरा से नामकुम जो राजधानी को जोड़ता रेल लाइन इसका भी सैंक्शन है, इसको अविलंब टेंडर किया जाए। टाटा बादाम